Okay, so good afternoon, everyone. So please let me know if I'm audible so that we can start today's session. So any one of you can just let me know. Am I audible or not? If I'm audible, so we can start the session. So, okay, good. Yes. Okay. So I think then we can start. As you can see over here, basically I have taken a questions like a mix of questions from different sections, which were some kind of like left out and all that from these sections. So I'm going to discuss them. Many questions, as you may have gone through the assignment also, they are in theory nature also, and somewhere in between. In addition to those questions, there was some additional question which I'm going to take over here, which I have added at later stage, and maybe that revised PDF at later stage will be shared with you, right? So some additional questions are also going to be there from this particular section. Okay, so let's then get started. So let me just okay. So if wherever we are going to find these theory questions, definitely I'm going to explain you the concepts also over there very briefly, so that you can relate it in the examination hall. Okay, just go through it. Okay, so this is the question that you are having. Just go through it and try to answer. Okay, so it says that according to the definition of basic static load rating. Okay, so how do you define this basically? Which one of these statements are going to be correct? As you know, when we say basic load, static load rating, it means that the static load, basically in case of a bearing, as you are having a bearing, so it says that the constant load which that bearing can carry, and that load which correspond to a, let's say this is the load which is acting on the bearing, and that can be carried by that bearing, and it should not create the deformation at the highest most heavily stressed point of contact exceeding, that means the maximum deformation that you can have corresponding to that load, that deformation, it says, should not exceed the 0.0001 times the diameter of the that particular rolling element. So the load which correspond to this amount of permanent deformation at the most heavily stressed point of contact between the balls and races anywhere, let's say we don't know, let's say this is the most heavily stressed point of contact. So at that point, if that deformation does not exceed this value, that corresponding to that value of deformation, whatever the load that you can apply, constant load that you can apply, we call that as a static load, basic static load. Now what he's asking the same thing, but only thing is he's saying basic static load rating, the diameter of the rolling element, that what should be the diameter of the rolling element, that you can calculate. So it is going to be 1 divided by that of total permanent deformation. This is a total permanent deformation, so 1 divided by this value. So how much it is going to be? It is going to be 10,000. So the diameter corresponding to that will be 1 divided by this value, that is 1 divided by this much, that becomes the 10,000. So 1 2 3 4 of what? Total permanent deformation of this. So if you see other options there, he's saying that is 10 times, 100 times, 1000 times, and over here 10,000 times. That means delta divided by this value, so it turns out to be 10,000, right? So that is how. So he can manipulate the equation and ask you to, he may check your understanding. Okay, let's go to the next one. Assumption of the basic static load rating. What is the assumption of the basic static load rating? Just see, when you define that load, that is the static load that the bearing can carry, which one of these statements are going to be correct? It says the load is constant in magnitude but varying in direction. Load is constant in direction but varying in magnitude. Load is constant in direction and magnitude. See, when they define that, okay, that permanent deformation, that is the delta that mentioned at 0.00001,
times d. That means the constant load. For example, this is the bearing. So bearing obviously it may be rotating, but I'm applying a load. Let's say constant load. Let us say I'm applying it in this is a radial bearing. Then applying this of particular magnitude which corresponds to this. So let's say this load is 10,000 100 kilonewton. So now what is this load? So this is a constant load that I'm applying, right? It is not the load whose magnitude is varying or direction is varying. It is having the constant magnitude of this value as well as the direction also. The direction is not changing. So I'm simply saying that, okay, this load which I'm applying over here at the most heavily stress point of contact, that deformation should not exceed this value. That's all. So it means this load that we are talking about is a static load, constant load, and this is basically in particular direction. It is not that direction is changing. So over here, the answer is going to be load is constant in direction as well as in magnitude. As simple as that. So let's now move on to the next one. According to the definition of basic dynamic load rating, basically what is it? Which one of these statements are going to be the correct one? Now, when we talk about the basic dynamic load rating, basically it is what? This is the dynamic load carrying capacity of the bearing, right? Or alternately, you also call it as a dynamic load carrying capacity of the bearing, right? So how do you define it? So again, we define it the constant load. In case of radial bearing, it is the constant radial load. In case of thrust bearing, it is the constant thrust load which that bearing can carry, right, for a rating life of 1 million revolution, right? तो बोलता है ऐसा लोड, constant load, let's say if it is a radial bearing, then in case of a radial bearing, this is the constant radial load. So in this case, let's say it's the radial bearing, the constant radial load will be, let's say this is the constant radial load. So this load which can be carried for a rating life of 1 million revolution. 1 million, you know, 10⁶ revolutions. And when we talk about the rating life, so rating life आपको पता होगा क्या है? What is the rating life? So rating life of the bearing, when we talk about, basically it is the, how do we define the life of a bearing? We define the life of a bearing in terms of either number of revolutions, or we define in terms of number of hours at a particular given constant speed. या तो ऐसे बोल सकते हो. So, but when we talk about the rating life, then we define the rating life for a group of bearings. So we say that rating life is the number of revolutions that bearing can execute, that group of apparently identical bearing can execute before the appearance of first fatigue fracture. So in that case also it says that, let's say if you are having a group of identical bearing, let us say 100, then out of that, if let us say 90% of those bearings can execute that number of revolution or exceed that number of revolution, so that we call it as a rating life. तो अगर आप मैंने इसको डेफिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो वी से द रेटिंग लाइफ फॉर ए ग्रुप ऑफ apparently identical bearing is defined as the number of revolutions that the 90% of the bearings in that group can either execute or exceed before the appearance of first fatigue crack or before the appearance of that particular fracture in the bearing. So it means अगर 90% of bearings जो exceed कर जाती हैं उस लाइफ को, तो उस लाइफ को नाम दिया है हमने rating life. Now, when the term in, so it means in rating life, definitely you're going to have the term 90% of the bearings. So it means when we are talking about the 90% of the bearings, it means if we are talking about the 90% reliability. So rating life basically है ही क्या? That is based upon the 90% reliability के ऊपर ही है. So and when we talk about the load carrying capacity, so we say that ऐसा load which can carry for the 1 million revolution for a rating life of 1 million revolution. तो rating life भी है और 1 million revolution भी है. तो rating life में आपका 90% reliability है. So it means when we talk about the basic load rating, bearing can carry how many? 1 million revolution. 1 million मतलब 10 raised what? 1 million 10 lakhs. Do you know? That is 10⁶ revolution for at 90% reliability. So I think all these things are maybe small variation, but if you see, there are going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So this becomes 1 million with 90% reliability, which is in the definition of rating life. So this is going to be the correct statement. And as you know, when we have to find out the life of the bearing for different rating, then we make use of the Weibull distribution, right? So you hope you may have seen that. So for example, if I want to find out the
bearing life based upon 99% reliability, then we make use of the Weibull distribution, or maybe at any other reliability other than the 90% bearings, we can, whether 95, 90 or 70 or whatever, then we make use of the Weibull distribution. Okay, so that is a simple understanding of that you need to have. Okay, just go through this. Which of the following is correct about the liquid lubricant shear stress? You already know. I think you have studied in case of what we call it as fluid mechanics also. So shear stress is directly proportional to velocity gradient, or if you want to represent it, you can say also mu into what? If I represent it very small thickness, you can h divided by h. Or let's say if you know kinematic viscosity, how do you represent kinematic viscosity? Represent mu by rho, right? So now if you have that understanding, so I think you will be able to answer. So simply, or I can say, now see, shear stress is directly proportional to film thickness. Film thickness is this one. So which one is correct? He's talking about which one is correct. So correct hai kya hai? No, the shear stress is directly proportional to film thickness. This is film thickness, so it is not directly proportional. So that means this is not correct. Shear stress is directly proportional to the kinematic viscosity. So if you use it over here, so mu is equal to rho mu. So obviously you can say it is directly proportional to kinematic viscosity. Shear stress is directly proportional to velocity gradient, obviously. So I can say this is also correct. And shear stress is inversely proportional to the lubricant density. So this is not correct. Lubricant density, as you know, when you will input over here, so it is going to directly proportional to this. So that means B and C are going to be your correct answer. Not only B, C also proportional to velocity gradient. See, shear stress is directly proportional to velocity gradient. This is from where we have that Newton's law of viscosity, right? Go to the next one. As for Petrov's equation, you know, in machine design, this Petrov's equation is very important, right? So more important is the how you have understanding of that Petrov's equation. One way of interpreting is, I think we're saying, as per the Petrov's equation, frictional torque of the journal. Frictional torque journal का कैसे find out करोगे? See, जो Petrov's equation है, you know, it gives you the estimation of the coefficient of friction in the bearing, journal bearings. वो value है, वो value, with that value also you should know that estimation of the coefficient of friction is, I think this is 2 pi square into mu n by p into r by c, right? ये वैल्यू आपकी आती है, और यहीं से अगर आप देखोगे बाद में समरफेल्ड नंबर आल्सो यू आर अवेयर अबाउट, तो कुछ पोर्शन इसका समरफेल्ड नंबर से रिफ्लेक्ट करेगा. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द समरफेल्ड नंबर वैल्यू, यू विल से mu n by p into r by c square. ये आपका समरफेल्ड नंबर आ जाता है. क्वाइट सिमिलर, आपको सिमिलरिटी सी दिखेगी इसमें. और ये देखोगे दिस टर्म एंड दिस टर्म, और अदर दिस टर्म और दिस टर्म, दे आर द डायमेंशनलेस नंबर. इसको हम क्लियरेंस रेशियो बोलते हैं. क्लियरेंस रेशियो दैट यू मस्ट हैव स्टडीड इन केस ऑफ हाइड्रोडायनेमिक जर्नल बीयरिंग्स. And this is the bearing characteristic. So this part is bearing characteristic. जो आप bearing characteristic भी बोलते हो आप इसको, characteristic, right? So ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से. He can frame the question this way also, that in Petrov's equation for the estimation of the coefficient of friction, which two dimensionless numbers are there? So you will say this could be the क्लियरेंस रेशियो एंड बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक आल्सो. बट इससे आप जो है ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाओगे which he has asked you over there. For that you need to have understanding. Okay, this is the basic that equation that you should know. From where we have derived that basic part, you need to have that understanding. So basically अगर आप देखोगे, थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूं. I'm not going to derive the whole, but from where you're going to have, for example, when we say that is this is the journal bearing that you are having this way, and this is the lubricant, and if side view if you see over here, and let us say this is the lubricant over here and all that, and it says that if I apply a very small load over here, then obviously if it is rotating this way, it is rotating, और यहाँ पर load apply करता हूँ, this is the clearance that you are having. Now what it says that you are having two things over here. Frictional torque, जो Petrov's equation है, वो दो चीजें
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एस्टिमेट करने के लिए दो चीजों को इक्वेट करती है. किसको? एक द टॉर्क रिक्वायर्ड टू shear द फिल्म. सो वन इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू shear द फिल्म. इसको मैं यहां लिखता हूं थोड़ा सा. टॉर्क okay, torque required to shear the film. Okay, so we will say this is equal to what? Torque required to shear the film. That means how much torque is required over here to shear it. That is the meaning of this. और वो shear कहां से आएगा? Newton's law of viscosity. वहां पर आपका जो वो shear का concept आता है. Because you know tau is directly proportional to du by dy. Over there you are having this mu into du, u by c or u by h, whatever you call it, is a gap. Over here I can call it as a c, clearance, radial clearance over here, right? So यहां पर आप क्या बोलोगे? आप ये कहोगे कि for example what is the force which is acting over here? So if I know the force and the radial distance over here, then I can say force which is acting over here to shear that film. Let's say if we are applying it over here, so you can say the force which is acting over here to shear this film, that is the fluid film, multiplied by the radius. And how I can get in this force? Force, you will say how much is the shear stress acting over here? Shear stress into shear area. So that becomes the shear force over here, and obviously equal to R. And how much is the area which is getting sheared? I think that immediately you can say that is the pi d circumference and the whole length. So pi d into length, that is the whole circumferential area. So that is how we say that pi d, sorry, that is circumference, pi d, d is 2r, pi d l, pi d d. So this becomes pi d into l, l into r. So that is how you can come to this. This again, if you input this value of tau, this will become this. So I can write it this way. Tau is how much? Tau is this much. So mu, and this is that is a circumferential velocity, tangential velocity over here. So if I will 2 pi n v, this is the v only, linear velocity at this. So you say pi dn. Sorry, v is pi dn only. So if I input that value over here of what? This u, pi dn divided by h. H over here is the c. That's all, and rest is you're going to. So I have inputted the value of this mu. Tau over here. Rest you are having pi. I don't need to. But you should be in position immediately to find it out, because he frames a numerical question based upon this, and very frequently he frames the question from this section, right? So, but see, this is one part of this, that okay, we can to find out the final coefficient of friction that we saw in the last question. So first is that okay, torque required to shear the film. So that torque must be more than what? The frictional torque that is over there at this point. So frictional torque, how we can find out? Frictional torque is given by what? Frictional force which is acting over here. If you know, if you are applying a load W over here, very small load, then can I say that in this direction friction resistance will be acting, and what is the value of that? You will say what is the normal force over here, that is going to be equal to the W. So you will say coefficient of friction, here I am denoting with small f, into W. This becomes normal, this becomes friction force over here. So the same normal force and friction force, this becomes the frictional force over here. So if I multiply the friction force with the radius, then this is going to give me the frictional torque. So frictional force W into R, and over here W we can denote, this is a load in terms of pressure into area, and we can write it as this way. Anyway, but I don't even, if you want to write, you can write in terms of pressure also. That is pressure, this is the into the projected area dl. I hope you may be having little idea. If you don't have, okay, we'll do this question can be done even without that. But more important for me is, now see, as per Petrov's equation, frictional torque of the journal bearings. Now this is a frictional torque that I can find. So, but he has not given anything which is in terms of these values. I think he has given one pressure only. I think we will see that. But let's see one by one. Proportional to lubricant viscosity. Now viscosity term doesn't appear over here. So I cannot decide this statement based upon this. Proportional to diametral clearance. Diametral clearance is not appearing over here. Inversely proportional to the rotational speed. That is also not appearing over here. Proportional to the bearing bore diameter. So over here it is diameter, but I think and okay, proportional to bearing bore diameter. Bearing bore diameter means the diameter of this bearing. But in this, both this equation and this equation, it is the diameter of the journal only. Right, now let's interpret. It means
When we have derived this equation, it is assumed that, okay, this frictional torque is going to be equal to the torque required to shear the film, right? How much frictional torque will be over here? So you will say that whatever the frictional torque or resistance that is being offered by this fluid film to this rotation of the shaft, that can, until and unless that this torque, shearing torque overcomes that, it cannot be sheared. So it means this and this is going to be equal. So it means I can write this frictional torque equal to the torque required to the shear film. It means I can equate this equation to this. If that be the case, then you can interpret it very easily. Now see, now let's say this equation, that is this portion, is equal to this. Now see, proportional to the lubricant velocity. Is it proportional to lubricant viscosity? Definitely. See, mu is appearing over here and directly proportional. So what he's saying, that as per the Petrov's equation, frictional torque of the journal bearing is proportional to the lubricant viscosity. It means frictional torque is going to be equal. I can write it this equal to this, or because I can write in terms of this also. So this equal to this equal to this. Now it means lubricant viscosity, definitely, because mu. Frictional torque is directly proportional to mu. Proportional to diametral clearance. Proportional to diametral clearance. Now tell me, it is in the denominator. Okay, so that is C is radial clearance. I can put it in terms of diametral clearance also, but okay, definitely clearance term is at the denominator. So it is not proportional to, it is inversely proportional to. So I cannot say. Inversely proportional to the rotational speed. Now see, rotational speed is where? Rotational speed is this one, n. So it is not inversely proportional to, it is directly proportional to the rotational speed. So this is also not correct. Proportional to the bearing bore diameter. See, all these R and D that I am writing over here, D or R that I am writing, this I am writing for the journal only. Diameter of the journal, not the diameter. I am not writing this term. This is not D or R. I am talking about this diameter of D, or you can say 2R. So if this statement is not correct, proportional to bearing bore diameter, no, this is proportional to what? Even if he has to say, then you can find it out by looking at this. It is proportional to this R, that is the diameter of the journal. So this statement is also not correct. Okay, this is one way. But anyway, I hope I cannot explain you it in a very slow manner and very completely, but very briefly I have already explained you, because these two equations, this and this, you need to immediately write in the examination hall whenever he is going to ask you to calculate the torque required to shear the film, or if he has not given the torque required to shear the film, let's say he has not given these values, but he has given these values. So you can find out the torque required to shear the film from this equation also. Same way, if he is asking the frictional torque, he has not given these values, relevant values, but he has given these values. Immediately what you can do is, frictional torque is going to be equal to the torque required to shear the film. Iske equate karo और directly value find out कर लो. Right? So ये examination point of view से आपका ये Petrov's equation is very important. I could not find the this numerical जो उसमें NPTEL assignment and numerical तो नहीं find out कर पाया मैं इसके ऊपर. So I have not taken, but definitely what you do is जो गेट के previous years questions हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं इसके ऊपर, पेट्रोव्स इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर, डू सॉल्व देम, एंड अगर वो सॉल्व कर दिए आपने 3-4 इक्वेशंस, सॉरी क्वेश्चंस ऑफ गेट, सो बी श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को आराम से हैंडल कर पाओगे. ओके, सो दैट इज ऑल दैट आई कैन से. ओके, सो गो टू द नेक्स्ट वन. ये तो आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. So you can go ahead and find out what he has given you. So only thing over here that you have to take note of is the units, and वो units में गड़बड़ नहीं करनी है. That's all. Just see this. What he says, the dynamic viscosity and the density of the liquid lubricant are this. So I hope you will be immediately able to find out. Nothing special in it. Dynamic viscosity उसने आपको देके रखी है, but how you interpret it, this is what, how are you going to interpret this? What is this M? It is milli, not mega, right? So these kind of questions are sometimes framed in the gate also, where he, instead of writing these values as this capital M, had it been capital M, then you will read it as a mega, but this is a small m, it means this is a milli. Millipascal second, this is the unit. Right, so this is the only thing that you have to take note of. It means if I want to convert it into Pascal per second, so milli means 10 raised to minus 3. So it becomes Pascal second. Pascal, you know, Newton per meter square. Right? Okay, so
what else? What else? Rest is, I think, density he has given you 780 kg per meter cube. So he's saying to calculate this value in kinematic viscosity. What you do is simply, how do you write? So kinematic viscosity is equal to mu divided by rho. Mu is how much? This 10 raised to minus 3 divided by rho. Rho is, I'm writing is 780. Now how this value is going to be? Now इसको मैं units में लिख देता हूँ. These units are of this Pascal. Pascal, you know, Newton per meter square. ये इसके units आ गए, and this becomes second. So I have just written the units, these units over here, and rho is down there. So that means kg per meter cube यहाँ चला गया, right? Now see how you can write Newton, kg meter per second square. So should I write it this way? So that means kg meter per second square, right? Newton को ऐसे लिख सकता हूं मैं, मीटर kg meter per second square into meter square second into meter cube kg. अब देख लो, this goes down there, over there, meter square goes over there, left out with meter, meter square. Am I committing some? Okay, kg and second, and I have committed some mistake here. Meter square, kg meter per second square. यहाँ मैं कोई mistake commit कर रहा हूँ. kg meter per second square, kg meter per second square. Oh, right. Sorry. Yes. ये मैंने इसको लिखने में गलती की, right? इसके क्या होता है? kg meter per second square, right? That is why I was saying some mistake was over there. So Newton is this value. Rest I am writing it over there that way. Rest you will cancel out. ये चला गया आपका, kg आपका गया. You are left out with the meter over here, meter over here. So automatically this whole value is going to be meter square per second, right? So just convert all these values into SI units. So automatically this you are going to get it, and this value that you are going to get will be equal to how much? 0.4 times 0, I think 0.004 times 0, 1923. Okay, so it's a play of just the units. So units का ध्यान रखना है आपने. So since he has asked you in the SI units, so simply convert these values, all these. This is already in SI. This is also already in SI. So just input these values. Automatically you're going to get the value in terms of meter square second. 4 times 0, right? Okay. So that is how you have to move ahead. Let's go to the next one. This one. So which of the following is incorrect? Incorrect कौन सा है बोलता है इसमें? That you have to find out, and the incorrect value that you have to find out, क्या बोल रहा है? He's talking about the Strebeck's curve, right? So basically the variation of this bearing characteristic and the coefficient of friction, how the coefficient of friction vary with the bearing characteristic, that is given by this curve. And as you know, this is something, इस तरीके से कुछ वेरिएशन है ये, right? So ये है. So you should know the interpretation clearly, that's all. So let's see. Strebeck curve relate coefficient of friction to the applied load. Does it relate? Does it relate? Obviously, because pressure, this is the average pressure, how I can write? Load which is acting and the projected area of the bearing, L into D. So it means pressure I can write in terms of load. It means definitely curve relate coefficient of friction with the applied load. Definitely if pressure is there, load is also there. Obviously I can write this way also over here. So it means definitely this is related to this. So this is not incorrect. This is correct. Strebeck curve relate coefficient of friction to lubricant viscosity. Mu relate कर रही है. This is also correct. What else? Strebeck curve relate coefficient of friction to operating speed. N is what? Operating speed, right? It means this is also correct. Then Strebeck curve relates coefficient of friction to the surface hardness. What it has to do? These are the operating parameters which decide the value of the coefficient of friction between those two surfaces, right? So how the surface hardness, basic rather surface property, surface roughness can to a certain extent, depending upon where you are operating.
फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर ऑपरेट हो रहा हूं, दिस इज द अनस्टेबल रीजन, यहां पर अनस्टेबल रीजन है, यहां पर वी डोंट अलाउ द बीरिंग टू ऑपरेट बिकॉज फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है इसमें, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट है. सो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट मीन surface properties plays a big role. So in terms of the surface roughness and all that, if it is mentioned over there, then I can think of, but not surface hardness. And this is the mixed region, you can say transient, and over here this is the area of stable lubrication that you know. So just study this particular curve. So this is how you can think of. So it does not depend, it means this statement is incorrect. Okay, so I think this same thing I have already explained you. What it says, see, it says that Stiebeck curve helps to find. क्या पता करने की कोशिश करती है? Stiebeck curves help you to find out what? किस तरह की lubrication है? यही तो ड्रॉ किया हमने कि किस तरह की lubrication है that you can find out from the Stiebeck curve, that is the coefficient of friction variation with bearing characteristic mu n by p. This is the curve. So I told you this region is the mixed lubrication region. This is the boundary lubrication region. Boundary lubrication regime is in this region you are having a high coefficient of friction. Metal to metal contact is there, speed is low and all that. So it means ये जो region है this side, this is the boundary lubrication. Metal to metal contact is there and a high friction region. ये. Then this is a transition zone where you are having a mixed lubrication regime. Whereas as you move away from this side, we call it as this is a stable lubrication region, or we call it as a thick film lubrication. So either you call it as a thick film lubrication, or stable lubrication. Why we call it as stable? Because it remains stable in this region. So if you are operating this bearing with the mu n by p value in this region, then if there is a small variation in these parameters, then that bearing will operate consistently without any failure. But if you are operating somewhere here in this region, then there is a chance that metal to metal contact may take place and friction will increase. So इसलिए हम इसको बोलते हैं thick film, मतलब gap है उसके बीच. That metal surfaces are completely separated, and we call that also as a hydrodynamic lubrication regime. So ये area क्या हो गया आपका? Thick film lubrication बोल लो, stable बोल लो, और hydrodynamic lubrication बोल लो, meaning is same. So definitely, if I talk about the Stiebeck curves, so it helps you to identify what? All of these. It will help you to identify कौन सा रीजन जो है वो स्टेबल लुब्रिकेशन का है, थिक फिल्म का है, थिन का कौन सा है, एंड मिक्स्ड लुब्रिकेशन रिजीम कौन सी है. ओके, सो दैट इज हाउ यू हैव टू आंसर. सो ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर. लेट्स सी दिस, जस्ट गो थ्रू इट. Which one of the following is incorrect for boundary lubrication? Incorrect कौन सा है? Rest is going to be correct. Which one is incorrect? Incorrect पता करना है आपने. बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब है थिन फिल्म लुब्रिकेशन. थिन फिल्म का मतलब क्या हुआ? मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट. So can you go ahead and see? Solid surfaces are so close together that appreciable contact between the opposing asperities occur and lubricants become ineffective. Okay, चलो इसके ऊपर मैं बाद में आता हूं. Let's go to the next. So first try to identify those statements which you will have a greater clarity. जब भी ऐसी क्वेश्चन आए तो उसको देख लो कि go through all the statements. So some of those statements are going to be clear, very clear. Okay, तो उसको आप easily identify कर पाओ. Then come to those where you are going to have the doubt. So let's see. Friction and wear are determined predominantly by interaction between the solid and the liquid. Now, first of all, you know, thin film lubrication or boundary lubrication. अगर आपको example है ना, you already know the example that is of hinge, door hinge. Door hinge case of जहां पर आपने hinge में जो है वो door hinge में you have used the lubricant. So that is a thin film lubrication. या machine tool bed, लेथ में जो बेड है जिसके ऊपर आप कैरेज को मूव करते हो, that is also the case of thin film lubrication. Just think of this. Friction and wear are determined predominantly by interaction between the solids and lubricant or liquid. So obviously it is correct. It is going to be correct. भाई एक उसमें metal to metal contact भी होगा और lubricant भी होगा. तो इसका मतलब है when we talk about the friction, coefficient of friction, तो दोनों चीजें डिसाइड करेंगी. कौन सी? That is the solid to solid जो asperities है उनमें कुछ contact होगा. That is, and also between the solid and the liquid, क्योंकि आपका जो वहां पर lubricant भी है. तो this statement is correct. क्योंकि दोनों चीजें जो है इंटरेक्ट कर रही हैं.
bulk liquid properties of the lubricant play negligible part in friction and wear behavior. बल्क लिक्विड प्रॉपर्टीज जैसे विस्कोसिटी है, जिससे बल्क लिक्विड प्रॉपर्टी है, राइट, बोलता है इट प्लेज ए वेरी लेस पार्ट. नो, विस्कोसिटी प्लेज ए ग्रेटर रोल जहां पर आपका हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन है, वेयर द टू सरफेसेस आर कंप्लीटली सेपरेटेड. व्हेन टू सरफेसेस आर कंप्लीटली सेपरेटेड, सो हाउ मच फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी ओवर देयर. मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट तो है नहीं. जब मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट है ही नहीं, तो ऑब्वियसली लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू डिसाइड हाउ मच कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी ओवर देयर इनसाइड. सो इसका मतलब ये है कि इस केस में डेफिनेटली, क्योंकि मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो ओवर देयर, तो जो विस्कोसिटी है दैट इज नॉट गोइंग टू प्ले दैट मच रोल. सो इट मींस bulk liquid properties, like you can think of viscosity of the lubricant, play negligible part, बहुत कम, क्योंकि metal to metal contact भी exist कर रहा है वहां पर in friction and wear behavior. इसका मतलब है ये भी करेक्ट है. lubricant film is too thin to provide total solid separation. pretty easy, वो तो आप बता ही सकते हो कि मशीन टूल स्लाइड्स के बीच जो आपका कैरेज है, जो मूव करता है, जो बेड ऑफ द लेथ और डोर हिंज फॉर दैट एग्जांपल, वहां पर क्या है, तो लिक्विड फिल्म लुब्रिकेट जो काइंड ऑफ देयर इज नो कंप्लीट सेपरेशन. आपका सरफेसेस जो है वो एस्पेरिटीज जो कुछ सरफेसेस की जो कुछ कांटेक्ट पॉइंट्स जो बीच में रहेंगे, लुब्रिकेंट भी रहेगा सरफेस के दोनों सरफेसेस के बीच, और मेटल मेटल कांटेक्ट भी रहेगा. इसका मतलब है दिस इज आल्सो करेक्ट. लुब्रिकेंट film is too thin to provide total separation. Total separation हो ही नहीं पाती यहां. So if that be the case, you are left out with solid surfaces are so close together that appreciable contact between the opposing asperities occur, and lubricants solid surfaces are so close together that appreciable contact between the opposing asperities occur and lubricants become ineffective. देखो, कांटेक्ट तो होगा आपका कांटेक्ट सरफेस में, बट लुब्रिकेंट्स जो वो इनइफेक्टिव नहीं होता. Otherwise, had it been the case कि वो lubricant ineffective हो जाता, what is the purpose of providing the lubrication to these hinges or maybe machine tool slides? हाँ, ये बोल सकते हो आप. इस पार्ट में अगर देखो, if you see this part, solid surfaces are so close together, see that appreciable contact between the opposing asperities occur. Opposing asperities का मतलब है जो peaks and valleys हैं. For example, इसकी peak ये है और इसकी नीचे वाले की peak ये है, तो contact बनेगा, but and lubricants become ineffective. So, ऐसा नहीं है कि कॉन्टैक्ट बन रहा है तो लुब्रिकेंट इज गोइंग टू बिकम इनइफेक्टिव. हाँ, इट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई द गैप समवेयर इन द बिटवीन द स्पेसेस, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प टू रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड देयरफॉर इज हेल्पफुल. सो हम इसको ये नहीं बोल सकते कि इनइफेक्टिव होता है. अदरवाइज हैड इट बीन इनइफेक्टिव, व्हाई वी शुड हैव गॉन फॉर lubrication, right? इसका मतलब है एज पर दिस इज ये लेटर पोर्शन इज इनकरेक्ट, एंड देयरफॉर this one. So from your common understanding, जो आपका जो this concept है, उसको understand करके you can just find the answer. Just go through it. 3 questions हैं. I think they are not very difficult, but you can answer them. Just go through them. Okay. Loading on the gear tooth is shown. Based on the figure, answer the following. Okay, for that, let me just modify a little bit over here. इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है फिगर में जब हमने ड्रॉ किया इसको, there we missed this. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर बी भी मेंशन किया है. I can say this is B is a okay. ये जो पॉइंट है यहां पर, this is point A. एक्चुअल जो फिगर में था, जब हमने इसको रीड्रॉ किया तो आई थिंक ये बी नहीं है यहां पर. ओके, सो नाउ ओके, ध्यान रहे आपकी लोडिंग गियर टूथ की यहां से हो रही है, प्रेशर लाइन ये है, और फोर्स जो लग रही है गियर टूथ के ऊपर या अप्लाई कर रहे हो, या मे बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. प्रेशर लाइन इसने शो की है, एंड दिस हाउ इट इज एक्टिंग. एंड पॉइंट ए के ऊपर ये कुछ इंफॉर्मेशन, ही वुड लाइक टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस और मे बी समथिंग एट द पॉइंट आर गोइंग टू एग्जिस्ट. Okay, so पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. To calculate the maximum stress, the teeth may be considered. Teeth may be considered as what? You know, जब हमने एनालिसिस किया है, इसका गियर टूथ एनालिसिस किया है फॉर द बीम स्ट्रेंथ. इफ यू रिमेंबर, दैट इज ए बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन दैट वी हैव इन डिजाइन फॉर द स्पर गियर डिजाइन. तो बीम स्ट्रेंथ का मतलब है दैट इज कंसिडर्ड एज ए कैंटिलीवर बीम. यहां पर ये फिक्स है, काइंड ऑफ फिक्स का मतलब ये है कि ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हैव ए शाफ्ट अटैच्ड टू इट, then obviously that is going to provide the resistance.
So we consider that it is kind of fixed over here, and then I'm applying the load, so it is behaving like a cantilever. तो ये जो ऑप्शन आएगी आपका, इसमें आंसर आएगा ये. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई थिंक दे आर बेस्ड अपॉन द पॉइंट ए. तो ध्यान रखना, लोड ऐसे लग रहा है अभी गियर टूथ के ऊपर इन दिस डायरेक्शन, पॉइंट ए इज ओवर हियर एंड पॉइंट बी इज ऑन टू द लेफ्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस इज द वीकेस्ट सेक्शन कंसीडरिंग स्ट्रेसेस ड्यू टू बेंडिंग. अगर हम स्ट्रेसेस कंसीडर करें, बेंडिंग स्ट्रेसेस, ऑब्वियसली वी हैव कैरिड आउट दैट एनालिसिस फॉर द बेंडिंग स्ट्रेसेस. सो बेस्ड अपॉन दोस स्ट्रेसेस, weakest section is going to which one? Middle section, tip of the tooth, section below the root of the tooth. So as you know, maximum stresses in case of a cantilever are going to be where? Bending stresses की बात करें हम, मान लिया cantilever है, तो you know it is going to be at the this fixed end. वहां पर maximum bending stresses होती हैं. So for me, this is the most critical section. इसको मैंने अवॉइड करना, बिकॉज मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट लगेगी यहां पर, बेंडिंग स्ट्रेसेस सबसे ज्यादा होगी. सेम इज द केस फॉर द गियर टूथ आल्सो. सो व्हेन वी आर हैविंग दिस रूट सेक्शन, ये तो यहां पर अगर लोड लगता है कोई, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस आर गोइंग टू बी ओवर हियर. सो फॉर मी दिस इज गोइंग टू द वीकेस्ट सेक्शन एंड आई हैव टू डिजाइन इट बेस्ड अपॉन दिस. सो दैट इज व्हाई द वीकेस्ट सेक्शन कंसीडरिंग स्ट्रेसेस ड्यू टू बेंडिंग. और स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम हटा दें तो ऑब्वियसली वी विल से दिस इज गोइंग टू द रूट ऑफ द टूथ. रूट का मतलब ये वाला पोर्शन, बिल्कुल बॉटम. ओके, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, नथिंग स्पेशल इन इट. Then the stress is due to bending and stress is due to component, right? Imagine kar lo the gear tooth that was given to you. This is how the gear tooth was given to you, and he was showing you the line of action was something this way, and force was acting this way, and here you are having what? A point, and here you are having B, and you know this component of this load, whatever load that is, it is there, whether F or P. This is the tangential tooth load that we call it tangential tooth load, because one component of it is acting in this direction, other one is going to be act in this direction, which we call as a radial. So these are the two components because of this force which is being transmitted this gear through this particular line of action. Now what he says that stress due to bending कौन create करेगा? If I ask you out of these two, which one is going to create the bending, you will say if it is fixed over here, then obviously this component is going to bend it. So this is going to create the bending. स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग तो कौन क्रिएट करेगा? ये पीटी. एंड स्ट्रेस ड्यू टू थ्रस्ट कंपोनेंट, थ्रस्ट कंपोनेंट कौन सा हो गया? रेडियल कंपोनेंट ये. सो स्ट्रेस ड्यू टू थ्रस्ट कंपोनेंट ऑफ द अप्लाइड लोड एफ, लेट्स से इसको एफ बोल देते हैं हम, तो इसको हम बोल देंगे एफ आर एंड इसको बोल देंगे एफ टी एट पॉइंट ए. अब बताओ, आपने बताना है कि इसके कारण और इसके कारण स्ट्रेस एट दिस पॉइंट क्या होगी सीक्वेंशियली. एफ टी के कारण पहले एट द एफ आर के कारण एट दिस पॉइंट ए. सो व्हाट विल बी द, व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रेस? सो इफ आई आस्क यू बिकॉज ऑफ एफ टी बेंडिंग, इट इज गोइंग टू हैव ए टेंसाइल. यू नो ऐसे होता ना, एक तरफ अगर बीम की तरह एक्ट कर रहा है व्हेन यू अप्लाइंग द फोर्स, हियर इट विल बी टेंसाइल, हियर इज गोइंग टू कंप्रेसिव. इट मींस बिकॉज ऑफ दिस फोर्स at point A you are going to have tensile. तो पहले में आपकी क्या होगी? टेंसाइल. बिकॉज ऑफ दिस ft यहां पर टेंसाइल, बिकॉज ऑफ दिस रेडियल तो सिंपली क्या कर रहा है, चाहे पॉइंट ये है चाहे ये है, irrespective of whether point is this or this, it is simply compressing it. So fr के कारण जो thrust component है या रेडियल component है, ये तो सिंपली क्या कर रहा है? It is simply compressing it. So it is because of that it is going to be compressive only. So because of first mean because of bending के कारण यहां पर टेंसाइल होगी, यहां पर कंप्रेसिव होगी. सिंस ही इज आस्किंग फॉर द पॉइंट ए ओनली, सो इसके कारण टेंसाइल एंड इसके कारण एट दिस पॉइंट कंप्रेसिव, एनीवेयर अदर कंप्रेसिव. सो ओके, गो टू दिस फर्स्ट 13, इसके बारे में बाद में बात करते हैं. अब ये फॉर्मूला आपको जो है वो डायरेक्टली पूछा गया है. समटाइम्स वी डोंट रिमेंबर इट, बट मे बी ही कैन आस्क यू. आई होप यू हैव गॉट दैट. या दो ही तरीके हैं इसके निकालने के, या तो याद रख लो इसको, आइदर यू रिमेंबर इट डायरेक्टली, या तो फिर क्या करो, जो बेसिक है वहां से स्टार्ट करके निकालना पड़ेगा. बिकॉज यू नो ये बेंडिंग स्ट्रेस के लिए इक्वेशन है, यू ऑलरेडी नो दिस. सो फॉर एग्जांपल ये गियर टूथ है, द सेम जो हमने डिस्कस किया, ये समथिंग दिस वे, और ये एफ टी जो हमने अप्लाई किया इसमें,
लेट्स से ft जो लग रहा है यहां पर, और ये आपको पता है दिस इज h हाइट है, और ये बेस का जो ये वाला जो इसका है वो b है, विड्थ ऐसे जाएगी, जो ये वाला पोर्शन है विड्थ। सो b जो टर्म आ रहा है बेंडिंग bt, हाँ, he is calling h and okay, so this is how he is taking it. So okay, so अगर आप जब इसको सॉल्व करते हो, जब फाइनल निकालते हो, तो यू आर गोइंग टू हैव दैट इक्वेशन। आपने देखा होगा बेंडिंग स्ट्रेस जो कैसे लिखते हैं हम, बेंडिंग मूवमेंट डिवाइडेड बाई mb बाई I into y max, right? So over here if you see, this is the max bending stress that you calculate, that is moment of inertia at the bottom section that you are having over here, and bending moment जो अप्लाई कर रहे हो, that is ft, और जो आपका h है, and y max जो क्रॉस सेक्शन होगा यहाँ बॉटम पे, उसका जो है वो maximum distance point जो है that you calculate. So either you can go ahead with this or directly you can calculate. I think in examination hall you don't find that much time, but इसी में जब हम वैल्यू इनपुट करते हैं इस एनालिसिस की, we get this particular equation, and that equation, you know, in terms of simplified form, I'm just removing it from here, you can get it. So the way we write is something this way, right? Bending stress is equal to 6 pt. I have written ft को मैंने pt लिखा है, h divided by bt square. और यहीं से आप इफ यू रिमेंबर हम क्या करते हैं, बीम स्ट्रेंथ निकालते हैं ऑफ द गियर टूथ। बीम स्ट्रेंथ का मतलब लोड जो गियर टूथ जो कैरी कर सकता है, मैक्सिमम लोड पीटी। फॉर एग्जांपल इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं सो दैट आपको एक जो फॉर्मूला जो यू आर फैमिलियर विद, लेट मी जस्ट फाइंड आउट द पीटी। सो पीटी यू नो कैसे लिखूं मैं, सिग्मा बी यहां चला गया ये, एंड बी विड्थ इनटू ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6h, राइट। और उसको हम थोड़ी सी भी मैनिपुलेशन करते हैं, यहां पर सर्कुलर पिच से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो लेट्स से इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट, सिग्मा बी इंटू सर्कुलर पिच से मल्टीप्लाई करता हूं, उसको हमें पाई एम बोलते हैं सर्कुलर पिच, और डिवाइड कर देता हूं टी स्क्वायर इंटू 6h इंटू पाई एम सर्कुलर पिच से ही। सो ये टर्म आ जाता है। तो अगर देखो ये फॉर्मूला यू मस्ट हैव स्टडीड। फॉर एग्जांपल इसको, इस टर्म को वी कॉल दिस टर्म एज ए लुईस फॉर्म फैक्टर, राइट, जो उसने लिखा था। सो लुईस फॉर्म फैक्टर है तो उसको हम स्मॉल वाई से डिनोट कर देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है एज यू नो फॉर द पीटी, यू नो सिग्मा बी इंटू पाई वाई बी एम। पाई वाई इसको हमने नाम दिया, बी वी ऑलरेडी है पाई एम वाई। So you are already familiar with this particular formula which you may have remembered, and small y and pi we call it as a capital Y, again Lewis form factor, and this is the most popular equation that you are having in the form of a beam strength that you talk about. कहां से आया वो, इसी equation से आया कि how we can write the bending stress at the bottom of this section of this particular gear tooth. ठीक है, so that is how you can backward calculation. I think as you will go start backward तो नहीं जा पाओगे आप इतना easily. Even if you remember, you will not be able to rearrange so easily to come to the conclusion. Only way is that either you remember it directly, I think that is going to solve your purpose, right? Okay, so anyway, this is how it was directly formula based. Okay, so just go through this. This is a statement, and then you are having this question. Okay, so I will take this question and solve it over here. Okay, we are having 3-4 questions from gear this even though this is not from gear design but basic your gear जो terminology and all that वहां से आइए, just go through it. Okay, a gear set has pinion of this value has been given to you, and go ahead and first पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, इनपुट टॉर्क क्या है, that you need to find out. So gear set has a pinion with 17 teeth. So let me just write this way, number of teeth on pinion कितने हो गए 17, and teeth on gear, let's say if I'm writing it this way 42. Pinion runs at speed 1500 rpm,
ट्रांसमिट्स पावर 15 किलोवाट। नाउ इसका मतलब है कि आपने पिनियन लगाया है और पिनियन से गियर में आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हो, बिकॉज गियर जो है बड़ा है आपका। ही हैज वेरी क्लियरली सेड कि व्हाट यू आर डूइंग इज 15 kilowatt power which is available at the pinion end, which is rotating at this, is getting transmitted to the other gear. The teeth are of 20 degree full depth system, so you know pressure angle जो दिया गया है आपको, that is 20 degree full depth and have a module of 3 mm. ये इंफॉर्मेशन आपको दी है। एंड इनपुट टॉर्क कितना है? व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द इनपुट टॉर्क, सो व्हेन वी आर सेइंग, सी पावर ट्रांसमिशन की जब भी बात होगी तो पावर, तो जो भी इसमें, इफ वी से आइडियली व्हाटएवर द पावर दैट इज अवेलेबल ओवर हियर इज गोइंग टू विल बी गोइंग इनटू द गियर, या गियर से हम पिनियन में ट्रांसमिट करें और फ्रॉम पिनियन टू गियर, तो पावर तो वही रहेगी, उतनी ही ट्रांसमिट होगी, प्रोवाइडेड अगर हम लॉसेस को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जीरो कर देते हैं और सिंपली से द टोटल पावर अवेलेबल एट एनी पर्टिकुलर गियर आई कैन ट्रांसमिट टू द अदर। तो पावर के टर्म में व्हेन वी टॉक अबाउट, पावर तो सेम ही रहेगी, चाहे इसमें से इसको ट्रांसफर करो या इसमें से इसमें करो, आइडियली, राइट। बट व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, टॉर्क कैन नॉट बी द सेम। रीजन बीइंग, जब पावर ट्रांसमिट कर रहे हो, जो फोर्स यहां पर लग रही है, फोर्स तो आपकी सेम रहेगी दोनों में, चाहे ये गियर टूथ इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है या इसका गियर टूथ जो इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, फोर्स इज सेम, बट रेडियस इज डिफरेंट। सिंस रेडियस इज डिफरेंट, तो टॉर्क क्या होगा? डिफरेंट होगा। यहां पर टॉर्क अवेलेबिलिटी अलग है और यहां पर टॉर्क अवेलेबिलिटी अलग है, बिकॉज आर यहां पर कैपिटल आर है, यहां पर स्मॉल आर है। तो इसका मतलब है कि द डिफरेंस दैट इज गोइंग टू बी ओवर देयर इज ऑन द स्पीड एंड ऑन द टॉर्क। हाउ यू कैन राइट आउट द पावर? बताओ जरा, पावर कैसे लिख सकते हो? पावर आप ऐसे लिखते हो 2 पाई n। अगर मैं लेट्स से पावर आई एम राइटिंग इट ऑन द पिनियन साइड, तो मैं पहले पिनियन साइड के लिए लिखता हूं 2 पाई n। तो n किसका? पिनियन का। ये जो दिया गया है आपको, ये पिनियन का दिया गया है। तो पिनियन रन्स एट दिस, सो 2 पाई n। तो टॉर्क भी किसके ऊपर होना चाहिए? पिनियन के ऊपर। रेस्ट आई कैन डिवाइड इट बाय 60 टू कन्वर्ट इट इनटू, नहीं डिवाइड इनटू वॉट। सो ये मेरी जो है वे है रिप्रेजेंटिंग द पावर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द पावर एट वन एंड, लेट्स से पिनियन के एंड पे मैंने बात की। तो ये पावर जो है गियर के लिए भी सेम ही होगी as we are talking, but only difference क्या होगा? Let's say if I want to write it for the gear 2 पाई, तो इसमें मुझे स्पीड किसकी लिखनी पड़ेगी? अब स्पीड गियर की लिखनी पड़ेगी, क्योंकि गियर के टर्म में बात कर रहा हूं। तो टॉर्क किसके ऊपर होगा? गियर के ऊपर कितना टॉर्क अवेलेबल है, डिवाइड बाय 60। सो आई कैन राइट द पावर इक्वेशन आइदर फॉर द पिनियन दिस वे, प्रोवाइडेड ये दोनों वैल्यूज जो है वो पिनियन के लिए हैं। सेम आई कैन राइट द पावर इक्वेशन फॉर द गियर एज वेल एज, ओनली डिफरेंस इज गियर का जो है क्या होगा? स्पीड होनी चाहिए और टॉर्क होना चाहिए, और दोनों सेम रहेंगे। देखो ये टर्म सेम रहेगा, बाकी तो सेम है, तो ये सेम कैसे रहेगा? ये दोनों टर्म सेम कैसे रहेंगे? सी पिनियन एज यू नो इज रोटेटिंग विद व्हाटएवर स्पीड, तो गियर की स्पीड क्या होगी? कम। पिनियन ज्यादा रोटेट करेगा तो गियर कम रोटेट करेगा, बिकॉज गियर का डायमीटर क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब है इन दिस केस व्हाई दिस वैल्यू, दिस टोटल वैल्यू एंड दिस टोटल वैल्यू विल बी सेम। रीजन बीइंग कि जब गियर के ऊपर बात करेंगे तो गियर की स्पीड क्या होगी? कम। किसके कंपैरिजन में? इसकी। तो यहां पर पिनियन की स्पीड जो है वो ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, वेयर एज इन दिस इक्वेशन गियर की स्पीड क्या होगी? कम होगी, बिकॉज गियर साइज बड़ा है, ये 2 बार रोटेट करेगा और इसका डबल साइज है तो एक बार ही रोटेट करेगा। सेम वे टॉर्क ऑन पिनियन, व्हाटएवर द टॉर्क ऑन पिनियन। अब देखो अगर ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू कम हो रही है, तो बैलेंस कब होगा? अगर ये वैल्यू ज्यादा जाएगी तभी बैलेंस हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगा? टॉर्क तो कम होगी। तो इट मींस टॉर्क ऑन द पिनियन एंड यहां पर जो कम होगा, बिकॉज रेडियस जो कम है तो इसलिए ये कम होगा, बट ऑन द गियर साइड ये वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। सो दिस एंड दिस कंबाइंड टुगेदर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। सो पावर इक्वेशन में ध्यान रखना है हमेशा, ये दो टर्म का डिफरेंस आएगा। पिनियन साइड पे स्पीड ज्यादा होती है, गियर पे कम हो जाएगी, और टॉर्क पिनियन साइड पे कम होगा, गियर साइड पे ज्यादा होगा। रीजन बीइंग कि आपका जो टॉर्क आर्म बढ़ा रहे हो, रेडियस बढ़ रहा है। एज सिंपल एज दैट। इन टर्म्स ऑफ पावर दोनों में पावर सेम होगी, आइडियली 100% एफिशिएंसी के ऊपर। नाउ गियर की मैं बात नहीं करूंगा, बिकॉज ही हैज गिवन मी द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पिनियन, तो मैं यहीं से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये क्या पूछ रहा है? इनपुट टॉर्क। इनपुट टॉर्क का मतलब ये है, ही इज टॉकिंग अबाउट द टॉर्क व्हिच इज अवेलेबल एट द पिनियन, क्योंकि पिनियन के थ्रू ही बात कर रहा है अभी, ये गियर की बात ही नहीं की। तो पिनियन में इतने में रन कर रहा है तो कितना अवेलेबल है, तो यू कैन फाइंड इट आउट। सो आई एम जस्ट रिमूविंग इट नाउ, सो राइट इट नाउ ओवर हियर। सो पावर जो है आई कैन राइट इट 2 पाई n पिनियन इनटू टॉर्क एट पिनियन डिवाइडेड बाय 60। राइट दिस वैल्यूज। पावर
नो पावर क्योंकि उसने किलोवाट में दिया है तो मैं वॉट में लिख रहा हूं, वॉट 10⁻³ तो इसका मतलब है कि यहां पर भी मेरी वैल्यू, इसको मैंने, यू कैन राइट इट 60 में भी करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली आप ऐसे लिख लो 2 पाई n पिनियन टॉर्क ऑन पिनियन। 60 से इसलिए डिवाइड करते हैं कि मैं जो है स्पीड जो आरपीएम में दी होती है तो रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करनी होती है। आई कैन राइट इट दिस वे आल्सो, लेट्स से दिस बिकम्स न्यूटन मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू आ गई मेरी वॉट में, न्यूटन मीटर पर सेकंड, जूल पर सेकंड में आ गई। अब उस तरफ जो है यूनिट सेट करते हैं, 2 पाई स्पीड किस में है, रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो मुझे क्या कितने जूल पर सेकंड में चाहिए, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से मिनट को कन्वर्ट करने के लिए, तो रेवोल्यूशन पर मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरी वैल्यू आ गई रेवोल्यूशन पर सेकंड। एंड ओवर देयर टॉर्क ऑब्वियसली मैंने निकालना है, सो दैट वैल्यू शुड बी इन न्यूटन मीटर, टॉर्क ऑन पिनियन, इनपुट टॉर्क, सो ये होगी मेरी रेवोल्यूशन पर सेकंड और ये होगी मेरी न्यूटन मीटर में आएगी, क्योंकि यहां पर मेरा ऑलरेडी न्यूटन मीटर पर सेकंड है। दैट्स ऑल। ओके, सो नाउ इफ दैट बी द केस, सो मेरी वैल्यू क्या आ गई, टॉर्क ऑन पिनियन और एट द इनपुट एंड कितना है, कैलकुलेट कर लो, आई थिंक ये कितनी है 95 पॉइंट, आपने कहा ऑलरेडी 54, 95.54 न्यूटन मीटर, दैट्स ऑल। अब ये इंफॉर्मेशन मेरी नेक्स्ट पे भी जाएगी जो कि मुझे यूज करनी पड़ेगी, राइट, सो दिस इंफॉर्मेशन विल गेट डिलीटेड। अगर आपने लिखनी है नोट डाउन कर लो, इमीडिएट स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जैसे ही मैं जाऊंगा दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी omitted, so I will not be having that information with me. So module 3 दिया and 5. अब let's go to the next question now based upon the same information. What it says, the total length of tooth contact, total length of tooth contact किसके in the line of action. So what is basically he is asking, क्या पूछ रहा है, वो पूछ क्या रहा है, ये बेसिकली लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट पूछ रहा है आपसे, ही इज आस्किंग यू द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो पिनियन गियर अरेंजमेंट जब है तो उसमें लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट पूछ रहा है ये एज पर दिस, एंड उसके लिए यू शुड हैव द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये फॉर्मूला आपको, आई होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी टोटल लेंथ ऑफ टूथ कॉन्टैक्ट इन लाइन ऑफ टूथ कॉन्टैक्ट, सो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट पूछ रहा है, so length of path of contact is equal to RA square minus R square cos square phi minus R sin phi। ये लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट होती है जब पिनियन ड्राइवर है, जस्ट रिवाइज दोस फॉर्मूलाज, और RA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, बहुत सिमिलरिटी है इसमें दोनों में, फर्क ये है कि आपका एक केस में पिनियन के लिए आएगी, दूसरे केस में गियर के लिए, माइनस R साइन फाई, दैट्स ऑल, ठीक है। सो देखो इस ये और ये सेम ही है, द डिफरेंस बीइंग ये वाला पोर्शन जो है इसमें जो है इट इज इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल R, दैट इज इन टर्म्स ऑफ द गियर डायमेंशन, इन टर्म्स ऑफ पिनियन डायमेंशन, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट इज व्हाट आर दीज वैल्यूज, ये जो RA है दैट इज द एडेंडम सर्कल रेडियस ऑफ द गियर, गियर का एडेंडम सर्कल रेडियस, एडेंडम कौन सा होता है, ये वाला डिडेंडम, ये, सो एडेंडम सर्कल रेडियस बोलता है कितना है गियर का, सेम वो पिनियन के लिए भी जो आउटर मोस्ट सर्कल होगा, ठीक है। सो ओके, सो व्हाट इज दिस इज RA, ये RA है आपका, एंड RA जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द पिच सर्कल रेडियस, पिच सर्कल रेडियस, एंड बिकॉज यू आर हैविंग फुल डेप्थ विथ 2 phi is equal to 20 डिग्री फुल डेप्थ, सो 20 डिग्री फुल डेप्थ के लिए मेरे इंपॉर्टेंट क्या है, RA कितनी होगी, आप बोलोगे ये कितना है, सो ये जो है दिस इज एडेंडम,
This value is addendum. So R plus addendum is equal to RA. Same is the situation for pinion also. So ये अगर मैं कहता हूं कि this is RA small RA and this is R small r, then this is the addendum for what? Pinion. So RA over here is going to be pitch circle radius of pinion into addendum. So I need to find out addendum, and addendum is going to be same for both of these particular gears, whether gear or pinion. Now 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम के लिए जो एडेंडम की वैल्यू है, स्टैंडर्ड एडेंडम की वैल्यू है, द स्टैंडर्ड एडेंडम इज इक्वल टू 1 मॉड्यूल, एक मॉड्यूल के बराबर है. सो ये जो वैल्यू है एडेंडम की, ये और ये, दैट इज, ध्यान रहे गियर टूथ साइज सेम रहेगा, चाहे पीनियन है चाहे गियर. तो मैंने जस्ट टू डिफरेंशिएट करना है आपको, राइट. सो साइज छोटा हो जाएगा गियर का, पर गियर टूथ ओवरऑल साइज जो है दोनों का सेम रहेगा, वेदर इज पिनियन और गियर. छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा ये, राइट. ये ध्यान रखना है, ये जस्ट कि हाँ आपको बताने के लिए कि गियर छोटा है. नाउ गियर टूथ साइज, गियर का साइज, सॉरी टूथ का जो साइज है, चाहे पिनियन के ऊपर है चाहे गियर के ऊपर है, वो सेम रहेगा. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ओवरऑल डायमीटर कम हो जाएगा, राइट. ये ध्यान रखना है. सो ओनली देन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू कुड बी सेम. सो एडेंडम जो है, स्टैंडर्ड एडेंडम आपका इतना है. अब पहले तो मॉड्यूल निकाल लो और स्टैंडर्ड एडेंडम वहां से आ जाएगा ये वैल्यू. हाउ यू फाइंड आउट द एडेंडम, सॉरी मॉड्यूल इसको डी बाई टी, और या तो पिनियन के लिए या गियर के लिए, या डी बाई टी. गियर के लिए वो लिख सकते हो आप, ये पिनियन के लिए मॉड्यूल इज गोइंग टू रिमेन सेम फॉर बोथ ऑफ देम. पिनियन और टीथ ऑन पिनियन, यू कैन राइट इट फॉर गियर एज वेल एज द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, बट मेरा काम चल जाएगा पिनियन से ही. सो वैल्यू, क्योंकि उसने ऑलरेडी देखा है नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन 17 दिए हुए हैं, and what is the diameter of pinion do I have? Oh sorry, ये मैं डायमीटर निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी. एनीवे आई ऑलरेडी नो, सॉरी, मुझे ऑलरेडी दिया उसने, क्या दिया, मॉड्यूल तो दिया उसने, कितना 3 mm दिया है ना. तो मॉड्यूल ही हैज गिवन यू में 3 mm, तो ये हो जाएगा 3 mm. तो एडेंडम अपने आप में कितना होगा, एक मॉड्यूल के बराबर, बिकॉज स्टैंडर्ड एडेंडम इन केस ऑफ 20 डिग्री फुल डेप्थ में जो है इट इज इक्वल टू 1 मॉड्यूल. सो ये एक मॉड्यूल जो है 3 mm के इक्वल है, तो ये 3 mm आ गया. एनीवे दिस इज डन. नाउ माय जॉब इज टू फाइंड आउट व्हाट, आर और आर निकालना है और आर ए और आर ए निकालना. बट एनीवे यू नो दिस, आर ए क्या हो जाएगा, जो मैंने लिखा है वहां पर, आई कैन फाइंड इट आउट. आर ए विल बी इक्वल टू आर इंटू एडेंडम. एडेंडम मतलब वो 3 हो जाएगा जो हमने एडेंडम निकाला है, आर प्लस 3. सेम वे आर ए विल बी इक्वल टू स्मॉल आर प्लस 3. तो मुझे कैपिटल आर और आर निकालना है, और कैपिटल आर क्या है, पिच सर्कल डायमीटर. पिच सर्कल डायमीटर निकालना पड़ेगा मुझे गियर का और पिनियन का. तो हाउ आई कैन फाइंड आउट. सो ये जो मॉड्यूल की जो मैं लिखने लगा था, डायमीटर ऑफ पिनियन और नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, यहां से निकाल सकता हूं टीथ ऑन पिनियन. तो मुझे क्या चाहिए, आई नो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, मॉड्यूल मुझे पता है, डायमीटर ऑफ पिनियन आई कैन फाइंड आउट. सो डायमीटर ऑफ पिनियन इज गोइंग टू बी मॉड्यूल इनटू व्हाट, दैट इज मॉड्यूल 3 है और इस 17 है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, डायमीटर को कैसे लिखता हूं, 2 इंटू आर. ठीक है. और यहां पर डाउन देयर ओवर देयर मॉड्यूल इज 3 एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इज 17. तो यहां से मेरी आर आ जाएगी वैल्यू. सो हाउ मच इज दैट, दैट इज द रेडियस, पिच सर्कल रेडियस ऑफ दिस पिनियन. आर स्मॉल आर मेरा कितना आ गया, 25.5. चेक कर लो इसको साथ साथ, 25.5 mm. सेम वे मॉड्यूल जो है वो, दैट इज फॉर गियर एज वेल एज फॉर पिनियन, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम. अलग नहीं होता, वो सेम होता है. बोथ द गियर्स, वेदर इज पिनियन और गियर, जो भी गियर सेट हम साथ में लाते हैं, दैट इज गोइंग टू हैव सेम मॉड्यूल. उन दोनों का मॉड्यूल क्या होता है, सेम होता है. तो मॉड्यूल आई कैन राइट दिस वे आल्सो, दैट इज डायमीटर ऑफ गियर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर. सो दैट वे अगेन डायमीटर ऑफ, उसको लिख सकता हूं मैं, डायमीटर ऑफ गियर एज 2 टाइम रेडियस ऑफ गियर इक्वल टू नंबर ऑफ मॉड्यूल कितना है, 3. मॉड्यूल भी सेम होगा वेदर फॉर पिनियन और गियर, ओनली देन दे कैन मीट. मॉड्यूल नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, गियर में कितने हैं, 42 उसने ऑलरेडी दिए हुए हैं. सो फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू हैव आर. आर कितना आ गया मेरा, जस्ट चेक इट आउट. कैपिटल आर इज 63 mm. दैट्स ऑल. सो आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, आर ए क्या है 66 mm, एंड स्मॉल आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज द 28.5 mm. दैट्स ऑल. बाकी तो आपने इसमें वैल्यू इनपुट करनी है. जस्ट इनपुट द वैल्यू इन द होल इक्वेशन एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट. सो ये जो वैल्यू आएगी, जस्ट आई एम नॉट राइटिंग दिस वैल्यूज बिकॉज़ आई हैव फाउंड आउट आर 5, आपको 20 पता है, आर ए स्मॉल आर ए आई हैव ऑलरेडी गॉट इट फॉर यू. जस्ट इनपुट ऑन दिस इक्वेशन एंड आई एम गोइंग टू हैव लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट
विल बी इक्वल टू, ये जो टर्म आएगा मेरा, ये टर्म आएगा मेरे ख्याल एज पर 7.6297 प्लस जो दूसरा टर्म आएगा दैट इज गोइंग टू बी 6.709 and the total value is going to be 14.338 mm. So ये आ गई मेरी length of path of contact, length of tooth contact in the line of action. You know already, ये जो जब गियर टूथ मिलते हैं आपके, तो they are going to have, just to make you recall, और कुछ नहीं, I will not explain it, but these are the base circle. You know, let's say ये लार्जर गियर है, तो ये जो है टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं हम, इनके इसको इन्वोल्यूट्स, इन्वोल्यूट गियर्स, ये जो है लाइन है, इसके अलोंग क्या है, इसको बोलते हैं लाइन, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी लेंथ नहीं, लाइन ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ एक्शन। इस लाइन के अलोंग जो है वो आपका क्या होता है, गियर टूथ दे मेट विद ईच अदर, एंड जो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, लेट्स से इट कॉन्टैक्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, यहां पर आपका पिच पॉइंट है, बिकॉज पिच सर्कल यहां से पास होंगे, ये बेस सर्कल शो किए गए, ये बेस सर्कल फॉर पिनियन फॉर गियर, और जो पिच सर्कल है वो वो यहां पर पिच पॉइंट से होंगे। सो और जो कॉन्टैक्ट टर्मिनेट होगा, लेट्स से ये, तो कॉन्टैक्ट स्टार्ट हुआ यहां से, टर्मिनेट हुआ यहां पर, या कॉन्टैक्ट स्टार्ट हुआ यहां से, टर्मिनेट हुआ यहां पर, तो ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टोटल लेंथ ऑफ टूथ कॉन्टैक्ट, सो टूथ जो दो टीथ हैं, दे रिमेन कॉन्टैक्ट फ्रॉम हियर टू हियर, सो हाउ मच इज दैट, ये हमने फाइंड आउट किया। तो एक को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच, दूसरे को बोलते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस, दैट यू मे बी नोइंग। एनीवे, ये तो हो गया मेरा this one. Then there is another question which is related to contact ratio of the contacting tooth. What is the contact ratio? Contact ratio is the number of pair of teeth in contact. कितने pair of teeth contact में हैं, तो वो कहां से आता है, you need to have length of arc of contact divided by cos of phi, that becomes the, no, not cos of phi, circular pitch, right, that becomes your contact ratio. So now I am removing it, I need only this much information, ये वाली information की मुझे जरूरत पड़ेगी लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको मैं यूज करूंगा, दैट्स ऑल। ओके, सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, contact ratio of the contacting tooth, that is नंबर, कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होती है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट, कितने पेयर ऑफ टीथ जो कॉन्टैक्ट में है, तो कॉन्टैक्ट रेशियो, यू नो हाउ डू यू राइट, कॉन्टैक्ट रेशियो इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ ऑफ, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ये फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच, यही आपका फॉर्मूला है। जस्ट आपने इसमें क्या करना है, वैल्यू इनपुट करनी है, दैट्स ऑल। एंड how do you find out the length of arc of contact in terms of length of path of contact? So length of arc of contact is equal to, sorry, length of arc of contact is equal to length of path of contact divided by cos phi. So isko मैं I can write this way also, length of path of contact divided by cos phi, and phi m तो आपका है ही यहां पर सर्कुलर पिच, यू नो, cos phi and multiplied by what, p तो आएगा ये आपका pi m, that is circular pitch is pi m, that's all. So length of path of contact you have already found out, कितना है वो, length of path of contact 15 point, sorry नहीं 14.338, ये आपने लास्ट क्वेश्चन में निकाली ये, and cos of phi that is 20 डिग्री multiplied by what, पाई इंटू एम, सर्कुलर पिच कितनी दी हुई है, सॉरी मॉड्यूल कितना दिया गया, 3, ये, सो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कॉन्टैक्ट रेशियो, कॉन्टैक्ट से नंबर ऑफ पेयर ऑफ टीथ, सो ये वैल्यू बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, नॉट कोई डायमेंशन नहीं आएंगे इसमें, सो इट इज गोइंग टू बी 1.619, ये मेरा आ गया कॉन्टैक्ट रेशियो, दैट इज द मोर देन वन पेयर ऑफ टीथ विल बी इन कॉन्टैक्ट, ये मतलब हुआ इसका, more than one pair of teeth will be in contact. तो ये फॉर्मूले आपको क्लियरली पता होने चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट सर्कुलर पिच कितना है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट किसके बराबर होती है, कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होती है, एंड ऑल दैट यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट। The next question, I think that is also the part of this. सिंपल है वो तो, और ध्यान रहे इस
टॉपिक में से इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। सिंपल जो आपका ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं गियर टूथ की, स्पर गियर टूथ की, उसी के बेसिस पे फॉर्मूले सॉरी क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड, राइट। सो इफ यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उनकी क्लैरिटी है, तो यू कैन। फिर सेइंग सेंटर डिस्टेंस फॉर द बाउ गियर सेट। सेंटर डिस्टेंस क्या है? यू नो पिच सर्कल जो है वो क्या करते हैं, दे कम एंड मीट एट पिच सर्कल ऑफ गियर एंड पिनियन। दे मीट ईच अदर एट वेयर? दे मीट एट ये। सो ये पिच सर्कल डायमीटर है किसका? पिनियन का। ये पिच सर्कल है किसका? गियर का। दोनों जो है दे विल मीट एट पिच पॉइंट। ये हमें पता है। रेस्ट बेस सर्कल तो इससे छोटा होगा, बेस सर्कल यहां जैसे कहीं होगा, इसका बेस सर्कल कहीं पे यहां नीचे होगा, और टेंजेंट उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन ऑफ एक्शन आ जाती है, एज यू नो। सो इसका मतलब ये है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, आई नीड टू नो द रेडियस, पिच सर्कल रेडियस ऑफ दिस गियर एंड पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन, व्हिच आई नो। आर और आर मुझे पता ही है, तो सेंटर डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर प्लस पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन, एज सिंपल एज दैट। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आर हमने कैलकुलेट किया था 63 और स्मॉल आर वाज 25.5। सो ये वैल्यू आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की आ जाएगी 85.5। बहुत फ्रिक्वेंटली सेंटर ऑफ डिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है कई बार। सो ये जितने भी हैं आपका कॉन्टैक्ट रेशियो, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन तो नहीं फ्रेम किया है उसने, बट देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली वो वेंचर करेगा उस एरिया में। हाँ, आपका कॉन्टैक्ट रेशियो हो गया, सिंपली मॉड्यूल निकालो, कई बार नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर निकालो, समथिंग सेंटर डिस्टेंस निकालो, ये इस तरह के क्वेश्चंस आप यू आर गोइंग टू फाइंड वेरी फ्रीक्वेंटली इन योर गेट एग्जामिनेशन। ओके ओके, डन। सो लेट्स देन गो टू द नेक्स्ट वन ओवर देयर। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा हटके है ये, तो इसके लिए आपने स्टडी तो नहीं किया होगा, बट एटलीस्ट आप उसको कैसे निकालना है उतना सीख लो। थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी है, बट आई थिंक अदर पार्ट यू डोंट स्टडी नॉर्मली। सो इसमें क्या दिया है इसने? देखो, पहली बात तो ये है, ये आपको पता नहीं चलेगा क्या लिखा है इसने, राइट। फॉर टिप सर्कल ऑफ 100 टीथ एंड ऑल दैट, वो दिया है पर ईयर, तो बोलता है ये कैलकुलेट करो। पहली बात तो ये है कि ये जो ऐसे लिखते हैं वैल्यू, ये अल्फा यहां पर ना, अल्फा डैश इसने जो यूज किया है यहां पर टर्म, अल्फा डैश उसने यूज किया है ये, दिस इज फॉर प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल एट द टिप। यहां पर जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया उसमें वो क्या कर रहा है, अल्फा को प्रेशर एंगल बोल रहा है। प्रेशर एंगल दैट यू फाइंड, जो कि आप उसके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर का जो प्रेशर एंगल है जो फाइंड आउट करते हैं, वो प्रेशर एंगल दैट जो आपको, जिसको आपको आप फाई बोलते हो आप। ओके, तो जो प्रेशर एंगल फाई है जो आपको बोलते हैं, उसको डिनोट करता है वो अल्फा से, यहां पर जो डिनोट किया उसने। एंड अल्फा डैश जो है, जो यहां पर यूज करेगा वो जो यूज किया रहता है उससे, कि टिप सर्कल के ऊपर पिच सर्कल प्रेशर एंगल कितना है। अगर मैं टिप सर्कल के ऊपर प्रेशर निकालता हूं, टिप सर्कल प्रेशर सर्कल, टिप सर्कल दैट इज एडेंडम सर्कल, प्रेशर एंगल, उसको उसने अल्फा डैश से डिनोट कर दिया। क्लियर? टिप सर्कल पे जो अगर हम बात करें प्रेशर एंगल निकालने के लिए, एज पर हिज टर्मिनोलॉजी, उसने क्या नाम दे दिया उसको, अल्फा डैश दे दिया। सो इफ यू सी फॉर टिप सर्कल, तो इसका मतलब है जो अल्फा डैश है दैट इज द टिप सर्कल प्रेशर एंगल है। नाउ अब क्या पूछ रहा है आपसे, वो बोलता है इट लुक्स लाइक इनवर्स, बट ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है ना, अगर आप गियर डिजाइन एक्चुअल में जाओगे तो वहां पर ये टर्मिनोलॉजी होती है, इसको बोलते हैं INV, इनवॉल्यूट, इनवॉल्यूट ऑफ दिस। बेसिकली जो इनवॉल्यूट प्रोफाइल है उसके लिए टर्म काइंड ऑफ एंगल जो डिफाइन किया गया वो दैट इज द इनवॉल्यूट। सो ये बेसिकली क्या है, इनवॉल्यूट डैश का मतलब हुआ इनवॉल्यूट ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल। एम आई क्लियर? सो व्हेनेवर इट इज मेंशन्ड इन गियर टर्मिनोलॉजी दैट इनवॉल्यूट, तो इनवॉल्यूट का मतलब सॉरी INV पर्टिकुलर एंगल, तो आप बोलोगे इनवॉल्यूट। इनवॉल्यूट मतलब उस इनवॉल्यूट प्रोफाइल के लिए जो एंगल डिफाइन किया गया वो ये है। एम आई क्लियर? तो पहली बात तो ये है कि आपको क्या करना है, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए INV क्या है और ये एंगल किसकी बात कर रहा है। अगर वो इस केस में सिंपली अल्फा लिखेगा तो नॉर्मल जो प्रेशर एंगल होगा वो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, इनवॉल्यूट अल्फा, लेट्स से इफ ही टॉक्स दिस वे, तो इसका मतलब है कि इनवॉल्यूट ऑफ विच एंगल,
पर्टिकुलर दैट प्रेशर एंगल जो नॉर्मली हम फाई डिनोट करते हैं। बट अगर वो इनवॉल्यूट लेटर से फाई डैश है तो देन ही मस्ट बी गिविंग यू क्लैरिटी लाइक ही हैज गिवन यू क्लैरिटी लाइक टिप सर्कल के लिए है वो, तो ऑब्वियसली दैट डैश इज फॉर टिप सर्कल। एम आई क्लियर? तो इतनी क्लैरिटी अगर आपको है देन आई थिंक वी कैन प्रोसीड अहेड। तो पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है, उसके लिए यू नीड टू हैव टू थिंग्स। अगर मैं इसको डिनोट करूं अल्फा डैश, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो मैं यहां पे वैल्यू लिख देता हूं, अल्फा डैश इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ठीक है। तो ये जस्ट राइट डाउन दिस फॉर्मूला समवेयर, इसको लिख लो, फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो कहीं पे कि मैंने, चाहे ये अल्फा के लिए होती वैल्यू चाहे इसके लिए होती है, बट मुझे इसने पूछा है इसके लिए टिप सर्कल के लिए, तो आई कैन राइट इट दिस वे। टिप सर्कल प्रेशर एंगल के लिए मेरी वैल्यू आ गई ये। अब इसमें देख लो क्या है, ये जो डीबी है आपको यू ऑलरेडी नो दैट इज द डायमीटर ऑफ द बेस सर्कल। पिच सर्कल अगर ये है, ये पिच सर्कल है, तो बेस सर्कल आपका गियर का ये हो जाएगा, इसका बेस सर्कल ये हो जाएगा। तो ये डायमीटर है बेस सर्कल का, बेस सर्कल का उस गियर के लिए या पिनियन के लिए, वो जो है हमारा उसको बी से डिनोट कर देंगे हम, ठीक है। एंड दिस इज द एडेंडम सर्कल। तो एडेंडम सर्कल तो आपको पता है ये तो पिच सर्कल है, तो पिच सर्कल के बाहर एक और सर्कल होता है जो आउटर मोस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? सो वो एडेंडम सर्कल डायमीटर। क्लियर? तो ये दो टर्म आप निकाल भी सकते हो, यू कैन कैलकुलेट इट एंड वी विल बी एबल टू। एक तो हो गया ये। तो ये पार्ट, कई बार देखो एक क्वेश्चन हम करेंगे समवेयर, बाकी जो क्वेश्चन में उसमें केवल उसने यही पूछा है, इतना सा ही पूछा है, तो ही विल टर्मिनेट इट ओवर देयर। सिंपली ही फ्रेम्स द क्वेश्चन एंड आस्क यू टू कैलकुलेट दिस मच कि टिप सर्कल प्रेशर एंगल निकालो, बात खत्म कर देगा वो। तो टिप सर्कल प्रेशर एंगल आप ये निकालोगे, बात खत्म कर दोगे। बट यहां पर इसने क्या पूछा है, इसका भी इनवॉल्यूट। तो वो जो इनवॉल्यूट का फॉर्मूला है एक, दैट यू नीड टू नो। सो या तो हो सकता है आपको क्या दे दे वो, फॉर एग्जाम्पल उसको थोड़ा सा कंडेंस करके, व्हाट ही मे डू, आपको टिप सर्कल प्रेशर एंगल दे सकता है, मतलब यू डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस, ये दे दिया और आपको बोल दिया उसने कि इनवॉल्यूट ऑफ दिस निकालो, सिंपली दैट आल्सो कैन बी डन। सो कैसे निकालना है आपने वो मैं लिख देता हूं यहां पर, आपको इनवॉल्यूट कैसे निकालते हैं, इनवॉल्यूट ऑफ लेट्स से इस केस में अल्फा डैश है, तो आई एम डिनोटिंग विद दैट टेंजेंट, मैंने डिनोट दूसरी टर्मिनोलॉजी में किया है इसलिए आई एम टेकिंग टाइम। सो डैश माइनस अल्फा ए, ठीक है, और अल्फा ए, ओ सॉरी अल्फा डैश से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। और ये वैल्यू रेडियन में आ जाएगी आपकी, यहां पर जो वैल्यू आएगी आपकी ये रेडियन में आएगी अल्फा डैश की, और यहां पर उसको आप यहां इसके अंदर तो डिग्री में इनपुट करोगे, पर ये क्योंकि ये आपका अल्फा डैश है तो ऑब्वियसली ये रेडियन में होगी, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, रेडियन में होगी आपकी। सो टोटल वैल्यू आपकी रेडियन में आ जाएगी, ठीक है। बस इतना ही आपने ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला ये टू फाइंड आउट द टिप सर्कल प्रेशर एंगल एंड इनवॉल्यूट ऑफ दैट टिप सर्कल प्रेशर एंगल के लिए आपका उसको क्या कर दो, सिंपली टेंजेंट उस एंगल का माइनस दिस, और वो वैल्यू आपकी रेडियन में आ जाएगी। दैट्स ऑल, रेस्ट कैलकुलेशन पार्ट है, वो हम कर ही लेंगे। खैर आ जाते हैं अब कैलकुलेशन पार्ट पे, ये इतना याद रख लो, इसको क्रैम कर लो चाहे फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि नॉर्मल हम उसमें जो है वो क्या कहते हैं करते नहीं है, और उसने ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, इफ यू गो टू द प्रीवियस ईयर्स उसने क्वेश्चन फ्रेम नहीं किए हैं इसमें, दैट यू शुड टेक नोट ऑफ। बट क्योंकि पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत एग्जिस्ट कर सकती है कि वो कई बार थोड़ा वेंचर करो, जब डिफिकल्ट करना होता है ना उसको थोड़ा सा हटके कई बार पूछ लेता है ये, राइट। सो व्हाट आई थिंक देयर कुड बी प्रोबेबिलिटी, राइट, इसलिए इसको मैंने इसमें क्वेश्चन में ले लिया। सो अब आते हैं बेस सर्कल डायमीटर, यहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक भी होगी। अब यू नो ऑलरेडी वी हैव 100 टीथ, सो यहां पर मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, यू हैव नंबर ऑफ टीथ, उस गियर पे नंबर ऑफ टीथ 100 दिए हैं आपके, एंड फाई जो है आपका प्रेशर एंगल जो है दैट इज 20 डिग्री स्टब टीथ, 20 डिग्री स्टब टीथ, 20 डिग्री स्टब टीथ, ओके, 20 डिग्री स्टब टीथ, स्टब, एंड
फुल डेप्थ नहीं है, ध्यान रखना इसका। एंड मॉड्यूल यू आर हैविंग 3 mm पर गियर है। अब मुझे चाहिए यहां पर डायमीटर ऑफ बेस सर्कल एंड डायमीटर ऑफ एडेंडम सर्कल। डायमीटर ऑफ एडेंडम सर्कल कैसे आएगा आपका? ये पिच सर्कल डायमीटर है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं डी से, एंड ये एडेंडम सर्कल डायमीटर है, राइट। दिस इज एडेंडम सर्कल जिसको रेडियस से जैसे भी नोट करना, एडेंडम सर्कल डायमीटर, राइट। एंड व्हाट इंफॉर्मेशन डू आई नीड? ये तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं मॉड्यूल से, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू कैलकुलेट, कैसे आएगा कि जो एडेंडम सर्कल डायमीटर डी ए विल बी इक्वल टू पिच सर्कल डायमीटर ये एंड एडेंडम प्लस एडेंडम। क्लियर? एम आई क्लियर ओवर हियर? ये एडेंडम है, ये आपको पता ही ऑलरेडी, पिच सर्कल डायमीटर और जो एडेंडम सर्कल डायमीटर के बीच ये जो डिफरेंस है इसको एडेंडम बोलते हैं। तो ये प्लस एडेंडम। अब ये एडेंडम कितना होगा ये इसने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया, बट फॉर यू टू फाइंड आउट, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी उसने दी है इन टर्म्स ऑफ किस तरह का टिथ है, कितने प्रेशर एंगल का है। तो 20 डिग्री स्टब टिथ है। तो सी जो स्टैंडर्ड, इस केस में मुझे स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड एडेंडम फॉर दिस पर्टिकुलर 20 डिग्री स्टब टिथ कितना होता है। अगर उसने स्टब टिथ नहीं मेंशन किया है, 20 डिग्री प्रेशर एंगल बोल देता है, तो हम बोलेंगे 20 डिग्री फुल डेप्थ का मतलब हुआ उसका। लेट मी जस्ट रिपीट व्हाट आई सेड। अगर वो सिंपली ये बोलता है 20 डिग्री प्रेशर एंगल है जी इस गियर टूथ का, तो इसका मतलब क्या है 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट। ऑब्वियसली इनवॉल्यूट की बात कर रहे हैं, साइक्लोइडल की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जो जितने भी गियर जो प्रोफाइल्स हमने डिस्कस किए हैं, जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं पर्टिकुलरली। और अगर उसको स्टब टिथ की बात करनी है तो मेंशन करेगा 20 डिग्री स्टब टिथ। अब 20 डिग्री जो फुल डेप्थ इनवॉल्यूट होता है, फुल डेप्थ होता है जो, उसमें जो स्टैंडर्ड अडेंडम होता है, ये दिस स्टैंडर्ड अडेंडम इज इक्वल टू मॉड्यूल। स्टैंडर्ड अडेंडम इज इक्वल टू मॉड्यूल, मॉड्यूल के बराबर होता है। ओके, इसको याद रख लेना। जो स्टैंडर्ड अडेंडम है इन केस ऑफ 20 डिग्री फुल डेप्थ, इट इज इक्वल टू मॉड्यूल, वन मॉड्यूल बोल लो चाहे या मॉड्यूल बोल लो, वन मॉड्यूल के बराबर होता है। बट इन केस ऑफ 20 डिग्री स्टब टिथ, द addendum, standard addendum is equal to 0.8 टाइम्स मॉड्यूल। और ये याद रखना भी डिफिकल्ट नहीं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टब क्या होता है? उसका जो टॉप वाला पोर्शन थोड़ा सा काट दिया, स्टबल। आप जैसे दाढ़ी आपकी है, उसको अगर आप काट देते हो तो स्टबल बोल देते हैं। छोटी छोटी दाढ़ी होती है आपकी, तो उसको भी स्टबल बोलते हैं हम, राइट। सो या स्टबल आपने देखा होगा खेतों में, जो आप काट देते हो उसको क्या कहते हैं, गेहूं आपने काटी तो नीचे जो थोड़ा सा पोर्शन बच जाता है, जिसको पराली या समथिंग बोलते हैं। सो जो उसको भी स्टबल बोलते हैं, जो बच गया कटने के बाद जो बच गया नीचे घास का थोड़ा सा पोर्शन, उसको भी स्टबल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 20 डिग्री जो फुल डेप्थ इनवॉल्यूट टिथ होगा, उसको मैंने शुरू से ऊपर से करके होगा काटा होगा, थोड़ा सा प्रोफाइल तो बना दी। तो इसका मतलब है ये जो जितना है उतना ना छोड़ के थोड़ा सा काट के जो कम कर दिया, दैट इज व्हाई यू आर हैविंग 0.8 mm मॉड्यूल। इसका मतलब है ये जो है इस केस में जितना है, तो स्टब टूथ में इससे कम ही होगा। कितना होगा? 0.8 टाइम्स मॉड्यूल। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू रिमेंबर, राइट। सो इफ दैट बी द केस, तो एडेंडम जो मेरा यहां आएगा वैल्यू, दैट इज डायमीटर, बिकॉज इट इज स्टब टूथ है, तो पिच सर्कल डायमीटर प्लस एडेंडम। तो एडेंडम स्टैंडर्ड एडेंडम इसके केस में, क्योंकि ये आएगा। हैड इट बीन फुल डेप्थ तो मैंने एडेंडम कितना लिया होता? 1 मॉड्यूल। क्लियर? सो आई थिंक यू कैन रिमेंबर इट इजीली। अब लिख लो इसको। अब क्योंकि डायमीटर में है, ध्यान रहे, क्योंकि ये डायमीटर में है, तो ये कितना होगा? पिच सर्कल डायमीटर ये पिच सर्कल डायमीटर ये है। तो ये क्या? एडेंडम कौन सा है? ये और ये एडेंडम है, एडेंडम, ये एडेंडम है, ठीक है। तो जब मैंने डायमीटर ऑफ द एडेंडम सर्कल लिखना है तो क्या होगा? डी प्लस एडेंडम प्लस एडेंडम। क्लियर? तो लेट मी द डायमीटर ऑफ द एडेंडम सर्कल ट्वाइस ऑफ व्हाट? एडेंडम। तो इसका मतलब ये है डी प्लस स्टैंडर्ड एडेंडम कितना है? ओके सॉरी, मैंने गलत लिखा, इसको एडेंडम ना लिख के मैं क्या करूं, 2 टाइम्स एडेंडम लिखना चाहिए था मुझे, दैट इज 2 टाइम्स एडेंडम। ये अब ठीक लिखा मैंने। इट मींस डी प्लस 2 टाइम्स एडेंडम। एडेंडम कितना लिया मैंने? स्टैंडर्ड एडेंडम 0.8 टाइम्स मॉड्यूल, दैट्स ऑल।
क्लियर है? सो डायमीटर एडेंडम प्लस एडेंडम, तो टोटल डायमीटर ऑफ एडेंडम सर्कल कितना हो गया, जो आउटर मोस्ट सर्कल है वो इतना हो गया, 2 टाइम्स एडेंडम, और ये वैल्यू आ गई मेरी. नाउ यू नो इट, डू आई नीड टू कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे. सो ओके, शुड आई रिमूव इट नाउ? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो इसको मैं हटा रहा हूं, ये आपकी क्लैरिटी होगी. सो नाउ क्या करूं, ये निकाल लो इससे. आई कैन कैलकुलेट डायमीटर कैसे, मॉड्यूल इज इक्वल टू डी बाई टी. सो मेरा डी कितना आ गया, मॉड्यूल इंटू टी, कितना है मॉड्यूल, 3, टी कितना है 100, 300 mm, 300 mm. सो आई नो इट, डायमीटर इज, पिच सर्कल डायमीटर जो है आपका आ गया 300, 300 प्लस 2 इंटू 0.8 इंटू मॉड्यूल कितना है 3 mm. देखो कितना आया है, डी ए 2 टाइम्स 0.8 मॉड्यूल, ठीक है 1.6, 300, 304.8 mm, ठीक है. दैट्स ऑल. सो ये हो गया. तो अब क्या निकालें, बेस सर्कल डायमीटर वो निकाल सकते हो. एडेंडम सर्कल डायमीटर तो मुझे यहां चाहिए था. ये बेस सर्कल डायमीटर, यू नो कि जो बेस सर्कल है आपका, किसी भी पिच सर्कल जो आपका होता है उसको कैसे निकालते हैं, आई होप यू हैव रिलेशन. ये पिच सर्कल डायमीटर है, ये गियर किसी के भी, और बेस सर्कल तो ऑब्वियसली पिच सर्कल से नीचे ही होता है. सो ये पिच सर्कल डायमीटर है आपका, तो बेस सर्कल इससे नीचे ही होगा, ये होगा कहीं. तो अगर ये पिच सर्कल है, डायमीटर ये है, और ये डायमीटर ऑफ बेस सर्कल है, ये इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी मतलब काइंड ऑफ द सेम वे. सो बेस सर्कल डायमीटर जो है वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको पिच सर्कल डायमीटर पता है, उसको मल्टीप्लाई कर दो cos फाई से, तो आपका क्या आ जाता है, बेस सर्कल डायमीटर. तो इफ आई नो द विच आई कैन कैलकुलेट वेरी इजीली डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल, तो बेस सर्कल डायमीटर में क्या करता हूं, यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं. सो डी तो मैंने फाइंड आउट कर ही लिया 300, और cos ऑफ फाई कितना है आपका 20 डिग्री, और यहां पर मेरा डायमीटर ऑफ बेस सर्कल 281.9 mm. ठीक है, दैट्स ऑल. बस इतना ही करना है. इफ दैट इज डन, देन रेस्ट तो आपने इनपुट करनी है वैल्यू. सो आई एम जस्ट इनपुटिंग दैट वैल्यू. इनपुट करो कहां, पहले ही निकाल लेते हैं, ये अल्फा डैश निकाल देते हैं, अल्फा डैश. ठीक है. सो फर्स्ट इज अल्फा डैश, कॉस, ये वैल्यू आई आपकी कितनी, डीबी, डीबी जो है 281.9 डिवाइडेड बाई डी ए 304.8. ये मेरी वैल्यू आई डिग्री में कितनी, 22.35 डिग्री आई, और इन टर्म्स ऑफ रेडियन आ गई ये 0.3899 रेडियन. अभी यहां पर मुझे रेडियन में डालनी पड़ेगी, तो रेडियन की वैल्यू है, और यहां पर मैं डिग्री में चाहिए मुझे इसके अंदर, तो डिग्री में इनपुट करूंगा, ये वैल्यू रेडियन में आ जाएगी. सो देयरफॉर इन्वॉल्यूट ऑफ दैट इज टिप सर्कल प्रेशर, टिप सर्कल प्रेशर एंगल आ गया मेरा ये, जो कि उसने पूछा नहीं है बट पूछ सकता है, इतना ही पूछ सकता है, विच विल बी इक्वल टू, और इन्वॉल्यूट उसका कितना आ गया, टेंजेंट अल्फा डैश, दिस इज 22.35 डिग्री माइनस अल्फा डैश, ये मुझे रेडियन में लेनी पड़ेगी, टोटल वैल्यू रेडियन में आ जाएगी 0.3899. सो ये वैल्यू आई आपकी 0.41111 माइनस 0.38999, ये आ गई मेरी वैल्यू 0.02 0.0212 रेडियन. दैट्स ऑल. सो ये आपका जो क्वेश्चन है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. तो सिंपली दो चीजें आपने ध्यान रखनी है, ये मैं दोबारा करूंगा, एक क्वेश्चन में मैंने आगे ऐड भी किया दोबारा. सो दिस आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर देयर अगेन, इतना कर. पर ये जो है डेफिनेटली ये आप एक जस्ट एडिशनल 2 फॉर्मूला रख लो, इन एडिशन टू जो भी आपने नॉर्मली स्टडी किया है उसके अलावा. बट अगेन जैसे मैंने बताया, नॉट ही हैज नॉट आस्क, बट हाँ एक प्रोबेबिलिटी है इसकी कि बना सकता है थोड़ा सा, जब उसको डिफिकल्ट बनाना चाहता है पेपर को कई बार. So that probability exists. Okay. Okay. So I hope now you have got it. So now we can proceed.
Okay, so let's go to the next question now. ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ गेट में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है, बट एग्जैक्टली तो पूछा नहीं जा सकता दोबारा, बट डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसमें डेवलप हो जाएगी, दैट वे यू कैन थिंक ऑफ। सो जो भी स्पेस है इसमें हम उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, बट इसने एक थोड़ा सा जो है इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ही हैज दी नहीं है या मिस की है इस केस में। वो मिस इंफॉर्मेशन ऐसे है कि एक्चुअल जो क्वेश्चन अगर आपने गेट में भी देखा हो, अगर इफ यू हैव सीन, तो उसने इसमें वैल्यू दी है, और अगर वो वैल्यू नहीं है तो यू कैन नॉट फाइंड आउट द राइट वैल्यूज। ये जो डिस्टेंस है उसने यहां से लेके यहां तक का, ये उसने ही हैज गिवन दिस डिस्टेंस इक्वल टू मॉड्यूल। वैसे भी आप देखो इस क्वेश्चन में ही हैज नोवेयर मेंशन्ड व्हेट इज द 20 डिग्री प्रेशर एंगल है, स्टब टीथ है या फुल डेप्थ है, दिया ही नहीं है। तो अगर हम गेट में वी कैन गो बाय द अजम्पशन, ये ध्यान रखना, गेट में यू आर नॉट गोइंग टू अज्यूम एनीथिंग फ्रॉम योरसेल्फ योर साइड अनलेस और अदरवाइज इट इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू है तो गेट में आप उसको लो, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है अपनी तरफ से अजम्पशन नहीं करनी है, ठीक है। सो इन दिस केस ही हैज नॉट गिवन, या तो अगर उसने मेंशन कर दिया होता हैड ही मेंशन दैट दिस इज ए 20 डिग्री फुल डेप्थ, तो 20 डिग्री फुल डेप्थ में तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया ही क्या, एडेंडम सर्कल पिच सर्कल के बीच जो एडेंडम वैल्यू है स्टैंडर्ड वो कितनी होती है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 मॉड्यूल। तो उस केस में करेक्ट है। सो उस केस में आई हैव नो ऑप्शन, तब तो मैं डायरेक्टली अपने आप ले लेता, तब तो मॉड्यूल के इक्वली ले लेता, पर वो भी उसने इस क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है। So it means if he has not mentioned, then he has omitted the information. We are missing that information in this question. या तो ये mention कर देता, नहीं कर रहा तो यहाँ पर वैल्यू लिखता हो, because I don't know, अगर नहीं दिया कुछ भी तो 20 डिग्री फुल डेप्थ है या स्टब टीथ है मुझे क्या पता। Had it been the stub teeth तो यही वैल्यू जो क्या हो जाएगी 0.8 टाइम्स मॉड्यूल हो जाएगी। How should I decide? I cannot decide, right? तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करो, इसको लिख लो उसमें कि ये मॉड्यूल दिया है मुझे, as simple as that, दिया तभी मैं कर सकता हूं, रेस्ट ये ज्योमेट्री है। वन टूथ ऑफ, इसको मैं एग्जाजरेट कर देता हूं, और इसमें भी कर किया जा सकता है, आई कैन डू इट ओवर हियर आल्सो। ये 2 पॉइंट्स हैं, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं यहां तक, यस इट कैन बी डन, एंड अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे, सो लेट्स से दिस एंगल जो है वो थीटा है, जो गियर टूथ जो सबटेंड करता है एट द सेंटर, एंड लेट्स से आई कैन कॉल दिस एज ए बी, ठीक है। और वन टूथ ऑफ गियर हैविंग मॉड्यूल 4 mm दिया, उसने मॉड्यूल दिया है, एंड 20 टीथ इज शोन इन द फिगर। Assume that the gear tooth and the corresponding tooth space make equal intercepts on the pitch circumference. And what he says, the dimensions small a and capital B ये रिस्पेक्टिवली आपने निकालने हैं, ठीक है। अब सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ये 2-3 पॉइंट है, इनकी मदद लेके हम एक पॉइंट में यहां ले लेता हूं, राइट। सो इसको O बोल देता हूं मैं, और इसको मैंने E बोला है, इस पॉइंट को, इसको मैं C बोल देता हूं, आपके ऊपर है जो भी टर्मिनोलॉजी देनी है आपने, ठीक है। तो पहली जो इंफॉर्मेशन है, ही सेइंग दैट जो गियर टूथ जो पिच सर्कल के ऊपर, ये पिच सर्कल है, जो पिच सर्कल के ऊपर गियर टूथ जो विड्थ है वो, एंड द स्पेस भी आइडियली उतना ही होगा, दिस ऑन पिच सर्कल दिस एज वेल एज द जो स्पेस होगा दो गियर टूथ के ऊपर वो क्या होगा, देयर गोइंग टू बी सेम, आइडियली वो तो सेम ही रहेंगे। तो इफ आई से द टोटल एंगल जो सबटेंड कर रहे हैं मिल मिला के सारे, तो हाउ मच इज दैट एंगल सबटेंडेड, जितने भी टीथ हैं 20 टीथ कंबाइंड टुगेदर विद 20 स्पेसिस, 20 टीथ कंबाइंड टुगेदर विद 20 स्पेसिस, कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू सबटेंड एन एंगल ऑफ 360 डिग्री ओनली, राइट। तो इसका मतलब ये है, कैन आई से दैट द एंगल दैट थीटा दैट वी आर हैविंग ओवर हियर इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिवाइडेड बाय ये जो थीटा जो बोल रहा हूं कि एक गियर टूथ का जो
विड्थ है या स्पेस जो है दोनों सेम ही है, हाउ मच एंगल दे आर गोइंग टू सबटेंड एट द सेंटर, यू विल से 20 टूथ प्लस 20 स्पेसिस टोटल 40 कंबाइंड टुगेदर आर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। तो एक उसमें से कितना करेगा, यू विल से डिवाइडेड बाय 40। सो वन गेट जो पिच सर्कल से अगर हम लें उसको एक्सटेंड करें, इट इज गोइंग टू सबटेंड एन एंगल ऑफ 6 डिग्री, as simple as that. So theta I am able to know that, और वो कहां से आया मेरा, that I am getting sorry 9 आएगा ये, so 9 4 this, so from where that information got I this angle, I got it from the ये जो उसने लाइन स्टेटमेंट दी है कि इक्वल स्पेसिस और इक्वल टूथ विड्थ है इन द पिच सर्कल डायमीटर के ऊपर. If that be the case, then my job become easy. Now I could have this triangle because this distance and this distance, this is a by 2, b is a by 2 और AE is b by a by 2. So ये मुझे पता है. Angle I know, if I know this is let us say theta by 2 हो गया है, इस तरफ भी theta by 2, इस तरफ भी theta by 2. So then if I know this, do I know this? I don't know this. But what I need to know, ये मुझे पता है. ये क्या है? यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, what is this? Pitch circle diameter. So I know that. So मॉड्यूल मुझे पता है 4 mm है. अगेन इसने यहां पर थोड़ी सी गलती दी है. Having 4 मॉड्यूल, 4 what? I need to know this is 4 mm. करेक्शन कर लो इसको. 4 what? Module means something value. So 4 mm is given to you. So 4 mm is given to you and the number of teeth उसके ऊपर दिए गए हैं मुझे 20. So I know module is equal to d by t, which is equal to, I can get the value of what? Diameter, pitch circle diameter, which is module is how much? 4 into 20. It becomes 80 mm. Clear? तो इसका मतलब है मुझे ये जो है कॉर्ड, ये जो आपकी है रेडियस है वो कितना है, OB बोल लो या AO बोल लो, वो 80 mm है. So I know this angle, I can find out this a by 2. अगर a by 2 फाइंड आउट कर सकता हूं तो a तो मैं पता कर ही सकता हूं. So I am writing this way, sin theta by 2 can you find out? Sin theta by 2 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे परपेंडिकुलर ये है, एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये हो गया BE by, so BE by what? BE by hypotenuse OB. So OB तो आपको पता है BE कितना है, BE a by 2 है, a by 2 multiplied by OB कितना है, how much is OB? OB is radius, right? OB is radius, right? So that is going to be 40. Am I correct? That's all. So input the value. Theta is how much? Can I say 4.5? So sin 4.5, which is equal to become theta 4.5. That's all. From here you got the value of A. A की वैल्यू कितनी आ गई देखना. So A will turn out to be 6.276 mm. सिंपल ज्योमेट्री. सो पहले आप एंगल निकाल लो और रेस्ट जो है उसका ट्राइंगल्स का यूज करो, दैट्स ऑल. सो मेरा जो है ये पहले ये वाला डायमेंशन है तो इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से ले लो, आइदर यू कैलकुलेट फ्रॉम दिस ट्राइंगल और फ्रॉम दिस ट्राइंगल यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर. थीटा आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड कि कितना एक टूथ का जो पिच सर्कल के ऊपर जहां पर इंटरसेप्ट्स हैं वहां पर कितना ये एंगल बना रहा है एट द सेंटर. डन. अब बात करनी है हमने किसकी. नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट बी मुझे पता करना है, राइट? तो बी पता करने के लिए मुझे व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू व्हाट OE बाई, पहले मुझे वो करना पड़ेगा, कॉस से निकाल दिया, CE आ जाएगी मेरी. अगर CE आ गई माय जॉब इज डन. लाइक बी अगर हम बात करें तो बी इज व्हाट, बी सिंपली क्या है, ये वैल्यू प्लस m. तो बिकॉज इस केस में हम पता ही है, तो अगर मैं CE निकाल दूं, CE प्लस m, तो मेरा काम आसान हो गया. तो CE निकाल लो तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, OE निकालना पड़ेगा मुझे लग रहा है. एंड उसको R से, बिकॉज ये तो आपको रेडियस पता ही है. अगर मैं आपको बात करूं कि OC कितना है, OC यू ऑलरेडी नो, OC यू नो ऑलरेडी, OC यू नो कितना है, R ही है, R आई नो हाउ मच 40, OC आई नो दैट इज R माइनस OE करना. अगर मुझे चाहिए CE, और मुझे चाहिए CE, तो मैं क्या करना चाहता हूं, व्हाट शुड आई डू, OC माइनस सॉरी COC, हाँ ठीक है, OC माइनस OE, ठीक है, ये दैट्स ऑल. तो मुझे CE चाहिए. तो
OC I know because that is R 40. अब मुझे OE चाहिए. OE कहाँ गया? OE you can calculate. OE कैलकुलेट कर लो. OE क्या है? कॉस के बेसिस पे निकाल सकते हो. cos थीटा बाई 2. cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? बेस OE बाई हाइपोटेन्यूज. अगेन हाइपोटेन्यूज कितना? OB. सो OE कितना है? OE तो मुझे निकालना है. OE आई वांट टू फाइंड आउट. सो cos 4.5 इनटू इक्वल टू OE आई वांट टू फाइंड आउट. और OB कितना है? OB जो है मेरा R है. R मतलब इज 40. चेक करो हाउ मच इज OE. OE कितना आ गया? OE आया 39.40 इंटू कॉस दिस. तो ये आया आपका 39. मैं यहां लिखता हूं इसको थोड़ा सा. लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर. OE इज इक्वल टू 39.87667 mm. दैट्स ऑल. ठीक है. और OE आ गया तो इनपुट कर लो यहां पर. तो मेरा CE मैंने निकालना है. CE. सो CE आ गया आपका. OC इज 40 माइनस 39.8767. सो ये वैल्यू CE कितनी आ गई? CE आई आपकी 0.1233. इतने mm आ गई. रेस्ट जो है इसको ऐड कर दो. सो इसका मतलब है माई वैल्यू ऑफ B, माई वैल्यू देयरफॉर B इज गोइंग टू बी इक्वल टू CE इज हाउ मच? 0.1233 प्लस मॉड्यूल. मॉड्यूल कितना आया मेरा? मॉड्यूल 4 mm. So 4.1233 mm. Check करो. So you can just check these values. I don't know which one is that. So ये 6.2 कौन सी है ये first 4.122. तो first A is going to be the correct answer. ठीक है. तो सिंपल ये ज्योमेट्री पार्ट है इसमें नथिंग. पर ये है कि you must be comfortable. My only this concern और जो why I have to taken this question कि आप उससे कंफर्टेबल हो जाओ थोड़ा सा. Sometimes what happens is if he gives you such kind of geometry तो कई बार आप you get puzzled. Okay, how should I go ahead and all that. तो अगर आप थोड़ा सा उसको ढंग से देखोगे और सिंपल ज्योमेट्री का यूज करोगे you can come to the conclusion. So कोई जरूरी नहीं है कि he is going to frame the same question, but on similar lines if you frame the question, so you should try your level best. जैसे ही आपका मतलब स्पेयर टाइम बचेगा एट द एंड आप उसको छोड़ भी सकते हो लास्ट के लिए. And then try and you will be able to reach the conclusion. If you see, हमने कुछ खास नहीं किया. सिंपल ज्योमेट्री जो आप यूज करते हो उसी का यूज किया. Only part was that जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग थी हाउ टू फाइंड आउट दैट एंगल सबटेंडेड बाय दैट गियर टूथ. जो ये है जो आर्क है AB कितना स्पेंड कर दिया है. इफ आई एम एबल टू डू दैट देन माय जॉब इज डन. ओके. ओके. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट इट. डन. ओके. Okay, let's now go to the next one. Okay, so okay, so go through this question and try to answer. अच्छा, इसके दो तीन चीजें आई थिंक इवन दो बहुत डिटेल में तो नहीं मैं एक्सप्लेन कर सकता इसको बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम बिकॉज आपका एग्जाम भी आ रहा है एंड ऑल दैट. बट दो चीजें ध्यान रखो इसमें कि व्हेन वी हैव टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस, दो गियर्स हैं उनके बीच इंटरफेरेंस को रिड्यूस करना है. व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू व्हिच यू कैन डू दैट. इतना पता हो आपको तो योर जॉब विल बी डन. तो एक तो आपका ये है कि आप क्या कर सकते हो, सेंटर डिस्टेंस चेंज कर सकते हो. सेंटर डिस्टेंस
just increase the center distance. अगर interference हो रही है, interference as you know, when two gears are meshing with each other, then the tip of the tooth is interfering with the flank portion of the gear tooth, right? तो ये फ्लैंक पोर्शन है एज यू नो. सो इसके साथ जो दूसरे गियर टूथ है उसकी जो ये वाली टिप जो यहां पर इंटरफियर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं व्हेन दे आर रोटेटिंग. तो उसका सोल्यूशन एक ये हो सकता है कि इन दोनों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस हटा दो, तो ये वाला टिप जो है जब कांटेक्ट में आएगी यहां नहीं आएगी, कहीं ऊपर आएगी बाद में, तो ये इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट द अंडरकट ओवर हियर और समथिंग. सो वन वे इज डूइंग दैट कि सेंटर डिस्टेंस आप इंक्रीज करो. सो इंक्रीज द सेंटर डिस्टेंस, दैट इज वन वे. सेकेंड इज आप क्या करो उसका दिस फाई प्रेशर एंगल इंक्रीज कर सकते हो आप. दैट इज अनदर वे कि जो गियर टूथ प्रोफाइल है उसका जो प्रेशर एंगल है, हमने जो है लाइन ऑफ एक्शन का जो एंगल है विद द टेंजेंट टू द पिच सर्कल डायमीटर्स, उससे आप जो उस एंगल को बढ़ा दो तो भी आप क्या कर सकते हो, यू कैन रिमूव दैट. एंड अनदर वन इज द इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टीथ, अब ये कहां से ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टीथ, दैट यू कैन रिमेंबर एज यू नो, हम एक कैलकुलेट करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड टू अवॉइड इंटरफेरेंस. डिफरेंट प्रेशर सिस्टम में हम क्या करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकालते हैं कि इससे कम नहीं होने चाहिए. अगर इससे कम जाएंगे नंबर ऑफ टीथ तो इंटरफेरेंस होगी. क्लियर? तो इसका मतलब है कि अगर मैं नंबर ऑफ टीथ कम करता हूं तो इंटरफेरेंस होने के चांसेस बढ़ेंगे. इफ आई विल गो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ on the gear, then the possibility of interference will decrease. So इसका मतलब है increase the number of teeth, minimum number of teeth आप भी increase कर सकते हो. कहां से ध्यान रहेगा, जैसे मैंने कहा कि आप ऑलरेडी कैलकुलेट करते हैं कि minimum number of teeth required to create the interference, to avoid the interference rather, तो उतने कम से कम होने चाहिए. इसका मतलब उससे अगर ज्यादा है तो इंटरफेरेंस नहीं होगी, उससे और कम कर देते हो तो इंटरफेरेंस होगी. इसका मतलब द ओनली ऑप्शन दैट आई एम गोइंग टू हैव इज इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ. सो ये तीन प्रीडोमिनेंट वेज हैं by which I can avoid the interference. अब इसके बेसिस पे आप थोड़ा बहुत इसको देख लो. टूथ इंटरफेरेंस इन एन एक्सटर्नल इन्वॉल्यूट्स पर गियर, पर गियर की बात कर रहे हैं हम, कैन बी सॉरी इन्वॉल्यूट्स पर गियर की बात कर रहे हैं. कीपिंग गियर रेशियो सेम, डिक्रीजिंग द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द गियर्स. मतलब डिक्रीजिंग द सेंटर डिस्टेंस का मतलब है कि आप उनको जो ब्रिंगिंग देम क्लोज, जितना आप क्लोज ला रहे हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो टिप होगी वो क्या करेगी, डिग करेगी दूसरे के फ्लैंक में. तो ऑब्वियसली दैट वे आल्सो यू कैन थिंक ऑफ. तो अगर उसको थोड़ा सा हटाओगे आप तो इंटरफेरेंस अवॉइड कर सकते हो. इसलिए इफ यू सी 20 डिग्री स्टब टीथ इसीलिए तो बेनिफिशियल है कि फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट में तो हम बोलते हैं कि जो एडेंडम है दैट इज इक्वल टू 1 मॉड्यूल, तो स्टब टीथ में क्या करते हैं, उस एडेंडम को छोटा कर देते हैं. उससे क्या होगा, आपके इंटरफेरेंस कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जो टिप का जो टॉप वाला थोड़ा सा पोर्शन जो 0.2 है, 0.2 टाइम्स मॉड्यूल है, वो क्या अगर वो इंटरफेयर कर रहा है तो उस आपने अगर आपने मूव कर दो, उसको स्टब कर दो तो क्या होगा, एडेंडम छोटा हो जाएगा, टोटल गियर टूथ छोटा हो जाएगा. अगर छोटा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, रूट पे तक पहुंचेगा नहीं. व्हेन इट विल नॉट रीच टू द रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर अनदर टूथ गियर टूथ, देन ऑब्वियसली इंटरफेरेंस अवॉइड हो जाएगी. तो ये सेम ही नहीं है, डोंट यू थिंक इजंट इट द सेम थिंग कि अगर आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस अगर उसको क्लोज लाओगे तो यू आर ब्रिंगिंग दैट टिप क्लोज टू द रूट. अगर आप हटाओगे, दूर हटाओगे तो क्या होगा, दैट टिप विल नॉट डिग इनटू द रूट. तो इंटरफेरेंस अवॉइड हो सकती है. और उसको थोड़ा सा अगर रिलेट करना चाहो स्टब से ही रिलेट कर सकते हो कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम किया जा सकता है कि आपको जो फुल डेप्थ इन्वॉल्व दिया है और अगर स्टब टूथ दिया है तो किस केस में पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस कम होगी, तो आप बोलोगे स्टब टूथ में कम होगी क्योंकि आपने उसको क्या छोटा कर दिया, राइट. एंड डिक्रीजिंग मॉड्यूल देखो, मॉड्यूल हम डिजाइन कंसिडरेशन स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं रेदर देन वी नॉर्मली डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाते हम करते विद रिस्पेक्ट टू दिस, बिकॉज मॉड्यूल जो आपने स्ट्रेंथ कंसिडरेशन जो डिजाइन पार्ट है कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वहां से डिसाइड किया, बिकॉज मॉड्यूल डिसाइड द साइज ऑफ द टूथ. तो इसलिए मॉड्यूल के बेसिस ऑन इंटरफेरेंस का नॉर्मली हम रिलेट नहीं करते हैं बिकॉज दैट इज बीइंग डिसाइडेड, बिकॉज वी नीड टू कंसीडर अदर पैरामीटर्स आल्सो. तो ये इसके बेसिस पे डायरेक्टली मैं डिसाइड करूंगा. डिक्रीजिंग प्रेशर एंगल, हमने कहा कि डिक्रीज करोगे प्रेशर एंगल, इंक्रीज करोगे. अब ये अगर आप मुझे बोलते हो कैसे हो रहा है तो आई थिंक वर्बली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. आई कैन वो बेस्ड अपॉन द डेटा, अगर मैं फुल काइंड ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ उसके लिए अगर मैं क्या करूं, डेटा लिखूं फिर उसको रिलेट करूं तभी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं और समझा सकता हूं रादर. अदरवाइज अगर आप बोलोगे थ्योरेटिकली बता दो तो आई कैन नॉट टेल यू, नहीं कोई और बता पाएगा आपको कि थ्योरेटिकली हवा में नहीं बता पाएगा, बढ़ा दिया एंड ऑल दैट. हाँ, एक इन काइंड ऑफ जनरल वो बता सकते हो, बट एनीवे डिक्रीजिंग प्रेशर एंगल. ओके, तो इसका मतलब है कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसको क्रैम ही कर लो और कुछ नहीं कर सकते एट दिस स्टेज.
इंक्रीजिंग नंबर ऑफ गियर टूथ ऑन द पिनियन, ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो आपके पास क्या है, ये डिक्रीजिंग नहीं, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर देम, ये जॉब विल बी डन। अब ये जो क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो मोर और लेस रिलेटेड। It is desired to avoid interference in pair of spur gears with increase in standard pressure angle, the minimum number of teeth on the pinion. ये आप ध्यान रख सकते हो। आई थिंक अगर इफ यू हैव स्टडीड द दिस interference topic where he talks about the minimum number of teeth required to avoid interference, तो रैक एंड पिनियन का एक अरेंजमेंट आता है जिसमें क्या करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड टू अवॉइड द इंटरफेरेंस हम बात करते हैं। वो फॉर्मूला है आपका बेसिकली नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस इन रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। वो हम क्या करते हैं, हम देते हैं ऐसे, लिखते हैं वी राइट इट दिस वे। ये फॉर्मूला आपको वैसे पता होना चाहिए, डायरेक्टली पूछेगा वो आपसे, या न्यूमेरिकल भी दे सकता है, ये होता है। और ये जो है इसको बोलते हैं हम एडेंडम कोएफिशिएंट, एडेंडम कोएफिशिएंट। अब देखो, अब यू आर हैविंग साथ में मैं प्रेशर एंगल ले लेता हूं, आपको सिस्टम ले लेता हूं, आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। फुल डेप्थ, ट्वेंटी डिग्री फुल डेप्थ, 20 डिग्री स्टब टीथ, और ये है आपका 25 डिग्री फुल डेप्थ। ये कुछ एक गियर टूथ की जो प्रेशर एंगल, स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल्स के बेसिस पे हमने जो यूज करते हैं नॉर्मली, दिस इज व्हाट वी हैव। अगर आप क्या करोगे, इस इक्वेशन से आप पता लगा सकते हो कि कम से कम टीथ कितना चाहिए इस सिस्टम में, इस सिस्टम में, इस सिस्टम में, इस सिस्टम में, टू अवॉइड द इंटरफेरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप वैल्यू इनपुट करो, अगर मैं लेट्स से 14.5, इसका मुझे ध्यान नहीं है कि स्टैंडर्ड एडेंडम कितना होगा, इसलिए मैं यहां कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं इसको, बट हाँ क्योंकि इसका और इसका मुझे ध्यान है तो आई कैन कैलकुलेट। सो एनीवे, फॉर एग्जांपल लेट्स से 20 डिग्री प्रेशर एंगल की बात करते हैं। यू नो स्टैंडर्ड एडेंडम कितना है, स्टैंडर्ड एडेंडम कितना है इस केस में, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 1 टाइम्स मॉड्यूल। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम बोलते हैं एडेंडम कोएफिशिएंट, ये जो लिखा है मैंने, एडेंडम कोएफिशिएंट। सो इसका मतलब है कि जब आपका 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम है तो एडेंडम कोएफिशिएंट है 1, दैट मींस एआर वैल्यू ओवर हियर इज 1। इफ यू इनपुट दिस वैल्यू, टीपी इज इक्वल टू 2 into 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 20 डिग्री। तो ये नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड द इंटरफेरेंस इसमें आएंगे मेरे ख्याल 18, वो आप खुद ही चेक करके देख लो। सेम वे यू कैन डू इट फॉर द स्टब टीथ आल्सो। इन दिस केस स्टैंडर्ड एडेंडम, मैंने आपसे ऑलरेडी बात की थी, स्टैंडर्ड एडेंडम कितना है, 0.8 टाइम्स मॉड्यूल है। इस इक्वेशन में एआर अगर इनपुट करोगे 0.8, बाकी 20 डिग्री, तो ये वैल्यू आएगी आपकी स्टब टीथ के लिए 14। क्लियर? तो कहां से मैं पता कर सकता हूं मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड टू अवॉइड इंटरफेरेंस इन डिफरेंट सिस्टम? सिंपली मुझे एआर की वैल्यू पता, जो एडेंडम कोएफिशिएंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि ऑब्वियसली 25 डिग्री फुल डेप्थ के लिए भी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, कोई इसके लिए भी होगी। यू डोंट नीड टू रिमेंबर फॉर ऑल ऑफ देम, बट एटलीस्ट यू कैन रिमेंबर फॉर दीज टू। ठीक है, बहुत कॉमन है इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। सो मैं वैल्यूज निकाल देता हूं जो वैल्यू है। फॉर एग्जांपल यहां हमने कहा इसके लिए 18 आई, इसके लिए 14 आई, एंड इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 12, और इसके लिए वैल्यू इनपुट करेगी वो आएगी 32। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी किस लिए बनाई, इस क्वेश्चन के लिए। जस्ट सी, इट इज डिजायर्ड टू अवॉइड द इंटरफेरेंस इन अ पेयर ऑफ स्पर गियर्स विद इंक्रीज इन स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल आप इंक्रीज कर रहे हो, विद इंक्रीज इन प्रेशर एंगल, द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ इन द पिनियन रिक्वायर्ड टू अवॉइड इंटरफेरेंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो एज द प्रेशर एंगल यू आर इंक्रीजिंग, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड टू अवॉइड द इंटरफेरेंस क्या होंगे, डिक्रीज। तो इसका मतलब ये है कि लार्जर द प्रेशर एंगल, less number of teeth you can keep in that particular gear set, still you can avoid the interference. Less the pressure angle, minimum number of teeth to avoid the interference। मतलब ऐसा होगा कि मतलब प्रेशर एंगल कम होगा, मान लिया 14.5 है और उसमें अगर टीथ 12 रख रहे हो तो इंटरफेरेंस हो जाएगी। 18 14 रख लो, इंटरफेरेंस हो, 18 रख लो। इसमें जैसे जैसे प्रेशर एंगल बढ़ाओ, सॉरी कम करोगे तो
मिनिमम नंबर ऑफ टीथ जो रिक्वायर्ड है कम से कम कितने होने चाहिए इस सिस्टम में, कम से कम 32 होने चाहिए। 32 से कम लोगे तो इंटरफेरेंस हो जाएगी, ये बोलने का मतलब है। तो इसका मतलब प्रेशर एंगल कम करो तो you can also you need to increase the number of teeth on that pinion or gear, sorry in this case pinion, to avoid the interference। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, तो चीजें रिलेट की जा सकती हैं विच यू हैव स्टडीड फॉर एग्जांपल, तो ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, कई बार वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी फ्रेम कर देता है यहां पर, जैसे ये ना भी करे लेट अस से डायरेक्टली, बट ये इसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वैसे 20 डिग्री स्टब टीथ का गियर है और मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड टू अवॉइड द इंटरफेरेंस विल बी हाउ मच, लेट्स से आप भूल गए हो कि 14 है, बट ये इक्वेशन अगर याद है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो उसमें इनपुट करो, बिकॉज स्टैंडर्ड एडेंडम यू नो इनपुट द वैल्यू यू विल गेट इट, सेम यू कैन डू इट फॉर इट। इसके लिए वो पूछेगा नहीं इन द सेंस आइदर वो स्टैंडर्ड एडेंडम की वैल्यू देगा आपको, कॉमन जो होते हैं उनके लिए वो समटाइम्स ही कैन चेक योर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके डन, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, गो अहेड विद दिस। आई थिंक आप कर सकते हो इसको 21st, go ahead। A pair of spur gears with module 3.5 mm and सेंटर डिस्टेंस दिया है, स्पीड रिडक्शन आपने ऑब्टेन करनी है, नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन। अगर मैं स्पीड रिडक्शन की बात करूं तो ड्राइवर कौन सा होना चाहिए, या टॉक अबाउट द स्पीड रिडक्शन तो ऑब्वियसली ड्राइवर क्या होगा, पिनियन ही हो सकता है, गियर का रोटेशन क्या होगी, कम होगी। सो ओके एनीवे दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्पर गियर विद ए मॉड्यूल, मॉड्यूल मुझे दिया है, सेंटर डिस्टेंस आई नो, are used for a speed reduction। Now I don't know, एक मैंने क्वेश्चन लिया था somewhere in earlier sessions where I had told you जब भी आप स्पीड रिडक्शन है उसकी बात करें in terms of pinion velocity और गियर velocity और in terms of number of teeth, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पिनियन की velocity हमेशा गियर से ज्यादा ही होगी और नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी मोर देन पिनियन। तो अगर रेशियो किसी भी तरीके से देखिए, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी अगर मैं लिखना चाहता हूं तो आप कैसे लिखोगे, स्पीड ऑफ इस केस में 4:1 है तो लेट्स से 4.5 लिख देता हूं, 4.5 डिवाइडेड 1, सो दैट मींस पिनियन की ज्यादा होगी तो वेलोसिटी ऑफ पिनियन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ गियर विल बी इक्वल टू 4.5। ठीक लिख रहा हूं मैं, ऑब्वियसली वो आप अपने आप ही जज कर सकते हो। कैसे आप बोलोगे, ऑब्वियसली if I will write, if I have written this way, it means interpretation is velocity of the pinion will be 4.5 times velocity of gear। तो ठीक ही तो है, गलत क्या है इसमें, बट ऐसे नहीं लिख सकते velocity of gear divided by velocity of pinion is equal to 4.5, तो ये तो उल्टा हो गया। इस केस में क्या होगा, velocity of gear is 4.5 times of velocity of pinion, तो गियर की तो velocity pinion से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो ऐसे तो मैं लिख ही नहीं सकता। In terms of number of teeth also I can write it, you know velocity speed are inverse to that of the number of teeth। तो अगर मान लिया मैं इसको ऐसे लिखता हूं, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, क्या लिख सकता हूं ऐसे, नहीं, क्यों, अगर ऐसे लिखता हूं इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन विल बी 4.5 टाइम्स नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, पिनियन में ज्यादा हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ओनली ऑप्शन दैट आई एम हैविंग इज नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन विल बी इक्वल टू 4.5। द गियर में जो टीथ है वो 4.5 टाइम्स द नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, तो ठीक है, इसमें क्या गलत है, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन, टीपी निकालने के लिए बोल रहा है वो, you know it। center distance, how you can write, I can write it pitch circle radius of pinion plus pitch circle radius of gear, in terms of diameter 2 times diameter of gear plus diameter of pinion, बात एक ही है, गलत लिखा मैंने, diameter हाफ हो जाएगा, so it means half of diameter of gear plus diameter of pinion। अब मैं डायमीटर निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल, अगर लिखना चाहूं तो यू नो मॉड्यूल इज इक्वल टू डी बाई टी और डी बाई टी, सो
So can I write it this way also? So if I want to write out D in terms of module, so module T, so module by 2 into number of teeth on gear plus number of teeth on pinion. यहीं से small d will be equal to module into t, capital D will be equal to module into t, module module common हो गया, module common हो गया and number of teeth आ गए अंदर. That's all from here. So it means, और इसको ऐसे लिख लो चाहे बात एक ही है, number of diameter of pinion divided by number of teeth on pinion, number of diameter of gear divided by number of teeth on gear, ऐसे लिख लो, बात एक ही है. कितना है 270 center distance 270 इक्वल टू मॉड्यूल कितना है 3.5 डिवाइडेड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 4.5 टाइम्स नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, गियर को पिनियन के टर्म में लिख दिया मैंने, प्लस नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन. $28.05 28. ठीक है, 29 क्यों ले रहे हो? ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 28 ही आ रहा है, तो 28 लो ना. Okay, so that is how you have to go ahead. Clear? Okay. See this one now. In cycloidal and involute profile gear teeth, the line of action respectively are. तो स्पर गियर तो सॉरी दिस इन्वोल्यूट प्रोफाइल तो आप स्टडी करते ही हो. इन्वोल्यूट में तो बहुत ही क्लियर है आपको कि जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन है वो तो क्या है, दैट इज टेंजेंट टू द बेस सर्कल्स. इन केस ऑफ इन्वोल्यूट प्रोफाइल्स, अगर ये बेस सर्कल है और ये बेस सर्कल इसका ये है, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं इन दोनों के, ये टेंजेंट, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट, सॉरी ये टेंजेंट होगी यहां पर, तो ये लाइन ऑफ एक्शन है. तो लाइन ऑफ एक्शन जितना भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं टूथ के, दे विल लाई अलोंग दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन है. वेयर एज दिस इज नॉट द केस. ये बेस सर्कल है, ध्यान रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट बेस सर्कल. पिच सर्कल तो आपको पिच पॉइंट पे यहां पर मिलेंगे. ये पिच सर्कल ऑफ पिनियन, पिच सर्कल ऑफ गियर. सो इसका मतलब है इन्वोल्यूट प्रोफाइल के लिए इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट. Whereas in case of cycloidal, it is not the straight but it is curve, because cycloidal में जो है हमें अलग अलग कर्व्स आएंगी, उनका यूज करके जो है वो कंप्लीट टूथ प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है. सो दैट इज व्हाई नॉट पार्शियली, वो आती ही कर्व ही आएगी आपकी. सो इसलिए आपको जो है वो यू हैव टू पुट इट दिस वे. सो साइक्लॉइडल जो टूथ प्रोफाइल क्रिएट होती है, सो नंबर ऑफ साइक्लॉइडल कर्व्स दैट यू हैव टू मेक यूज ऑफ इन ऑर्डर टू जनरेट द फुल प्रोफाइल ऑफ द गियर टूथ, राइट. सो कर्व बनेगी. सो इसलिए वेयर एज इन केस ऑफ इसमें हमारा जो है वो दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट ओनली. ओके ओके, लेट मी रिपीट व्हाट डिड आई से. मैंने ये कहा कि जो लाइन ऑफ एक्शन आएगी ना, जैसे इस केस में तो हमें जो है हम बोल रहे हैं कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जितने भी हैं, दे आर गोइंग टू लाई अलोंग दिस लाइन, तो इसलिए लाइन स्ट्रेट आ रही है, लाइन ऑफ एक्शन. बट जो अगर हैड दोस टीथ बीन मेड अप ऑफ साइक्लोइडल प्रोफाइल, तो ये जो डिफरेंट पॉइंट्स, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, जब हम उनको ज्वाइन करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन नहीं होंगे, इन द फॉर्म ऑफ कर्व ज्वाइन होंगे. Okay, that is the meaning of it. So due to change in the center distance in both cycloidal and involved profile gear teeth, the gearing law remains. See, जो सबसे खासियत है जो इन्वोल्यूट प्रोफाइल की, वन ऑफ द that is greatest advantage that we have in case of
साइक्लॉइडल की जो एक ग्रेटेस्ट एडवांटेज है वो तो ये है कि उसमें इंटरफेरेंस नहीं होती, राइट, दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज साइक्लॉइडल प्रोफाइल की। बट इन्वोल्यूट की जो और बहुत सारे बेनिफिट्स दैट वी हैव, फॉर एग्जांपल जो लाइन ऑफ एक्शन आपकी एक ही पर्टिकुलर उसमें है एंड ऑल दैट, एंड साथ में अगर उसके बीच हम सेंटर डिस्टेंस चेंज भी करते हैं ना, तो गियरिंग लॉ है। गियरिंग लॉ मतलब हम कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो मेंटेन कर सकते हैं। इफ वी इंक्रीज द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू गियर्स, even after changing the center distance between those gears, the law of gearing is obeyed. लॉ ऑफ गियरिंग क्या कहता है? कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो शुड बी मेंटेन। अगर आप पावर ट्रांसमिशन जो है वो स्मूथ पावर ट्रांसमिशन चाहते हो, तो हम बोलते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो मेंटेन होनी चाहिए, और दैट इज पॉसिबल। हम इन्वोल्यूट प्रोफाइल में तो हम करते ही हैं, बट इवन व्हेन वी चेंज द सेंटर डिस्टेंस, वो लॉ ऑफ गियरिंग इज फुलफिल्ड, विच इज नॉट द केस। वो आप बोल सकते हो उस केस में दैट इज नॉट फुलफिल्ड। तो ये हमारे लिए एडवांटेज है इन केस ऑफ इन्वोल्यूट प्रोफाइल। सो हम ये बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ गियरिंग रिमेन्स अनअफेक्टेड इन केस ऑफ इन्वोल्यूट। तो सेकंड स्टेज पे अनअफेक्टेड, वेयर नहीं, ये नहीं अनअफेक्टेड, इस केस में अनअफेक्टेड है। और वेयर एज इन केस ऑफ साइक्लॉइडल प्रोफाइल, ये जो है प्रोफाइल, जो अगर सेंटर डिस्टेंस चेंज करेंगे तो लॉ ऑफ गियरिंग इज नॉट ओबेड। और अगर लॉ ऑफ गियरिंग ओबे नहीं होता, इफ लॉ ऑफ गियरिंग इज नॉट ओबेड, तो हमारा बेसिक पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, दैट इज ऑफ मेंटेनिंग द कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो ड्यूरिंग द पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, बताओ जरा, ये तो बहुत ही प्रीटी सिंपल। ये पिच सर्कल है, एडेंडम सर्कल है, डेडेंडम सर्कल यहां पर है कहीं आपका। सो ये पोर्शन क्या है गेट टूथ का? ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेस। इस पोर्शन को, इसके नीचे ये पिच सर्कल वाला ये जो पॉइंट है, यहां से इसके नीचे वाला जो पोर्शन है, वी कॉल इट एज ए फ्लैंक। नाउ यू कैन आंसर। above of the pitch circle, the side portion of the gear teeth, side portion ये वाला, ये साइड में जो है, ये फ्रंट है, दिस इज द फ्रंट, तो ये साइड होगी, of the gear teeth is called flank, उसको हम बोलते हैं फेस। आई थिंक यू मस्ट बी एबल टू आंसर दिस। देखो इसको जरा, गो एंड ट्राई टू आंसर। कैन यू? आई थिंक डायरेक्टली आप निकाल सकते हो इसमें, नथिंग स्पेशल इन इट। The minimum number of teeth for 20 degree stub and 4 mm module straights per gear. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपका जो फॉर्मूला है, that is minimum number of teeth required on the pinion in order to avoid interference is equal to 2 into a, आप बोल सकते हो addendum, जो भी a p जो भी लिखना है आपने, and sin square phi, right? And now he is talking about the stub teeth. You know phi is the 20 degree stub teeth, and stub teeth के लिए हमने ऑलरेडी कहा है कि जो addendum है आपका is equal to 0.8 times module, स्टैंडर्ड एडेंडम है। एंड ये वाला पोर्शन जो है न्यूमेरिक वैल्यू जो है, इसको हम बोलते हैं एडेंडम कोफिशिएंट, व्हिच इज ओवर देयर, राइट? सो एडेंडम कोफिशिएंट इज दिस, इफ दैट बी द केस देन 2 into 0.8 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर फाई, जैसे मैंने लास्ट में उस वक्त बताया था आपको 20 डिग्री। सो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 14 और व्हाट, आई डोंट नो, यस 13.68 आएगी। तो ऑब्वियसली उसको फिर हम 14 ही लेंगे, बिकॉज मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, कम से कम कितने लें, तो जो आपकी वैल्यू आ रही है तो इतने 13.68 दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड टू अवॉइड इंटरफेरेंस। अगर 13 लेते हो तो इंटरफेरेंस हो जाएगी,
So only option I am having is the next number that I can take is 14. Getting? ठीक है भाई 13.8 कम से कम चाहिए. अगर मैं 0.8 इलिमिनेट कर देता हूं 30 लिखता हूं तो इंटरफेरेंस तो हो ही जाएगी फिर. बट इतने कम से कम चाहिए तो नेक्स्ट पॉसिबल फिजिबल ऑप्शन क्या है 14 लो. कम से कम 14 लेने पड़ेंगे मुझे. तो इसलिए माय आंसर इज गोइंग टू बी दिस. अच्छा इस क्वेश्चन को आई थिंक हैव नॉट सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 26 है राइट. आई डोंट नो. नहीं सॉल्व किया ठीक है ओके. बट आई थिंक वो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कुछ थोड़ा सा कुछ मिसिंग है इसमें नहीं है वो. एनीवे गो अहेड विद दिस. गो अहेड एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट. he is asking us to calculate dedendum circle radius in module in m, not a module, in mm. Dedendum circle radius in mm. Go ahead. Dedendum circle radius for both straight tooth spur gears of 20-degree full depth and 20-degree stub teeth, each having 65 number of teeth, is going to be what? Okay. Okay. Anyway, मुझे क्या चाहिए? Having this dedendum circle radius. So I will take one is 520-degree full depth. 20-degree full depth ले लेते हैं. And 5 over here 20-degree stub teeth ले लेते हैं. Clear? Each having 65 number of teeth. Number of teeth ठीक है दोनों केसेस में सेम है. Number of teeth over here let's say I'm taking 65 and module 4 है और यहां भी आपका number of teeth let us say 65 है और मॉड्यूल क्या है 4. ठीक है ये सिचुएशन है. Are the respective. So what I am going to find out dedendum circle radius. Dedendum circle radius. That means bottom में. ये पिच सर्कल है. डिडेंडम सर्कल ये जो आपका बेस सर्कल है ये. सो बेसिकली डिडेंडम सर्कल रेडियस ये डिडेंडम सर्कल. अगर डायमीटर के टर्म में लिखता हूं ही इज आस्किंग मी टू कैलकुलेट द डिडेंडम सर्कल रेडियस. सो रेडियस ऑफ डिडेंडम सर्कल. एडेंडम सर्कल यू नो ये है. ये पिच सर्कल है. नाउ वी ऑलरेडी नो एडेंडम के बारे में पूछा नहीं है बट यू ऑलरेडी नो फॉर दिस सिस्टम आल्सो ये कितना है. हाउ मच इज दैट रेडियल डिस्टेंस. कीप इट इन माइंड रेडियल डिस्टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट ये इसको एडेंडम बोलते हैं. एंड सेम वे अगर हम ऐसे रेडियल डिस्टेंस की बात करें तो ये डिडेंडम है. सो वी ऑलरेडी नो एडेंडम इन केस ऑफ स्टैंडर्ड एडेंडम इज इक्वल टू 1 मॉड्यूल. इन दिस केस एडेंडम की बात करें तो एडेंडम स्टैंडर्ड मॉड्यूल इज इक्वल टू 8 मॉड्यूल. ये ऑलरेडी आपको पता है. स्टैंडर्ड लेट मी जस्ट राइट इट. स्टैंडर्ड एडेंडम कितना है जरूरत नहीं है मुझे. आई डोंट नीड ओवर हियर. इज इक्वल टू 1 मॉड्यूल 20 डिग्री प्रेशर एंगल में. स्टैंडर्ड एडेंडम इस केस में कितना होता है 0.8 टाइम्स मॉड्यूल. स्टैंडर्ड एडेंडम 20 डिग्री स्टब टीथ. ठीक है. और जब हम बात करते हैं डिडेंडम की कि डिडेंडम कितना है. यू नो डिडेंडम में हमने क्या होता है क्लियरेंस भी दी होती है. ऑल ऑफ यू नो राइट. क्या होता है डिडेंडम पोर्शन इज ग्रेटर देन एडेंडम. बाय व्हाट मार्जिन. यहां पर आपको पता है एक क्लियरेंस सर्कल भी होता है. तो डिडेंडम इज बेसिकली मोर देन एडेंडम प्लस क्लियरेंस ऐसे बोलते हैं हम. दिस विल बी इक्वल टू दिस ऐसे होता है. अगर मान लिया ये एडेंडम इतना है तो इस साइड पे एडेंडम कितना होगा इतना होगा. दिस एंड दिस इज इक्वल और एडेंडम पे क्लियरेंस ऐड कर दूं तो दैट विल बिकम इक्वल टू द डिडेंडम राइट. इट मींस डेफिनेटली डिडेंडम इज ग्रेटर देन एडेंडम. तो स्टैंडर्ड डिडेंडम जो है डिडेंडम इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स मॉड्यूल. ये ध्यान रखना. स्टैंडर्ड डिडेंडम डेफिनेटली डिडेंडम इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एडेंडम. क्यों? क्योंकि मुझे एडिशनल क्लियरेंस भी देनी पड़ेगी. तो मेरे पास
ये पोर्शन किसके बराबर है, एडेंडम के इक्वल है, ये और ये दे आर इक्वल, बट और ये इक्वल है तो ये एडेंडम है तो ये भी एडेंडम हो गया, और साथ में क्लियरेंस भी है यहां पर ये, तो डिडेंडम कितना होगा, ये टोटल डिडेंडम विल बी एडेंडम प्लस क्लियरेंस. So same way, standard addendum over here, I think it is equal to 1 module, क्योंकि ऑलरेडी 0.8 टाइम मॉड्यूल स्टैंडर्ड एडेंडम है, 0.8 मॉड्यूल और थोड़ी सी क्लियरेंस एडिशनल आएगी 0.2 सॉरी 0.2 टाइम्स मॉड्यूल. सो यू कैन से मैं ऐसे बोल सकता हूं 0.8 मॉड्यूल प्लस 0.2 मॉड्यूल. सो 0.2 मॉड्यूल क्या होगी इसमें, क्लियरेंस होगी, तो टोटल कितना हो गया, ये मॉड्यूल हो गया. सो कैन आई से दिस इज इक्वल टू 1 टाइम्स मॉड्यूल, ये स्टैंडर्ड एडेंडम हो गया. क्लियर. सो दैट मच अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू हैव. ये मेरे ख्याल से आप याद रख सकते हो एडेंडम और डिडेंडम के लिए, इससे ज्यादा स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है. एक और चीज रहेगी, वो लास्ट में मैं टूथ की कहीं बात करूंगा तो वहां बात करूंगा, अदरवाइज दिस मच इंफॉर्मेशन यू शुड हैव. ओके. नाउ नहीं, ये कहां से मिलेगी, ये तो अभी मिलेगी नहीं आपको, हाउ यू कैन गेट इट, क्योंकि ये तो इरेज हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू सेव इट. जैसे ही मैं इसको यहां से हटाऊंगा, इट इज गेटिंग इरेज्ड. सो ओनली ऑप्शन आई एम गोइंग टू हैव इज दैट आई हैव टू गेट इट टाइप्ड. सो अभी वो द नेक्स्ट फेज में जो हमें जितना भी है, व्हाटएवर आई एम सॉल्विंग इट ओवर हियर, सो दैट विल बी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेड सेपरेटली एंड देन इट विल बी टाइप. सो आपको ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा, रिटर्न नहीं मिलेगा. ये जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये आपको जो है यू आर नॉट गोइंग टू गेट. सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट व्हाटएवर गोइंग ऑन, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या उसको साथ साथ कर लो, समथिंग दैट वे, बिकॉज वो प्रोसेस लेंथी है. पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा अलग से, देन फिर वो टाइप में जाएगा, देन जाके मेरे पास डॉक्यूमेंट आएगा. और यहां पे सेव नहीं कर सकता डायरेक्टली, बिकॉज जैसे मैं इसको हटाऊंगा इट इज गोइंग टू बी लॉस्ट. ओके. सो ओके, वेयर आई वाज. ओके, कैलकुलेट कर लो आप. व्हाट आई एम सपोज टू फाइंड आउट, आई नीड टू फाइंड आउट द डिडेंडम. सो डिडेंडम कितना है इस केस में, फुल डिडेंडम. तो डिडेंडम इज गोइंग टू बी 1 टाइम्स मॉड्यूल नहीं सॉरी डिडेंडम सर्कल रेडियस. ओके, नाउ व्हाट इज द डिडेंडम सर्कल रेडियस. डिडेंडम सर्कल रेडियस इज द pitch circle radius minus dedendum. So dedendum circle radius is equal to pitch circle radius for this system minus dedendum. ठीक बोल रहा हूं मैं. dedendum circle radius is equal to, अगर इसमें से मैं इसको dedendum को हटा देता हूं, dedendum circle radius आ गया, सेम कॉन्सेप्ट वाइज तो सेम ही रहेगा ये, माइनस आर माइनस dedendum. फर्क कहां आएगा वैल्यूज में, इस और इस सिस्टम में dedendum की वैल्यू में आएगा, आर तो सेम ही रहेगा. सो मॉड्यूल इज इक्वल टू डी बाई टी. So can I say 2r by t? So how much is that? R is going to be, module is how much? Module is 4, same ही है 4. Number of teeth 65 divided by, sorry, module is by 2 हो जाएगा. Module is 4, t is 65 divided by 2, ये आई वैल्यू. So R जो मेरी आई वैल्यू, how much is that? 260 by 2 130. चेक करो इसको, 130, राइट, इट शुड बी दिस मच. ये मेरा आ गया, राइट. नाउ इट शुड बी 130 माइनस डिडेंडम. डिडेंडम कितना आया, 1.25 टाइम्स मॉड्यूल. मॉड्यूल कितना है, स्टैंडर्ड डिडेंडम 1.25, मॉड्यूल इज 4. सो ये मेरी वैल्यू आएगी फुल डेप्थ is this much, 125 ये आ गई आपकी 125 mm. एंड इस केस में is going to be R is 130 minus 1 time module, 1 multiplier of module is again 4, तो ये 126 आ गई आपकी. That's all. Okay, so that is how you are going to do this. So the only option I think you are having is, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप साथ साथ लिख लो. Okay, so that is how you have to find out. So I think these standard values you need to know for this 20 degree full depth and 20 degree stub teeth. ये दोनों चीजें. एडेंडम के बारे में ऑलरेडी हमने बात की थी और डिडेंडम की हमने अभी बात कर ली. Okay, then let's move on to the next one now.
base circle radius for both straight tooths per external gears or 20 degree full depth and 20 degree stub teeth. Stub. Now, ये लेट्स से बेस सर्कल है ये, ठीक है। Somewhere there. So it may be here, somewhere here or down there, but anyway, I have shown it this way. Now, point ये है कि base circle radius, how you find out? Base circle radius you already know. Base circle radius is equal to pitch circle diameter into cos of phi. So, irrespective of this, base circle radius is going to be d cos of phi. So, irrespective of whether that 20 degree stub teeth है या full depth teeth है, बेस सर्कल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रीजन बीइंग कि जो आपका टूथ प्रोफाइल जनरेट होती है दैट इज जनरेटेड ऑन द बेस सर्कल. यू स्टार्टेड फ्रॉम द बेस सर्कल. तो चाहे ये सिचुएशन है चाहे ये सिचुएशन है, दिस प्रोफाइल स्टार्टेड फ्रॉम द बेस सर्कल. नाउ इफ आई एम मॉडिफाइंग द टॉप ऑफ द टूथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा. ये लेट्स से दिस टूथ इज 20 डिग्री फुल डेप्थ. लेट्स से ये है 20 डिग्री फुल डेप्थ है, तो यू नो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द मॉड्यूल. एडेंडम इज गोइंग टू मॉड्यूल. अब मैं क्या कर रहा हूं, बनाया तो मैंने इसी में से, ये बेस सर्कल जो था मेरा वहीं से स्टार्ट किया मैंने, कर्व ड्रॉ की एंड आई प्रिपेयर दिस टूथ. अब क्या कर रहा हूं, इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूं स्टब टूथ में. स्टब टूथ में इफ आई मॉडिफाइंग इनटू द स्टब टूथ, द ओनली मॉडिफिकेशन दैट आई हैव टू डू इज कि ये वाले पोर्शन को छोटा करना है विदाउट चेंजिंग अदर थिंग्स. तो आई एम चेंजिंग दिस पोर्शन ओनली. सो हाउ आई एम चेंजिंग दैट पोर्शन, ये वाले पोर्शन को उड़ा दिया और लेफ्ट आउट विद व्हाट 0.8 टाइम मॉड्यूल. ये एडेंडम कितना छोड़ दिया? 0.8 छोड़ दिया. 0.2 को मैंने उड़ा दिया. तो इफ आई कीप इट ओरिजिनल द सेम, देन आई एम हैविंग फुल डेप्थ. और अगर स्टब बनाना है तो विदाउट टेम्परिंग विद द अदर थिंग्स, आई एम जस्ट रिमूविंग द टॉप पोर्शन. लेट्स से आई एम रिमूविंग दिस वन. तो ये स्टब बन गया मेरा. तो ये मेरा स्टब टीथ हो गया. दैट्स ऑल. सो इट मींस if I will talk about the base circle diameter, whether it is a 20 degree stub teeth or whether it is a full depth, the base circle diameter or radius is going to remain same. Am I clear? So इसका मतलब है चाहे मैं कैलकुलेशन इसके लिए कर लूं या इसके लिए कर लूं, base circle diameter is going to remain same. So module is going to d by t. From here I'm going to have diameter is equal to module is how much? Status per gear module. नंबर ऑफ टू टीथ मॉड्यूल है मेरे पास, और देयर इज मॉड्यूल इज 3.5 into 120. mm. ये मेरा मॉड्यूल आ गया, सॉरी डायमीटर आ गया. चाहे वो सेम ही है, ये दोनों के लिए सेम ही आएगा. सो यू आर गोइंग टू हैव द बेस सर्कल डायमीटर इज गोइंग टू रिमेन सेम. सो 420 into cos of what 20 degree. So the value is going to be how much? 394.67. And since he has asked me the value of what radius, so radius is half of that. Base circle is going to be 197.335 mm. So it means over here also radius is going to be base circle का कितना आएगा? सेम ही आएगा 197.335 mm. Am I clear? So that is the meaning of this. So this much understanding you need to have. दोनों के लिए सेम आएगा. हमने केवल क्या करते हैं, स्टब टीथ में क्या करते हैं, याद रखना. ऐसे आप क्या करते हो, दाढ़ी बढ़ जाती है आपकी, तो आप क्या करते हो, ट्रिमिंग कर देते हो. ट्रिमिंग करने के बाद क्या होता है, स्टब छोटे छोटे आपने छोड़ दिए, तो स्टबल, उनको स्टबल बोल सकते हो. सो समथिंग दैट वे. तो मैंने क्या, इस टॉप पोर्शन को रिमूव कर दिया एंड आई एम लेफ्ट आउट विद नाउ दिस मच ऑफ टूथ, जिसको मैंने 20 डिग्री स्टब टूथ बोला. जबकि बेस सर्कल एंड रिमेनिंग थिंग्स
वो वहीं की वहीं वैसे की वैसे ही थी। ओके, ओके। इस केस में ये जो क्वेश्चन है, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन अर्लियर। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी नहीं है एंड यू कैन नॉट फाइंड आउट, आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे इसमें। जैसे एक्सटर्नल गियर्स के लिए he is talking about the contact ratios for external, this contact ratio, मतलब if you remember we did one question for external gearing where we found out the contact ratio. Contact ratio कैसे हुई? You know, the length of arc of contact divided by circular pitch, length of path of contact divided by circular pitch into cos phi. So length of path of contact divided by cos phi will become equal to the length of arc of contact. That was what. So my first concern should be to calculate the value of the length of path of contact. Now external gears के लिए पूछा, internal के लिए भी. I'm just writing the formula because he has not given me the correct information, complete information. Until and unless I have that information of module, I cannot calculate. Now while framing this question, या तो mention की होगी या कहीं पे वो miss हुई होगी, I'm not sure enough. बट वो वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो मेरे लिए प्रोसीड करना डिफिकल्ट है इसमें, इसलिए मैंने कैलकुलेशन नहीं की. For me, the only this thing that is important for you to tell is, ये देख लो, जैसे एक्सटर्नल गियर था तो उस केस में लाइट लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट वाज दिस वे, इट वाज आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ऐसे था ये, और माइनस आर साइन फाई प्लस आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई minus r sin phi. This is how you use to calculate. On the similar lines, let us say this is the external gearing. This is for external meshing. Same way for the internal meshing, अगर internal gear है, as you know, let's say you are having a larger ring gear and inside that you are having a smaller gear which is rotating something this way. So उस case में you are going to have the length of path of contact. So that value will come similar kind of, but थोड़ी सी modification आएगी उसमें हल्की सी. That modification is going to be, this term is going to be prior to this. So ये value क्या आएगी आपकी? R sin phi minus, right? Okay, R a square minus R square cos square phi, और जो दूसरा टर्म है वो एज इट इज आ रहा है, दैट इज आर ए स्क्वायर, सॉरी, प्लस आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई. ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो दैट इफ फॉर एग्जांपल ही फ्रेम्स द क्वेश्चन फॉर इंटरनल गियर्स, तो व्हाट यू नीड टू डू, जो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अगर निकालनी है, दैट यू कैन कैलकुलेट फॉर इंटरनल गियर्स फ्रॉम दिस फॉर्मूला. मोर और लेस सिमिलर लाइंस पे है, ओनली डिफरेंस की ये टर्म जो है पहले आ जाएगा, ये बाद में आएगा, रेस्ट आपका वैसे का वैसा है. सो इसको आप नोट डाउन कर लो. हाँ ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच एंड लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस. सो फॉर एग्जांपल यहां पर ये वाला पोर्शन में लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच है, पर ये जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर, ये लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच तब होगी, ये ध्यान रखना अपना. लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के केस में तो ओवरऑल फॉर्मूला सही है, चाहे इसको यहां लिखो, इसको पहले लिख लो, बाद में लिख लो, हार्डली इट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. बट लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच एंड पाथ ऑफ रिसेस के टर्म में जब लिखते हो तो यू नीड टू नो विच वन इज ड्राइवर. If pinion is driver, then in that case this is going to the length of path of approach and this is going to the length of path of recess. But if gear is driver, gear driver हो जाता तो उल्टा जाता है, तो this becomes length of path of approach and this becomes the length of path of recess. वो ध्यान रखना है. अगर if he frames the question separately, let us say find out the length of path of approach if pinion is driver, something that way. In totality, I am not bothered which one is driver or driven. ठीक है, ओके.
Let's go to the next one. I think you will be able to solve it quickly. Let's see it. And give me the okay, standard and uncorrected gear. Okay, so I think you can find it out easily. So he's asking me standard and uncorrected gear जो भी हैं set 20 degree full depth, 13 teeth for both driven and driver gear. मतलब ये क्या है, दोनों गियर सेम ही साइज के हैं, ड्रिवन ड्राइवर दोनों क्या है, सेम साइज के हैं, सेम. सो या तो आर बोलो, ये भी आर है, दोनों सेम ही है. So I can say that module 13 teeth, number of teeth on pinion equal to number of teeth on gear is 13 only, same है. And with module is equal to center distance आपको दिया 32.5. estimate the module following. module निकालना है आपने, तो आप निकाल सकते हो, you know, center distance is equal to 2 times r बोल सकता हूँ, r plus r, 2r, and 2r is equal to what, diameter, and you know, module is equal to d by t. So can I say that d is equal to module times t? c, you know, module निकालना है मुझे, 32.5 is equal to module, I know 32.5 equal to module, I want to find out what is t. T is what? Yes, 13. So that means I can find out the value of module. module कितना आ गया? 2.5. ठीक है? That's all. Pretty simple. Based upon this, we have the next question. Based upon this, we have the next question, and that is tooth thickness at working pitch circle diameter. So when you will measure the tooth thickness over here, pitch circle diameter, so how much is that? That is what he is saying. Now ये जो वैल्यू है, ये आपका चाहे 14.5 डिग्री प्रेशर एंगल है, चाहे 20 डिग्री फुल डेप्थ है, 20 डिग्री स्टब टूथ है, जो उसकी टूथ थिकनेस है, यहां पर वो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो दैट इज गोइंग टू बी, वो सेम ही ली जाती है, एंड दैट वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ दिस पिच सर्कल, दैट इज tooth thickness at pitch circle, tooth thickness, standard tooth thickness at pitch circle diameter is equal to, it is taken as 1. You can, if you want to remember, 1.708 times module. सारी चीजें मॉड्यूल के टर्म में होंगी, ये ध्यान रखना. जो भी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, all the size, the whole of that particular this size, different dimensions of the gear tooth, basically they are represented in terms of module only, right? So ये स्टैंडर्ड है, not only for 20 degree full depth, stub depth and 14.5 डिग्री, उसके लिए भी वैल्यू यही आएगी. तो anyway, मॉड्यूल हमने निकाला ही है, तो simply 1.5708 times module. How much is that module? 2.5 that we calculated, mm. So ये मेरी वैल्यू आ जाएगी, thickness at that particular pitch circle diameter is going to be 3.927 mm. Clear? ठीक है, ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है. आई डोंट थिंक नॉर्मली ही फ्रेम्स द क्वेश्चन इन गेट डायरेक्टली, वो आपसे पूछेगा नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन नॉर्मली पूछता नहीं है कि, बट एनीवे थोड़ा सा आइडिया ध्यान रखना, कहीं रिलेट कर दिया उसने तो आई थिंक देयर यू कुड हैव बेनिफिट. डायरेक्टली वो नॉर्मली पूछता नहीं है, ये ध्यान रहे. बट हाँ, जो मैंने स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको जो है टोल्ड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अडेंडम डिडेंडम की, जस्ट कीप इट देम इन माइंड, एंड हो सके तो जस्ट रिमेंबर दैट.
समटाइम्स इनडायरेक्टली रिलेट करने की जरूरत पड़ेगी तो वहां रिलेट कर लेना, बट डायरेक्टली आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू आस्क। ओके, सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Pressure angle at tooth tip is equal to, I think I did one question over there, ये केवल काइंड ऑफ ए एक्सरसाइज फॉर यू अगेन। सो मैंने आपको बताया था कि प्रेशर एंगल कैसे निकालना है। सो हाउ वी हैड डिनोटेड दैट, इट वाज समथिंग अल्फा डैश इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ डीबी डिवाइडेड बाय डीए, ये था आपका। उसने ये पूछा है द प्रेशर एंगल एट टूथ टिप इज इक्वल टू और क्लोज टू, तो प्रेशर एंगल एट द टूथ टिप, जो हम नॉर्मल जो प्रेशर एंगल बात करते हैं एट जो ये वाला प्रेशर एंगल है, ये इसको हम फाई से ही डिनोट करेंगे। एंड अगर टूथ टिप पे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तो आई एम गोइंग टू डिनोट विद दिस। एंड हाउ टू कैलकुलेट, ऐसे कैलकुलेट करना है। अगर दैट बी द केस तो रेस्ट तो आप निकाल ही सकते हो। क्या निकालना है, बेस सर्कल। अब आई फॉरगॉट कि वो क्या था, 20 डिग्री प्रेशर एंगल था, 20 डिग्री फुल डेप्थ था मेरे ख्याल, एंड नंबर ऑफ टीथ दिए थे उसके, एक मिनट, दिस सेम यही है, एंड ये था। ओके, सो हाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट एडेंडम सर्कल डायमीटर, एडेंडम सर्कल डायमीटर एंड बेस सर्कल डायमीटर। ओके, ठीक है। सो दिस वाज, ये आपको ऑलरेडी पता कैसे निकालना है। सो ये बेस सर्कल डायमीटर समवे हियर, so I don't know what is that, base circle diameter and addendum circle diameter. So let's say this is addendum circle diameter, ये निकालना है मैंने। एंड 20 डिग्री प्रेशर एंगल है तो पिच सर्कल डायमीटर ये हो गया आपका, एंड 20 डिग्री प्रेशर एंगल है, फुल डेप्थ है, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो ये क्या होगा, मॉड्यूल के बराबर हो जाएगा। सो आई थिंक ये मॉड्यूल होता है, एंड यू नो डिडेंडम is 1.25 in 20 degree full depth involute, this is 1.25 times module, बट यहां जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे ये डायमीटर निकालना है, या रेडियस के टर्म में लिख लो, जैसे भी लिखना है आपने, इट इज अप टू यू। सो कंफ्यूजन ना हो, मैं रेडियस में लिख देता हूं, रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल, पिच सर्कल रेडियस, रेडियस ऑफ बेस सर्कल, ठीक है, एडेंडम सर्कल। Now, how you are going to find out? So you know, addendum circle. Okay. So can I find out? I can also write in terms of radius also, right? Diameter में निकालने की जरूरत क्या है, डायरेक्टली रेडियस में निकाल दो, बिकॉज ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 टाइम्स ही होगा, राइट? सो कैन आई से दिस कुड आल्सो बी दिस वे, cos इनवर्स ऑफ रेडियस ऑफ बेस सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल। सो रेडियस ऑफ बेस सर्कल किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ बेस, सॉरी, रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल, रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल इज इक्वल टू पिच सर्कल रेडियस प्लस एडेंडम। अगर डायमीटर के टर्म में लिखता तो यहां पर पिच सर्कल डायमीटर प्लस 2 टाइम्स होता, दैट इज ओनली डिफरेंस, लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने किया। एंड हाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट, मैंने हैव आई कैलकुलेटेड डायमीटर समवेयर, हैव आई कैलकुलेटेड डायमीटर, डायमीटर आई डोंट नो, मॉड्यूल मुझे दिया हुआ है ऑलरेडी, और डायमीटर 32.5 कहां पर आ गया ये, हाँ दिया तो है, सॉरी जस्ट अ मिनट, मॉड्यूल इज इक्वल टू, ओके डायमीटर है, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी मॉड्यूल दिया है ना, सो 2r आया था मेरा, 2r वाज दिस, 2r वाज 3.32.5, तो ये मेरा r जो आएगा ना, दैट इज 2r वाज, सेंटर डिस्टेंस वाज एज यू नो 3.32.5, ये था, ठीक है। सीधा फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो आप जस्ट सी इट। सो दिस इज दिस, तो r तो आपका इसका हाफ आ जाएगा, सो जस्ट पुट इट दिस वे, 32.5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस मॉड्यूल कितना है आपका, दैट इज एडेंडम इज इक्वल टू मॉड्यूल। सो मॉड्यूल यू हैव ऑलरेडी बीन गिवन इज 2.5। सो मेरा जो रेडियस है एडेंडम सर्कल का, दैट इज गोइंग टू बी, एडेंडम सर्कल का मेरा जो आया 37.5 डिवाइडेड बाय 2, समथिंग दिस, 37.5 डिवाइडेड बाय 2 करके देख लो उसको, ये इतना आएगा। ओके, दिस इज गोइंग टू बी दिस वन।
5 हाँ ठीक है. Okay, this is going to be this much. Okay, and what is about the radius of the base circle? Radius of the base circle will be the radius pitch circle diameter cos of 5. Either you write in terms of like diameter of base circle is equal to diameter of pitch circle into cos of 5, or you write this way. So it is up to you how you're going to write it. So R is how much I want to R. R I already know 32.5 divided by 2 into cos of 5. Cos of 5 is 20 degree. So what is that value? RB that you are going to have is again 30.54 divided by 2 mm. ये मेरी वैल्यूज आ गई. ये कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी की हुई है. जस्ट इनपुट दैट वैल्यू एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट. सो दिस वैल्यू, नाउ इनपुट दिस वैल्यू ओवर हियर. ये वैल्यू और ये वैल्यू यहां इनपुट करो. अल्फा डैश जो वैल्यू आएगी आपकी दैट इज गोइंग टू बी 35.4719. ये डिग्रीज में आई. नाउ यू ऑलरेडी नो, सो ऑब्वियसली यहां पर है नहीं कोई, तो यही होगी. बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एग्जैक्ट आल्सो, जरूरत नहीं पड़ेगी. बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट यू कैन ऑलरेडी कन्वर्ट इट, बिकॉज डिग्री को अगर आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, दिस इज मिनट 20, यू नो ऑलरेडी मे बी नोइंग. This is degree, this is minute, this is seconds. So 35 degree, so it becomes this way: 35 degree plus 0.4719 degree separate. अगर इसको अब मैंने मिनट में कन्वर्ट करना है तो I need to multiply by 60, right? So 1 degree is equal to 60 minutes. So multiply this with 60. So when you will multiply 35 degree plus ये क्या हो जाएगा 0.4719 multiplied by 60, ये मिनट हो गए. So ये वैल्यू आ गई टोटल मिनट्स की. अगेन, सो व्हेन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू, इट विल कम आउट एज ए 20 डिग्री 28. सो मैं आई कैन राइट दिस वे देन दैट 35 डिग्री एंड देन इट विल कम आउट एज ए 28 मिनट पॉइंट समथिंग. अगेन दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. सो जो फ्रैक्शन होगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करो एंड दैट वैल्यू यू आर गोइंग टू हैव एज 90 डिग्री. द वे आई मल्टीप्लाइड दिस डिग्री पोर्शन दिस मच विद 60, आई गेट द मिनट. सो मिनट में जो वैल्यू आएगी उसमें जो फ्रैक्शन टर्म होगा 28 पॉइंट समथिंग, जो फ्रैक्शन टर्म होगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द 19 मिनट. सो ये आपकी मिनट और दैट इज 19 सेकंड्स. मेट्रोलॉजी में होपफुली यू मे हैव स्टडीड हाउ टू कन्वर्ट दैट, बट एनीवे you can do that. Okay, done. Yes, this is how you have to do it. Okay, let's go to the next. Okay, so now I think we move on to next one. Just go through this question now. Okay, let's go ahead. So what it says, on strain hardening of steel, what happens to, तो I think ये आपको strength of material का concept you have to mix it with plastic deformation processes. So here you are having, let us say ये, तो बताओ मुझे strain hardening कौन से region में होगी? This is the region of strain hardening. तो बोलता है what is say on strain hardening, let us say I am deforming it, let us say within any particular region. So let us say यहां तक डिफॉर्म कर दिया तो क्या होगा? Strength and hardness increases. Strength and hardness more or less they are related. तो strength increase होती है component, more or less strength hardness भी उसकी increase होगी. So if I ask you if you want to deform it further away from that, then you need to apply a stress more than that. Let's say if it is 200 megapascal that I have deformed it within the region, strain hardened, releasing it, then further if I want to deform it, then I need to apply a stress value more than that. इसका मतलब स्ट्रेंथ क्या होगी? इसकी इंक्रीज होगी, हार्डनेस भी इंक्रीज होगी. What happens to toughness and ductility? Ductility is the amount of elongation. Now tell me, after this,
after this how much further you can elongate? This much. Earlier you used to elongate this much. अब आपके पास इतनी पोटेंशियल है इसको elongate करने का, तो इसका मतलब ये है कि डक्टिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी. Earlier you could have ductility measured this much, you could have elongated this by this much amount, but अब डिफॉर्म करने के बाद only this much. What about the toughness? Toughness, area under the stress strain diagram. So earlier you were having the scope of this whole area under the stress strain diagram. Now since you have deformed it till this point, away from that only you are left out with this much portion only. तो toughness जो है वो after that, once it is strain hardened, उसके बाद area under the diagram क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. So it means you are left out with stress, strength and strain increases while the toughness and ductility decreases. So ये option आपकी correct रहेगी. Clear? Okay. So let's move on to the next. Which of the following statement is correct for code working process? ये भी more or less is on the same line as you had in the last question. मतलब आप code working का मतलब again you are in what, which plastic region? Again you are in what? Plastic region. That means the same region, you are over there in the plastic region only. Again you are talking about the same region that we were saying strain hardening region. तो ये plastic region है आपका. So again he is talking about this region. So let's talk about, he says strain hardening effects predominate. Now he is talking about the cold working, right? Cold working. Strain hardening effects predominates over the thermal recovery effects. You know, in case of metal forming, particularly cold working में क्या होता है आपका, या तो रूम टेम्परेचर पे डिफॉर्म करते हो या रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे. तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे व्हेन आई एम डिफॉर्मिंग इट, तो ऑब्वियसली स्ट्रेन हार्डनिंग तो होगी. थर्मल रिकवरी कहां होती है? थर्मल रिकवरी होती है हाई टेम्परेचर पे, पर्टिकुलरली एट द अबाउट द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. सो कई बार हम क्या करते हैं, लेट अस से रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर लेट अस से 500 800 डिग्री सेल्सियस है, राइट? लेट्स से यू कैन से 800 डिग्री सेल्सियस क्या है? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है. At any temperature below this, when I am deforming the material, I am saying this is cold working. तो अगर रूम टेम्परेचर पे डिफॉर्म कर रहा हूं तब भी कोल्ड वर्किंग है. आई एम डिफॉर्मिंग एट 500 डिग्री सेल्सियस तो भी कोल्ड वर्किंग है. सो लेट्स से आई एम डिफॉर्मिंग एट रूम टेम्परेचर, तो लास्ट जो थर्मल रिकवरी है दैट इज आल्सो निग्लिजिबल. अगर थोड़ा बहुत लेट अस से अगर मैं बात करता हूं 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डिफॉर्म करता हूं, तो इफ देयर इज सम काइंड ऑफ थर्मल रिकवरी, ग्रेन साइज में रिकवरी होगी, तो वेरी स्मॉल अमाउंट होगी यहां पर, बट प्रिडोमिनेंट कहां होगी? इसके ऊपर. So when we are saying strain hardening effects predominance, इसके नीचे strain hardening बहुत ज्यादा होगी और थर्मल रिकवरी जो है वो ग्रेन में जो रिकवरी होगी वो बहुत कम होगी. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी. इन कोल्ड वर्किंग प्रोसेस द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द डाई मटेरियल विल डिक्रीज. इन कोल्ड वर्किंग प्रोसेस द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ डाई मटेरियल, ये डाई के ऊपर आ गया. वैसे डाई के ऊपर डिक्रीज तो होने वाली नहीं है. मान लीजिए जैसे इफ यू टॉक अबाउट द वायर ड्राइंग, अगर वायर ड्राइंग में अगर आप जो फॉर्मिंग कर रहे हो, वायर को ड्रॉ कर रहे हो, व्हेन यू आर ड्राइंग दिस वायर थ्रू दिस पर्टिकुलर डाई, तो इसके ऊपर भी स्ट्रेसेस लगेंगे, तो ये क्या होगा? लेट्स से दिस विल आल्सो गेट कंप्रेस्ड, डाई विल आल्सो गेट कंप्रेस्ड. तो क्या होगा? इसकी स्ट्रेंथ बढ़ ही सकती है, कम तो होगी नहीं, डिक्रीज नहीं हो सकती. व्हेन यू कंप्रेसिंग द डाई, ऑब्वियसली इसका डायमीटर तो कम कर ही रहे हो, यू आर डिक्रीजिंग डायमीटर ऑफ दिस वायर डॉग, इसका डायमीटर तो आप कम कर ही रहे हो, बट एट द सेम टाइम लेट्स से आप बोलते हो कि when you're pulling it, force is exerted by this wire on this and this on this, then obviously अगर ये भी डिफॉर्म हल्का फुल्का होता है तो it is on plastic zone. अगर जाता भी है लेट से, we will not allow it to go. अगर ऐसा होगा लेट से, पहली बात तो ये है कि we will not allow the die to deform. अगर डाई ही डिफॉर्म होगी तो आपका कंपोनेंट का डायमेंशन मेंटेन नहीं कर पाओगे, राइट? सो एनीवे, चलो थ्योरेटिकली बात भी कर लेते हैं. तो वो क्या होगा? अगर हल्की लेट से प्लास्टिक जोन में गई भी तो वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज तो हो नहीं सकती. कोल्ड वर्किंग वी आर नॉट मच बॉदर्ड अबाउट द डाई, वी आर बॉदर्ड अबाउट द वर्क मटेरियल. ठीक है, डाई के डायमेंशन तो मैंने करेक्ट रखने हैं. इफ इट गेट्स डिफॉर्म, मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा डाई को. आई कैन नॉट प्ले विद द डाई, राइट? तो डाई वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट. It results in the elongated grain structure and can be used to harden the metal and alloys that are not responding to heat treatment. यही तो काम था. If we say what was the purpose of cold working, कि हम उसको डिफॉर्म करना चाहते हैं प्लास्टिक रीजन में, ग्रेन डिस्टॉर्शन होगी, ग्रेन इलोंगेशन होगी, बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा? उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी. आई एम डिफॉर्मिंग इट लेट्स से अप टू दिस रीजन लेट्स से, और हियर तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी ना, यही तो पर्पस था. इसका मतलब अर्लियर इनिशियली इट वाज हैविंग यील्ड स्ट्रेंथ ओनली दिस मच. नाउ इफ आई डिफॉर्मिंग इट टिल दिस पॉइंट, नाउ द फर्दर स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज्ड. नाउ इफ आई एम डिफॉर्मिंग इट फर्दर till this point, again to deform it further I need to apply stress value more than this. So इसका मतलब है जितना ज्यादा मैं डिफॉर्म करता जाऊंगा उतना ही ज्यादा उसको फर्दर डिफॉर्म करने के लिए
स्ट्रेस अप्लाई करनी पड़ेगी, इसका मतलब स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ओरिजिनल मटेरियल की जो यील्ड स्ट्रेंथ थी वो इतनी थी, बट आफ्टर डिफॉर्मेशन लेट्स से अप टू दिस पॉइंट इंक्रीज, फर्दर डिफॉर्म, इंक्रीज। दिस इज व्हाट आई वांट। सरफेस फिनिश एंड टॉलरेंसेस कैन नॉट बी क्लोजली ऑब्टेन्ड। कोड वर्किंग में यही तो पर्पस है, फिनिशिंग प्रोसेस है। कोड वर्किंग का जो पर्पस है, एक तो जो मटेरियल प्रॉपर्टीज है उनको क्या करना, अच्छा करना, गुड। फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ, आई वांट टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, एट द सेम टाइम आई वांट टू मेंटेन द क्लोज टॉलरेंसेस। सरफेस फिनिश भी आपकी अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल आपका चाहे वायर ड्राइंग है, चाहे आपका शीट मेटल रोलिंग है, तो क्या है उसमें कोड मेटल शीट मेटल रोलिंग की बात कर रहा हूं, तो उस केस में आवर पर्पस इज टू गेट द फाइनल डायमेंशंस, एग्जैक्ट डायमेंशंस, क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंसेस, गुड सरफेस फिनिश। यही तो है, हॉट वर्किंग में ऑब्टेन नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दैट इन हॉट वर्किंग, राइट? क्यों नहीं कर सकता, वी विल सी इन अनदर क्वेश्चन। सो ओके, दिस इज व्हाट, so tolerances cannot be closely obtained, galat, can be obtained. So that means first and third. Which one is that? Which one of the followings are correct for strain hardening process? Yeah, I think you must be able to answer. करो जरा। Strain hardening is cold working process. Obviously cold working ही है, क्योंकि strain hardening हमने कहीं earlier when I was discussing somewhere in the earlier session, strain hardening you cannot obtain where in hot working. Hot working में strain hardening होती ही नहीं है, राइट? सो ये कोल्ड वर्किंग में होगी। ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल विल इंक्रीज, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज। हमने बात कर ली, पहला ही क्वेश्चन था आई थिंक, से मैंने डिफॉर्म किया, यहां तक डिफॉर्म कर दिया। फर्दर दैट इट कैन बी डिफॉर्म्ड इज विल बी लेस कंपेयर टू द ओरिजिनल, सो विल इंक्रीज नहीं, ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल विल डिक्रीज, नॉट इंक्रीज। सो ओनली ऑप्शन इज A. Let's talk about the hot working process. क्या बोलता है, which of the following statements is are correct for hot working process? In case of hot working process, the metal is heated below the recrystallization temperature. ये आपको पता है, it is heated above the recrystallization temperature. Surface finish and tolerances are inferior to the cold working process because of the surface oxidation and all that. See, आप एक बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जो है इसको डिफॉर्म कर रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या है, सरफेस की ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो सरफेस है वो दैट इज नॉट गोइंग टू बी हैव ऑफ दैट मच good quality or surface finish, excellent surface finish you cannot obtain. So this is also correct, this is correct. ये गलत था, ये ठीक है। deformation forces are low, obviously you know, hot working है तो obviously the amount of force you need to apply will be less, easily deform कर सकते हो 2 and 3, that is the C is going to be the correct option. In rolling operation, first breakdown product of ingot is called, normally अगर आपने देखना है तो आज की डेट में नॉर्मली हम उसको इनगॉट द वे द जो क्या कहते हैं प्रोसेस है, ज्यादा डोमिनेंट प्रोसेस तो आपकी क्या है, कंटिन्यूअस दिस कास्टिंग है, राइट? बट वन ऑफ केसेस में ऐसे भी हो सकता है द वे द क्वेश्चन इज फ्रेम। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे कंटिन्यूअस कास्टिंग करते हैं, ये मोल्टन मेटल है आपका, तो उसके फर्स्ट स्टेज पे ही यहां पर ही हम जो है अलग अलग प्रोडक्ट ऑब्टेन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर ही हियर वी गेट ब्लूम, बिलेट, स्लैब, ये नॉर्मली ओरिजिनल प्रोडक्ट होते हैं। जब कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस, तो यहां से कॉन्टिन्यूअसली मेटल जा रहा है, पोर हो रहा है, यहाँ डाइज बनी है, उसमें से ब्लूम भी बना सकते हो, बिलेट भी बना सकते हो, स्लैब भी बना सकते हो। ब्लूम समथिंग रेक्टेंगुलर शेप के इस तरह का होगा, ये क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होगा। बिलेट का आपका जो काइंड ऑफ सर्कुलर स्क्वायर होगा। स्लैब की आपकी जो है वो क्या होती है, विड्थ जो है ज्यादा होती है, समथिंग ये स्लैब होगी, लेंथ एंड ये, तो ये स्लैब है, ये बिलेट है, ये ब्लूम है। तो दीज प्रोडक्ट्स नॉर्मली वी गेट ओरिजिनल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर। अब बात ये आ गई कि कई जगह ऐसा होता है कि वन ऑफ द आप क्या करते हो, जहां कंटिन्यूअस कास्टिंग नहीं हो रही है, राइट, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग काइंड ऑफ यू कैन से, जैसे ब्लास्ट फर्नेस है, ऑल दैट, सो ह्यूज सेटअप। अगर ह्यूज सेटअप नहीं है तो आप शुरू में क्या करते हो, लार्जर प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्लूम्स ऑब्टेन कर देते हो, समथिंग एक, फॉर एग्जांपल ये आपका काइंड ऑफ मोल्ड है, मोल्ड में सॉलिडिफाई कर दिया आपने, उसको सॉलिडिफाई कर दिया, एंड देन फर्दर तो जो शुरू वाला प्रोडक्ट है उसको हम क्या करते हैं, ब्लूम बोल देते हैं उस केस में। दैट मींस फ्रॉम इनगॉट, सॉरी लेट मी जस्ट रिफ्रेम,
ये जो बना आपका, लेट्स से मैंने किया इसमें मोल्टन मेटल पोर किया और इसमें से जो निकला, जो सॉलिडिफाई करके प्रोडक्ट निकला, उसको बोल दिया मैंने इनगॉट, इसको इनगॉट बोल दिया। अब इस इनगॉट को क्या निकाल के फिर मैं फर्दर डिफॉर्म करूंगा किसमें, नॉर्मली प्रोडक्ट्स में। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है, फिर उसको हम क्या बोलते हैं, इस केस में क्या बोलते हैं, ब्लूम बोल देते हैं। जब ब्लूम वाला साइज जो है ऑब्टेन हो गया, राइट। सो एंड देन फर्दर अगर मैं डिफॉर्म करना चाहूं तो दैट वे आई कैन डू। सो नॉर्मली अगर आप बात करें आज की डेट में, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू हैव द थिंग्स। बट पहले जो डोमिनेंट प्रोसेस थी वो ये थी, पहले मैं क्या करता था, इनगॉट लेता था, फिर उसको क्या करता था, कंप्रेस करता था, यू कैन से आई यूज्ड टू प्लास्टिकली डिफॉर्म इट इनटू ब्लूम, एंड देन फिर उस ब्लूम में से मैं बिलेट ले लेता था, फिर एंड समथिंग दैट वे, या स्लैब्स एटसेट्रा दैट आई यूज्ड टू डू। और आज की डेट में अगर होगी तो दिस आर द वन ऑफ द प्रोसेस इज नॉट दैट डोमिनेंट एज दिस। ओके, so A is going to be the answer in this case. See this one. In rolling process, the state of stress in the material. रोलिंग कोई एक शीट मेटल रोलिंग ही नहीं है, जनरल नेम है, राइट। ठीक है, लेट्स से इस तरह के कुछ रोल्स हैं, ठीक है, ये घूम रहे हैं ऐसे, दिस रोटेटिंग दिस वे। तो मैं क्या करता हूं, यहां से कोई प्रोडक्ट फीड करता हूं एंड ये जो कर्वेचर है वो शेप ले लेगा वो। सो लेट्स से फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम फ्रंट साइड आई एम जस्ट इस तरह का कुछ बिलेट दे देता हूं, ये बिलेट है, सॉरी, हाँ चलो ठीक है, ये इस शेप का मैं जो बिलेट है, सो इन हीटेड स्टेट। अब मैं क्या करता हूं, इस बिलेट को इंसर्ट करता हूं इनसाइड, तो क्या होगा, ये रोटेट कर रहा है तो क्या करेगा, इस शेप को कंप्रेस करेगा और ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप का प्रोडक्ट दूसरी तरफ से आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को भी क्या बोल सकता हूं, रोलिंग। The rolls, these are the rolls that you, a set of rolls which you are using in order to change the shape or cross section of that particular workpiece. So if that be the case, अगर मैं इसको करता हूं तो obviously क्या situation you can think of, it is getting compressed, compression only. Sometimes you get confused क्योंकि हम केवल simply visualize करते हैं केवल sheet metal rolling पे ही, तो then तो he is talking about in general sheet metal rolling है, वहां भी आपका compression में ही है। But if you see in general, for example, अगर मैं ये दे दूं कि this is a rolling process, rolling process किसको नाम दिया गया है? The rolling process has been given the name to the process where you are making a use of the set of rolls in order to change the shape of that particular raw material, as simple as that. So over here you can just simply think of, it is going to be pure compression. ओके, ये एक एंड रिजल्ट है जो मैं शेयर करना चाहता था आपसे, विदाउट काइंड ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, मच एक्सप्लेनेशन, और विदाउट काइंड ऑफ प्रूफ। हाँ, ये आपके हेल्प आ जाएगा कहीं अगर जरूरत पड़ी तो। ये बेसिकली क्या है कि यू नो इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, पर्टिकुलर मेटल डिफॉर्मेशन प्रोसेसेस और वायर ड्राइंग में ये काम आता है आपके। सो दिस इज काइंड ऑफ stress strain diagram, convention stress strain diagram, and this is true stress strain diagram. So over here this is the correspond to the ultimate point, corresponding point somewhere here in the true stress strain diagram. तो ये आपका true stress true strain diagram है, and this is conventional stress conventional strain diagram है, right? So see, you know, after this point, you know, the necking of the material starts, the bond starts breaking significantly, cross sectional area जो है वो significantly reduce होता है, right? फ्रॉम दिस पॉइंट, सेम पॉइंट व्हेन ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे है तो ये है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज ए पॉइंट ऑफ इंस्टेबिलिटी। व्हाई पॉइंट ऑफ इंस्टेबिलिटी? कि आफ्टर दैट जो है वो आपका ब्रेन जो बॉन्ड्स हैं दे स्टार्ट ब्रेकिंग सिग्निफिकेंटली। तो अल्टीमेट पॉइंट यू कैन जस्ट थिंक ऑफ, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंस्टेबिलिटी। सो कंडीशन फॉर द इंस्टेबिलिटी इन यूनिएक्सियल टेंसाइल लोड, लोडिंग इज व्हाट? सो बेसिकली दैट इज इन टर्म्स ऑफ ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन हम बात कर रहे हैं,
तो दैट इज दिस पॉइंट, बियॉन्ड दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट व्हाट इज द, तो ये जो रिलेशनशिप है ये आप ध्यान रखोगे, you already know this sigma over here means sigma true. I denote this with true, you can denote it with sigma also. And c epsilon, epsilon मतलब true strain, इसका मतलब है ये इस पॉइंट की बात कर रहा है, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ट्रू स्ट्रेस एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये कंडीशंस जो है ये विद रिस्पेक्ट टू द कि एट द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर इंस्टेबिलिटी, और वो इंस्टेबिलिटी कौन सा पॉइंट है, दैट इज द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे द कॉरस्पॉन्डिंग द मैक्सिमम फोर्स, इसके बियॉन्ड नेकिंग हो रही है शुरू, राइट। सो वो ये रिलेशन याद रखना, कैसे आया ये डोंट बॉदर अबाउट दिस एज इस स्टेज पे हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है एंड ऑल दैट, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि कहां पर है वो इंस्टेबिलिटी का पॉइंट, कहां पर है और किस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। इसको जस्ट एट दिस मोमेंट सिंपली इफ यू कैन क्रैम इट दैट्स ऑल। जस्ट गो थ्रू दिस। Okay, continuous squeezing takes place where? Continuous squeezing takes place in see, if you have gone through the forging operation, we are having different kind of forging operation. For example, drop forging है, ऊपर से drop कर दिया हैमर, ओपन डाई फोर्जिंग, क्लोज डाई फोर्जिंग है। एक स्पेसिफिक ऑपरेशन, फोर्जिंग ऑपरेशन, इसको बोलते हैं प्रेस फोर्जिंग, या इसको नाम दिया गया मशीन फोर्जिंग बोलते हैं। सो मेकिंग यूज ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस, प्रेस मतलब मशीन विच इज यूज टू डिफॉर्म द मटेरियल। ये शीट मेटल में भी होता है, आपका जो शीट मेटल में भी ब्लैंकिंग पंचिंग ऑपरेशन है, उसमें भी आप क्या करते हो, जो मशीन यूज करते हो, द मशीन दैट यू यूज इन ऑर्डर टू कट द मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं, प्रेस बोलते हैं। या डीप ड्रॉइंग ऑपरेशन में द मशीन दैट यू यूज टू प्रोड्यूस द कप शेप आर्टिकल्स फ्रॉम द फ्लैट शीट, व्हाट वी कॉल्ड, प्रेस बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें जो प्रेस है या जो मशीन है उसमें क्या है, आप हाइड्रोलिक रैम का यूज करते हो, ग्रेजुअल लोड अप्लाई करते हो, राइट, टू डिफॉर्म द मटेरियल। तो इन केस ऑफ फोर्जिंग आल्सो जो कॉन्टिन्यूअस स्क्वीजिंग होगी, कॉन्टिन्यूअस स्क्वीजिंग, व्हाई कॉन्टिन्यूअस स्क्वीजिंग, ग्रेजुअली यू आर अप्लाइंग द लोड, उसको कॉन्टिन्यूअस स्क्वीजिंग का नाम दिया गया। सो दैट विल हैपन इन केस ऑफ ए प्रेस फोर्जिंग ऑपरेशन। क्लियर? सो इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रेस, रिलेट इट, एंड देन आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर। उसमें कॉन्टिन्यूअस, सडन स्क्वीजिंग नहीं होगी, कॉन्टिन्यूअस स्क्वीजिंग होगी, ग्रेजुअल स्क्वीजिंग होगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। I think if you know the basic this process of extrusion, then you will be able to answer this. The ram and the extruded product. He's talking about the forward extrusion. So forward extrusion, mein, you already know the process. You are having a kind of this container, then you are having a die over here, right? Something this way. So this is the die that you are having, and then the material comes out of the die. And from here you are having a ram that you are applying. Clear? So now see, जब आप यहां से लोड अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, डाई की ओपनिंग से मटेरियल दूसरी तरफ आएगा, इट कुड हैव डिफरेंट शेप्स। सो द रैम एंड द एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट इन द सेम ट्रेवल। तो रैम कौन सा है, ये रैम है, रैम एंड एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट ये सेम ट्रेवल डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे इन फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, ये फॉरवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस है। So this statement is correct. RAM and the extruded product travel in opposite direction. No, RAM भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। The speed of travel of the extruded product is same as that of the RAM. The speed of the travel of extruded product is same as that of the RAM. जो स्पीड इसकी है वही स्पीड इसकी होगी। No, reason being cross sectional area is different. If you want to maintain the material flow rate, continuity maintain करना चाहते हो, तो आपका जो यहां पर क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो रहा है, तो आपका जो है स्पीड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है, तो स्पीड इज इंक्रीजिंग, सेम एज यू हैव सीन केस ऑफ रोलिंग, राइट, शीट मेटल रोलिंग, सेम इज द सिचुएशन ओवर हियर। सो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द स्पीड ऑफ ट्रैवल ऑफ द एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन, डेफिनेटली सेम वे लाइक यू आर हैविंग इन केस ऑफ रोलिंग दैट यू हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। सो जो भी प्रोडक्ट आपका एक्सट्रूड होकर बाहर निकल रहा है, उसकी स्पीड जो है वो इनिशियली जो स्पीड इसकी है उससे ज्यादा होगी। रीजन बीइंग क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हुआ, सो द मटेरियल फ्लो रेट मैंने मेंटेन करना है, सो उस केस के लिए that has to be
this. Which of following statement is correct in drawing operation? Drawing. Let's see. Drawing operation involves pulling metal through the die using a tensile force from exit side of the die. ठीक है, ये rolling मतलब ये he's talking about the wire drawing operation. He's talking about the wire drawing operation. Okay. ये वायर ड्राइंग ऑपरेशन की बात कर रहा है और आपको पता है इन वायर ड्राइंग व्हाट यू डू इज ये डाई है, डाई ओपनिंग यहां है एंड यू आर हैविंग दिस पुल एंड पे अप्लाई करते हो आप, ये वायर रॉड है, राइट. सो नाउ ड्राइंग ऑपरेशन इन्वॉल्व्स पुलिंग मेटल थ्रू द डाई. पुल करते हो आप, एग्जिट में फोर्स अप्लाई करते हो, तो इसका मतलब है दिस इज करेक्ट. इलास्टिक फ्लो विल अकर बिकॉज द कंप्रेशन फोर्स दैट अराइजेस फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द मेटल विद डाई. ऑब्वियसली यहां पर जो मेटल है दैट इज रिएक्टिंग विद द डाई, तो जब खींच रहे हो तो इनडायरेक्ट कंप्रेसिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन द मटेरियल. सो जब इनडायरेक्ट कंप्रेसिव फोर्स है एंड यू आर चेंजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर, तो यू आर प्लास्टिकली डिफॉर्मिंग इट. व्हेन यू आर डिफॉर्मिंग इट प्लास्टिकली, तो ये इलास्टिक फ्लो नहीं होगा, क्या होगा, प्लास्टिक होगा, क्योंकि यू आर डिफॉर्मिंग इट परमानेंटली. तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, राइट. सो दैट इज हाउ यू हैव टू सी. Okay, good. So I think now we can have a break. So after the break, we will continue to discuss the remaining portion, right? So I think we can have right now, we are having this much is, we can take 15 minutes break. So right now it is 10. So we can come at 25, okay? 20 and 25, I think we can come. So so we are having 525, 525. Okay, so see you then.
Okay, so let's go to the next question now. Go ahead. Okay, so which of the following statement is or are correct for tube drawing? Right. So first of all, you must know one thing, that tube drawing, when we talk about, then tube drawing is a cold working operation. Cold working operation. So when you got cold working, that means first through hot working, we'll make a tube, let us say, having a certain thickness and all that. And after that, once we have made it, like you can go through piercing or maybe through extrusion. And once you have done that, then to impart the better quality to the surface, to this tube, and to increase the strength of this tube, what we do is we go for the tube drawing. And you are having like wire drawing, something kind of that die you are having, right? So this die, you allow it to pass. You allow this particular tube to pass through this, pulling it from the other end. In the process, its diameter is going to reduce, and since you are plastically deforming, pulling it, then the strength of this tube will also increase. And since it is a cold working process, obviously the surface finish is also going to be excellent. Okay, the see now, hot formed or extruded or rolled hollow cylinders or tubes are often cold finished by drawing to obtain closer dimensional tolerances, better surface finish, and increase mechanical properties. That's what I said, right? Hot forming, this initial, that kind of the tube is hot form. That means you are carried out in hot working. So it doesn't have a very good properties in terms of surface finish, in terms of strength and all that. Okay, so basically they are cold extruded, cold formed. That means this process is carried out. So this statement is correct. So that you can have better mechanical properties, better surface finish, and all that. Tubes are drawn using a method such as sinking. So there are different methods, like one of them is the tube sinking, plug drawing, and mandrel. So right, depending upon which method you are using and all that. So you at least need to have the idea that what kind of different tube making processes are there. That is the tube drawing process are there, sinking, plug drawing, and mandrel, etc. Right. So both of these statements are correct. So that means option C is going to be the correct answer. Secondary shear in sheet metal cutting operation occurs
Secondary shear in sheet metal cutting. In case of, for example, you are having a die, and if you want to cut a particular sheet, you are having a die, right? And you are having a punch over here, right? And this is a sharp punch, and you have kept a metal sheet over here which you want to cut. So obviously, this clearance between the punch and die face plays a great role. So let us say if that is sufficient, that is appropriate. More correct word would be if the clearance is appropriate, then the cutting will be proper. But if that is not proper, then in that case, let us say if he's saying it's very small. So think of a situation like this punch, and this gap is very small. Then obviously this face of this punch will try to shear this material from the surface. So that shearing we call it as a secondary shearing. It is not the shearing, actual cutting of the material, but sliding that surface over the another. So we call that as a secondary shear. So too tight clearances, that means this clearance is very small. In that case, in addition to cutting process is a shearing process only, but in addition to that, you are having a secondary shear in where you are moving one surface with respect to the other surface because gap is too small. So this is going to be the A. In progressive forming, see, I don't know, I just spoke over there when we were talking about the washer, production of the washer and all that. So you're having like different dies. So let's say here you're having a punch, like you're having over here. So these punches are connected. Okay, so let's say these punches are over here. We have this is punch holder. Okay, so in this case, if you see, you are having two dies. I have shown you only two dies, but okay, you can have more number of dies also, and you're feeding this stock. This stock means this sheet, let us say, from one end it is moving this direction. So for example, if I want to make a washer from the sheet, so what I need to do, I need to create a hole. So first hole will be created by this punch. So this is a punching operation over here in this die, whereas over here you need to cut this outer portion. So this will be the blanking operation over here. That means if you see, you are having a number of station over here, you could have number of station, but in each stroke of this particular ram, in which you are having multiple punches at different stations, in each stroke of the ram, multiple operations will be performed. So this kind of die operation we call as a progressive. Why progressive? Because sheet is moving, first cut is made, then it is, as it will go back, you will feed this stock inside it, something that way. So progressively these operations are taking place in each stroke of the ram. उसको हमने नाम दिया है called as progressive forming. Parts are formed at successive stages which are carried out in different die on each stroke of the process. Rather, this in itself explain it correctly. Parts are formed at successive stages, that means different stations, which are carried out in the same die. Now keep it in mind, this die is different, this die is different, this die will be different. So there will be different dies, there will be number of stations. In each station you're going to have the each one die. So it means, but in each of these stations, because since all these rams or all these punches will be, or you can say whatever we call them, they will be moving in simultaneously, it means number of operations will be performed in the single stroke of the ram, right? So that is why this is going to the correct answer. Same die, no, same die in each stroke of the no. They are having number of dies. Sheet metal is stretched and simultaneously bent to achieve the shape, carries no meaning. So progressive forming, this explains it in the correct way. Which of the following relationship is not true? Go ahead with this. So this is related to what? This is related to weighting lines, right? So just go through it and try to answer. Okay. So which one of these relations are true? Yes, I think the PDF that you have obtained, there may be some slight errors in terms of
the options that have been mentioned to you. Just go through these options. I think you will come to know. Okay. So let's say, what is this? When we talk about this way, basically he's talking about the waiting time for the system. So what he's writing is waiting for time for the system is equal to waiting time in the queue plus service time, 1 by mu. Mu is the service rate. So when 1 by mu will become, mu is the service rate, whereas average service rate, keep it in mind, this is average service rate. Average service rate. So this is average service rate. So, and 1 by mu will become average service time. So waiting time in the system, he's writing it as waiting time in queue plus average service time, actual time for being served. So this is in the queue, whereas this is the average time for serving that particular customer, which is actually being served. यही तो होता है. तो for example, if you are over here, this is a counter over here, and you are standing over here, right? So if I say that, okay, one person, some is also going to get the service. So this is the waiting time for these customers in the queue, but some may be getting the service over here. So when I include them also in this, then it becomes in the waiting in the, so this becomes the length of the queue, length of the system. So waiting time in the queue only corresponding to this. When I say waiting time in the system, then you will say including this also, who is getting served also. So what is he saying? Waiting time in the queue, how much time he spent in this line, plus on an average how much time he's spending over there, average service time. So that is why waiting time in system, this is whole system including the person who is being served, will be waiting time in queue plus average service time. So ये statement तो correct है. Now these two relations, if you see, we have a Little's law. Little's law, where when you want to find out the length of the system, it is equal to lambda is equal to waiting time in the queue. Sorry, waiting time in the system, and length of the queue is equal to the lambda into waiting time in the queue. ये Little's law है. तो अगर हमें length पता है, if we know the length, number of customers waiting in the system, number of customers waiting in the queue, I can find out the waiting time in the system, waiting time in the queue. So यहाँ देखो, ये this is matching exactly with this, and this is matching. This basically, that means LS into WS. So it means this is also true, this is also true. No relation. He's saying length of the system is equal to length of queue plus length of the system is equal to length of queue plus arrival rate. So वैसे देख लो आप, arrival rate or number of customers waiting in the queue, they are not matching. So that means, तो आपकी जो basic understanding है, basic formula, these in any case, see in the basic जो model है आपका waiting line का, उसमें you study all these, ये तो इसके बारे में तो बात करते हैं, you write the formula for LS also, LQ also, then from here you can obtain WS, WQ also. So all these formulas you study, so you can correlate very well, right? So I hope you understood and you will be able to recall that. Last time also हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, जो फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको. Just go through this. Now over here क्या बोल रहा है ये? A bank counter last arrival was 11 बजे था. It was at 11 o'clock. Average arrival rate is 2 per hour. Number of arrivals, poison distributed and all that. मैंने at that time also, जो भी मॉडल आप डिस्कस कर रहे हो वेटिंग लाइन में, particularly from the exam point of view, जो फर्स्ट मॉडल है, हमने बात की है कि हम जो है बोलते हैं कि when the arrival rates are poison distributed, तो जो टाइम्स हैं they are exponentially distributed. For example, हमने कहा था कि inter arrival, sorry, what do we call that? Arrival rate. अराइवल रेट अगर हमने डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? वी डिफाइन इट विद द हेल्प ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज रैंडम अराइवल्स हैं आपके, राइट? तो अराइवल रेट हो गया, चाहे व्हाट सर्विस रेट है. तो जो मॉडल हमने डेवलप किए हैं उनमें हम ये एज्यूम करते हैं कि अराइवल रेट एज वेल एज द सर्विस रेट क्या है, वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर रेट्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टाइम्स क्या होंगे? दे विल ऑटोमेटिकली विल बी एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो उसमें टाइम कौन से आ जाएंगे? ये अराइवल रेट है तो इंटर अराइवल टाइम, कि दो अराइवल्स के बीच टाइम क्या है? इंटर अराइवल टाइम.
एंड सर्विस रेट की जगह क्या आ जाएगा, सर्विस टाइम, एवरेज सर्विस टाइम कितना है। तो अगर मैं कहूं आपको कि सर्विस टाइम, सर्विस रेट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सर्विस टाइम क्या होगा, आप बोलोगे एक्सपोनेंशियल, या ये सर्विस टाइम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये क्या होगा, ये विल बी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड। सेम इज द स्टोरी ओवर हियर, इफ इंटर अराइवल टाइम इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड तो अराइवल रेट क्या होगा, सॉरी इंटर अराइवल टाइम इज द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड, अराइवल रेट क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड इट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमारी बेसिक स्टोरी जो है पहले हमें ऑलरेडी पता है। नाउ हमने कहा कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है अराइवल रेट्स के लिए फॉर एग्जांपल, तो वो तो हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन समथिंग कैसे डू वी राइट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स जो अराइवल रेट है समथिंग, आई एम नॉट रिकॉलिंग दैट फॉर्मूला, समथिंग यू आर हैविंग लैम्डा ई रेज़ पावर समथिंग दैट वे, जस्ट देयर वाज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब सेम वे हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है दैट इज फॉर टाइम ऑल्सो। तो हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द टाइम इज, और यहां पर क्या हो गया, ऑब्वियसली सर्विस टाइम, ठीक है। तो ये क्या होगा, सॉरी आई एम टॉकिंग, इस क्वेश्चन में आपका दिस इज रिलेटेड टू इंटर अराइवल टाइम की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट अराइवल विल बी, सो इज टॉकिंग अबाउट, सो लेट्स से अराइवल रेट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, इंटर अराइवल टाइम, दैट इज व्हाट इज द एवरेज अराइवल टाइम, सॉरी बिटवीन द टू अराइवल्स, व्हाट इज द एवरेज टाइम बिटवीन द टू अराइवल्स, एनी टू अराइवल्स, ये मतलब हुआ उसका। सो इंटर अराइवल टाइम कि दो अराइवल्स के बीच का ऑन एन एवरेज टाइम कितना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सो आई विल से दैट इज द इंटर अराइवल टाइम, इंटर अराइवल टाइम कि दो के बीच, दो जो अराइवल्स हैं उनके बीच टाइम कितना है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सॉरी दिस इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम्स, तो ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आती है, एंड दिस प्रोबेबिलिटी जो आप डेंसिटी फंक्शन है इसके लिए, दैट इज दिस इज इक्वल टू लैम्डा ई रेज पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया मैं कहता हूं कि इफ, कैसे देगा वो बोलेगा कि लेट अस से एवरेज अराइवल रेट, एवरेज अराइवल रेट इज लेट अस से टू कस्ट, सॉरी ऐसे लिखता हूं मैं, एवरेज अराइवल रेट इज लेट अस से 3 कस्टमर्स पर आवर, ये एवरेज अराइवल रेट है। तो बोलता है एज पर दिस, लेट अस से आई वांट टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दो अराइवल्स के बीच, सॉरी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू अराइवल्स के बीच जो टाइम होगा, जिसको हमने नाम दिया इंटर अराइवल टाइम, इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली 2 मिनट्स। तो आई कैन फाइंड इट आउट, दैट मींस व्हाट डज दिस मीन, आई विल से दैट इफ एवरेज अराइवल रेट इज दिस मच, then what is the probability that the inter arrival time कि दो अराइवल्स के बीच टाइम एग्जैक्टली 2 मिनट होगा, 2 आवर होगा, whatever you want to say, you will say let us say this, तो आपके पास होगा लैम्डा क्या दिया उसने, जैसे पर आवर की बात करता हूं और पे भी निकाल सकते हो, सो 3 इंटू ई रेज पावर माइनस 3 इंटू 2, और माय पॉइंट। सो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि लेट अस से इफ यू आर टॉकिंग, सेम इज द सिचुएशन फॉर दिस एंड दिस आल्सो, बट क्योंकि क्वेश्चन आपका इसके लिए फ्रेम किया गया है, तो इसके लिए एवरेज अराइवल रेट पता है आपको, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इंटर अराइवल टाइम कि दो अराइवल्स के बीच ऑन एन एवरेज कितना टाइम है, तो आप जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से पता कर सकते हो, एंड उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, ये है, ठीक है। इंटरप्रेट कैसे करना, जैसे मान ले कोई भी ले सकते हो, एनीथिंग यू कैन टेक इट, सो यू कैन से दैट ओके नो आई वांट टू फाइंड आउट कि इफ एवरेज अराइवल टाइम इज दिस, इफ एवरेज अराइवल टाइम जो है वो क्या है, सॉरी एवरेज अराइवल रेट इज 3 कस्टमर्स पर आवर, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटर अराइवल टाइम कि किन्हीं भी दो कस्टमर्स के बीच इंटर अराइवल टाइम क्या होगा, 3 आवर्स होगा, 3 आवर्स होगा, तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी दैट द इंटर अराइवल टाइम विल बी 3 hours will be equal to, we'll say 3 into lambda into, sorry, e into minus lambda into t is 3, तो आप स्पेसिफिक निकाल सकते हो कि ये है गॉट। सो एक तो ये है, आपको एक क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है,
one question could be framed directly exactly asking you to find out कि इंटर अराइवल टाइम इतना होगा तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यू शुड नो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस वन. नाउ इसको हटा रहा हूं मैं. इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, in a bank counter the last arrival was 11 am. 11 am में that was the last arrival. The arrival rate is 2 per hour. So can I say the average arrival rate जो है वो 2 per hour है. Let's say if I convert करना चाहूं मैं मिनट्स में, I can convert it 2 per hour. Right. So अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं तो I can convert it into by that is 60. So it will become you can get the in terms of minutes also. That is up to you how you want to find out. ठीक है, तो मिनट में भी निकालना चाहूं मैं तो I can get it like 2 by 60 से कर दो तो इतने कस्टमर्स पर आवर जो है एवरेज अराइवल रेट है. सो इट्स अप टू यू. लेट्स सी किसमें इंफॉर्मेशन दी है, बट एनीवे यू कैन फाइंड आउट कस्टमर्स पर मिनट. दैट वे आल्सो यू कैन टॉक 2 per hour और इतने 2 by 60 per minute. Number of arrivals Poisson distributed. Arrival number of arrivals, that इसका मतलब है कि arrival rate Poisson distributed है, तो obviously inter arrival time जो क्या होगा, that is going to be exponential distributed. ऑटोमेटिक है वो, या तो inter arrival time exponential है तो वो Poisson होगा. तो Poisson दिया, इसने मेंशन किया it's going to be inter arrival time to be exponential distributed. What is the probability that the next arrival is after 1 p.m.? It means क्या मतलब हुआ इसका, what is the probability that पहला अराइवल कब हुआ था 11 बजे, और दूसरा what is the probability that कि जो दूसरा अराइवल होगा that is going to be after 1 p.m. What does this mean? What is the probability that next arrival will be after 2 hours? ये मतलब हुआ 11 बजे हुआ पहला, तो next is going to be at after 1 p.m. तो 11 और 2 घंटे का डिफरेंस है. तो what he is asking that what is the probability that the next arrival is going to be after 2 hours? That is the inter arrival time will be more than 2 hours. So what is the probability that the inter arrival time will be more than 2 hours? अब ये ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है that is to get the exact कि what is the probability that inter arrival time will be 2 hours. What is the probability that inter arrival time will be more than 2 hours? If more than 2 hours then we talk about this region. तो उसके लिए more than 2 hours के लिए we say the probability that the inter arrival time is greater than any particular specific time. Let's say इस केस में बोला inter arrival time will be more than 2 hours. इस केस में is saying 2 hours, let's say. So this means this area. So how you write it? ये इसके लिए आप रखोगे फॉर्मूला, this is going to be e raised power minus lambda t. Clear? So am I clear? So whenever you want to find out the probability of anything more than this, then you will say, तो इस केस में आप बोल सकते हो what is the probability that the inter arrival time is more than 2 hours. अगर 2 hours बोलता है एग्जैक्ट तो ये फॉर्मूला, more than 2 hours what is the probability that inter arrival time, दो अराइवल्स के बीच जो टाइम जो है that is going to be more than 2 hours. More than 2 hours, that is inter arrival time will be more than 2 hours is equal to written by this way. Same way you can write it for, let's say if we say that what is the probability that inter arrival time will be less than 2 hours. Let's say he frames the question this way, what is the probability that inter arrival time is going to be less than 2 hours? तो क्या करो, इसको -1 कर दो. So what is the probability that inter arrival time will be less than 2 hours? तो आप बोलो 1 minus e raised power minus lambda t. Am I clear? So ये तीन फॉर्मूले हैं, आपने ध्यान रखने हैं. ये तो नॉर्मली आप स्टडी करते ही हो. व्हेन आई वांट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कि हाँ दो के बीच इंटर अराइवल टाइम कितना है, एग्जैक्टली 2 आवर्स है, तो आई कैन गेट इट फ्रॉम हियर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंटर अराइवल टाइम इज गोइंग टू बी मोर देन 2? तो ये एरिया पूरा, तो इज प्रोबेबिलिटी दैट इंटर अराइवल टाइम दिस इज मोर देन दैट पर्टिकुलर वैल्यू, लेट्स से 2 आवर्स. आप यहां से करोगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंटर अराइवल टाइम इज गोइंग टू बी लेस देन 2 आवर्स, तो यू विल मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला. इफ यू नो दैट देन योर जॉब इज डन. नाउ सी दिस ओवर हियर. See, so उसने दे दिया आपको what he says, what is the probability that the next arrival will be after 1 p.m. इसका मतलब है कि पहला अराइवल 11 बजे हुआ था, नेक्स्ट अराइवल का 2 घंटे बाद. तो probability that
the next arrival will be, that is inter-arrival time will be more than 2 hours. ये पूछ रहा है आपसे. What is the probability that is going to be more than 2 hours? So you will say minus lambda into t. ठीक है. So simply you will say minus e minus lambda, that is 2 into अगेन टाइम, क्योंकि आवर्स में तो इसको भी मुझे रेट जो है किसमें करना, आवर में रखना पड़ेगा. हैड इट बीन इन मिनट्स तो मैं मिनट्स में लेता. सो ये आपके ऊपर है, इफ यू वांट टू राइट इट दिस वे. फॉर एग्जांपल नाउ इनपुट दिस वैल्यू e माइनस अराइवल रेट 2 पर आवर मल्टीप्लाइड बाय t. t क्या है, आफ्टर 2 आवर्स. तो अगर मैं इसको पर आवर लिख रहा हूं तो इट इज आल्सो इन आवर्स. इफ पर मिनट लिख रहा हूं देन आई हैव टू राइट इट इन मिनट्स. सो दैट मींस एवरेज अराइवल रेट इज दिस एंड प्रोबेबिलिटी दैट it is more than this 2 hours, it is going to be t is more than 2 hours. So ये मेरी आ जाएगी, सॉरी इसको यस ओके. सो इट इज गोइंग टू बी e रेज पावर माइनस 4. ठीक है. आई होप यू गॉट इट. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू गेट इट. तो ये तीनों आपने ध्यान रखना है और यू कैन मेक यूज. अगर मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी होती लेट्स से इस केस में ही, अगर वो बोलता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट अराइवल विल बी बिफोर 1 PM, लेट्स से हैड दिस क्वेश्चन बीन दिस वे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट अराइवल विल बी बिफोर 1 PM. इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी दैट इंटर अराइवल टाइम विल बी लेस देन 2 आवर्स. यही मतलब हुआ कि 2 घंटे से कम होगा इंटर अराइवल टाइम, क्योंकि वो 1 बजे से पहले, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 बजे से पहले ही आ गया. तो 11 and 1. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंटर अराइवल टाइम दिस इज लेस देन 2 आवर्स. तो क्या बोलोगे आप बोलोगे 1 माइनस e रेज पावर माइनस lambda 2 पर आवर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी दैट इट इज लेस देन 2 आवर्स. दिस t स्पेसिफिक टाइम जो मेंशन किया हुआ है, ये आ जाएगा मेरा. एम आई क्लियर? ओके. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सिमिलर लाइंस पे ही है. व्हाट आई रोट, ये जो मैंने लिखा, जस्ट ओनली थिंग इज दैट यू रीड इट प्रॉपर्ली, दैट्स ऑल. इफ यू विल रीड इट दैट प्रॉपर्ली, और ये तीन ही पॉसिबिलिटीज के बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम करेगा वो, राइट? तो ये ध्यान रखना है आपने. सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द, पढ़ो जरा इसको, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू आंसर. राइट? तो ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी है किसके लिए, स्पेसिफिक के लिए, लैम्डा e रेज़ पावर माइनस लैम्डा t. इन अ बैंक काउंटर द लास्ट अराइवल वाज 11 AM. ठीक है, लास्ट अराइवल आपका 11 बजे है. अराइवल रेट इज दिस, अगेन द सेम वे. अराइवल रेट आपका क्या दिया है उसने, 2 पर आवर दिया है, 2 कस्टमर पर आवर. नंबर ऑफ अराइवल्स इज पॉइजन एंड इंटर अराइवल इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, नो इशू. पॉइजन इंटर अराइवल टाइम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ऑब्वियसली ये क्या है, इंटर अराइवल टाइम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है. अराइवल रेट जो है वो क्या है, दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड है. द सेम इंफॉर्मेशन. नोबडी हैज अराइव्ड टिल 12 नून. तो 12 बजे तक तो कुछ है ही नहीं, 0. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट अराइवल इज बिफोर 1 PM? ओके, नाउ इसका मतलब ये है ही इज टॉकिंग दैट एनी स्पेसिफिक टाइम, उससे पहले कितना है. तो हमने ऑलरेडी देखा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इंटर अराइवल टाइम इज लेस देन t इज इक्वल टू 1 माइनस e रेज़ पावर माइनस लैम्डा t. यही है प्रोबेबिलिटी दैट द इंटर अराइवल टाइम इज लेस देन t इज इक्वल टू दिस वन. नाउ फॉर अस व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज कि इंटर अराइवल टाइम विल बी लेस देन हाउ मेनी. तो देखो 11 बजे तक तो कोई था ही नहीं, तो उसकी तो बात ही खत्म कर दें. बट उसके बाद ही हैज आल्सो गिवन वन मोर इंफॉर्मेशन इवन आफ्टर दैट आल्सो. क्या बोल रहा है कि नोबडी वाज अराइव्ड टिल 12 नून. तो 12 बजे तक भी कोई नहीं था. तो मेरी जो काउंटिंग शुरू होगी दैट इज गोइंग टू बी आफ्टर 12 नून ओनली, नॉट फ्रॉम 11. 11 बजे भी कोई नहीं था, 12 बजे नहीं था. लास्ट फॉर मी इन टर्म्स ऑफ लेट्स से पर आवरली बेसिस पे जब बात कर रहा हूं, तो माय काउंटिंग इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
the next arrival is before. So what is the probability that the inter-arrival time will be less than 1 hour? कि मतलब क्या probability है कि 1 बजे से पहले होगा और 12 बजे के बाद होगा? What is the probability that is going to be after 12 noon, whereas prior to 1 p.m.? So it means what is the probability that the inter-arrival time will be less than 1 hour, not 2? क्यों? क्योंकि 12 बजे तक तो कोई था ही नहीं. So if there is any probability that exists, that is between 12 and 1, right? So that is how we have to see. So it means what is the probability that the inter-arrival time is less than 1 hour? You will say 1 minus average arrival rate minus 1, 2, and t is less than 1 hour. कि क्या probability है inter-arrival time is less than 1 hour? Less than 1 hour means before 1 p.m. and obviously after 12. So क्योंकि starting कहां से हुई? 12 से starting हुई. We are taking it as a starting point as 12. It means if we consider this 0, then obviously we can say that way into 1 t 1 minus e raised power 2. Okay, so this is how you can do this. ओके, सो वो ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई, इसके बेसिस पे वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है. एंड उसने पास में भी एक आधा क्वेश्चन फ्रेम किया है ऑन सिमिलर लाइंस, एंड देयरफॉर द सिचुएशन यू कैन फ्रेम द क्वेश्चन ऑन सिमिलर लाइंस फ्रॉम हियर आल्सो. ओके, सो लेट्स गो अहेड नाउ. अब एक इन्वेंटरी कंट्रोल से दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आल्सो समटाइम्स आस्क्ड. कुछ एक क्वेश्चन जो थे ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड ऑन इन्वेंटरी कंट्रोल, वो तो पूछता ही है उस डायरेक्शन में फ्रॉम डिफरेंट मॉडल्स, बट डिस्काउंट मॉडल से भी ही फ्रेम्स द क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द डिस्काउंट मॉडल. व्हेन यू आर हैविंग मल्टीपल डिस्काउंट्स व्हिच आर अवेलेबल विद यू, फ्रॉम देयर आल्सो ही फ्रीक्वेंटली फ्रेम्स द क्वेश्चन. और जो मेथोडोलॉजी है, जो अप्रोच है इन ईच क्वेश्चन इज सेम, एग्जैक्टली सेम है. तो इफ यू नो वन अप्रोच देन आई थिंक यू विल जॉब विल बी done. So let me just put it in the right framework, then I think yeah, so I will write it in this particular format. Demand आपको दी हुई उसने, so demand I am writing it over here. Demand annual demand है ये. So even though see keep it in mind, कुछ चीजें जो है ना इसने बहुत लूज उसमें दिया गया है ये. So you know this is kind of a not a kind of this एग्जाम के लिए उसने क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया, लाइक यू आर हैविंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया है. सिंपली जैसे आप क्लास वर्क देते हो, काइंड ऑफ दैट वे इट हैज बीन फ्रेम्ड. बट इसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी करेक्ट कर लेते हैं. आई थिंक देन वी कैन इंटरप्रेट. लेट्स से कि जो डिमांड दी है उसने वो एनुअल दी है. इन गेट ही इज गोइंग टू राइट एवरीथिंग वेरी क्लियरली, जस्ट कीप इट इन माइंड, राइट? सो लेट्स से इसने डिमांड दे दिया ये 14,000 पर ईयर. ठीक है, यू कैन मेक द करेक्शन आल्सो इफ यू वांट टू मेक. CO, you know, order cost, obviously we understand order cost, so 400 per order, that means rupees per order. ये भी क्या है, डिमांड इतने यूनिट्स पर ईयर, रुपीस पर ऑर्डर. हर एक को ऑर्डर करने की कॉस्ट क्या है, 400 रुपीस है. C इज द यूनिट कॉस्ट. हर एक कंपोनेंट या पार्ट की जो कॉस्ट है इस केस में, ही इज सेइंग दिस इज 40 रुपीस 40 पर यूनिट. सो आई कैन से दिस इज 40 what rupees per unit या per article या per component, so whatever you want to say, right? And then you are having I 20%. ये carrying cost है basically. Again I think one of the question that I had taken earlier was where I had told you that he should specifically very clearly he should mention that carrying cost is on yearly basis, what percentage of what. बट इफ इट इज नॉट गिवन, नॉर्मली जो है आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है व्हाटएवर द परसेंटेज गिवन दैट इज ऑफ द यूनिट कॉस्ट. तो यूनिट कॉस्ट हमारी कितनी है, इतने रुपीस पर यूनिट. सो 20% ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट कॉस्ट, बट ही हैज नॉट मेंशन ओवर हियर, बेसिकली दिस इज ऑन ईयरली बेसिस मेंशन. सो एनीवे वी कैन टेक इट एज ऑफ नाउ, दिस इंफॉर्मेशन इज विद अस. सो नाउ मैं इसको कंपाइल करता हूं इंफॉर्मेशन को पहले, फिर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. सो क्वांटिटी जितनी ऑर्डर कर रहा हूं कितनी है, order quantity, I can say order quantity. Then you are having C
C I am writing that is the unit cost. I will write it as a unit cost. Rupees per unit. And then carrying cost, I am writing it over here. Carrying cost. Or carrying cost, I am writing it rupees per unit per year. Rupees per unit per year. पेज थोड़ा कम पड़ेगा इसमें, बट एनीवे आई विल ट्राई टू अकोमोडेट. मैं इस इंफॉर्मेशन को ऐसे लिख रहा हूं. सो अगर ऑर्डर क्वांटिटी Q1 जो है दैट इज लेस देन 2000 and let us say if I say greater than 2000 or equal to Q2 less than 5000 and greater than equal to 5000, ये अब इसको मैं कंपाइल कर रहा हूं इंफॉर्मेशन में. सी द सप्लायर इज विलिंग टू गिव एन ऑल क्वांटिटी डिस्काउंट और 2% इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन दिस. सो ये डबल डिस्काउंट मॉडल है. जो बेसिक मॉडल दैट यू हैव डिस्कस्ड दे आर नॉट बेस्ड अपॉन डिस्काउंट. एक ही डिस्काउंट का मतलब है कि व्हाटएवर द यूनिट प्राइस व्हिच इज मेंशन ओवर हियर दैट विल नॉट चेंज. चाहे आप 1 यूनिट लो, 100 लो, 1000 लो, लाख लो, यू हैव टू पे पर यूनिट इतना ही देना पड़ेगा. बट एज यू नो, जैसे मार्केट में जाते हो आप क्वांटिटी ज्यादा लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है. सेम वे यू आर हैविंग दो डिस्काउंट है. क्या बोलता है ये तो क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2000. इसका मतलब है फर्स्ट केस में अगर एनी क्वांटिटी दैट यू परचेज इफ इट इज लेस देन 2000 नॉट इक्वल लेस देन 2000 तो कोई डिस्काउंट नहीं है. बट इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर कोई क्वांटिटी में परचेज कर रहा हूं विच इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2000 तो उसके ऊपर डिस्काउंट है. कितना? 2% ऑफ व्हाट? ओरिजिनल यूनिट कॉस्ट. बट दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द यूनिट लेस देन 5000. इसका मतलब है 5000 से कम है बट 2000 के इक्वल और ग्रेटर देन 2000 है. कोई क्वांटिटी परचेज करता हूं, इफ आई परचेज एनी क्वांटिटी तो आई एम गोइंग टू हैव अ डिस्काउंट ऑफ 2%. दैट इज व्हाट ही से मेंशन. एंड व्हाट ही सेज द 4% व्हेन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000. तो इस स्टेप में मैंने लिखा कि इफ यू परचेज एनी क्वांटिटी व्हिच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000, 5000 या 5000 से ऊपर खरीदते हो, then you are going to have a discount which is 4%. That's all. The same information I have displayed. So less than 2000 no discount, equal to or greater than 2000 but less than 5000 discount of 2%. But if it is greater than equal to 5000 तो आपको डिस्काउंट मिलेगा कितना? 4%. अब देखते हैं यूनिट कॉस्ट की बात करते हैं. तो जब कोई डिस्काउंट है ही नहीं तो यूनिट कॉस्ट वाज इन दिस केस देयर इज नो डिस्काउंट. यूनिट कॉस्ट हर एक यूनिट की कॉस्ट 40 है. कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 20% of the unit cost. When we say 20, तो 20 of what? 20% of the unit cost. So 20% of this 40 कर लो आप, क्या कितना हो गया? 8, right? So 8 आपका आ गया कैरिंग कॉस्ट. और 8 क्या है आपका? रुपीज पर यूनिट पर ईयर. कि एक यूनिट को मैं पूरा साल कैरी करता हूं तो मुझे 8 रुपए उस यूनिट के ऊपर खर्च करने पड़ेंगे एज ए कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट. ठीक है. अब बात करते हैं सेकंड स्टेप पे जिसके ऊपर मुझे 2% डिस्काउंट है. तो 2% डिस्काउंट किसके ऊपर है ये? तो इसका मतलब 2% डिस्काउंट हो गया तो मेक 2% ऑफ दिस 40 का 2% करो 2/100. सो इट बिकम्स व्हाट? 0.8. मतलब 0.8 रुपीज का डिस्काउंट मिला मुझे अगर मैं एनी क्वांटिटी ऑन ईच यूनिट इफ आई एम परचेजिंग क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 बट लेस देन 5000. इसका मतलब है 0.8 का डिस्काउंट किसके ऊपर? 40. ओरिजिनली 40 था तो 40 माइनस 0.8 तो हर यूनिट कितना पड़ेगा? रुपीज 39.2. ठीक है. एंड व्हाट इज द कैरिंग कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज ऑन द परसेंटेज ऑफ यूनिट कॉस्ट. इस केस में यूनिट कॉस्ट कितनी है? इतनी है. तो कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? दैट इज द व्हाट? 20% ऑफ दिस. सो 20% ऑफ दिस कितना हो जाएगा? 20% ऑफ कर लो आप. 20% इसका जो वैल्यू करोगे 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ 39.2 जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्या आ जाएगा? कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट पर ईयर. सो ये वैल्यू आएगी आपकी 7.84. ठीक है. सेम वे फर्दर एज वी आई मूव फर्दर ही सेज कि आपको इफ यू परचेज एनी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 तो उस केस में डिस्काउंट कितना है? 4% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट. ओरिजिनल कितना है? 40. तो 4% कितना हो जाएगा? 0.8 का डबल. तो 4% ऑफ 40 कितना हो गया? 1.6.
इतना डिस्काउंट हो गया, इसका मतलब है कि आपको यहाँ डिस्काउंट कितना 40 माइनस हर एक यूनिट पे मिलेगा 1.6 रुपीज का, कितना आ जाएगा ये 40, ये आपका आएगा 38.4, तो हर एक यूनिट इतने का पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट विल बी व्हाट 20% ऑफ दिस यूनिट कॉस्ट, सो मेक इट 20% ऑफ दिस, कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 7.68। ठीक है, तो ये आगे कैरिंग कॉस्ट रुपीज पर यूनिट पर ईयर, तो इसको मैं चाहूं तो आई कैन से CC1, आई कैन से CC2, कैरिंग कॉस्ट 2 जब डिस्काउंट है, एंड व्हेन यू आर हैविंग CC3, सेम वे आई कैन से यूनिट कॉस्ट C1, इसको बोल C2 बोल सकता हूं, इसको C3 बोल सकता हूं, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल रहा है डिफरेंट क्वांटिटीज के ऊपर। है क्लियर? तो अब आपने क्या करना है इस केस में, अब बोलता कि बेस्ट प्रॉफिटेबल कौन सा होगा, प्रॉफिटेबल वो होगा आउट ऑफ दिस, कौन सी क्वांटिटी कैसे परचेज करूं, शुड आई गो फॉर एनी क्वांटिटी, इस रेंज में जाऊं, इस रेंज में जाऊं कि इस रेंज में जाऊं, व्हाट शुड बी द क्वांटिटी दैट आई शुड परचेज सो दैट टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, ये मतलब है इसका। तो आई हैव टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, सो टोटल कॉस्ट मिनिमम ऑब्टेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहां पर एक अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ती है। फर्स्ट आई विल चेक द इकोनॉमिक ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट डिस्काउंट, कि लार्जेस्ट डिस्काउंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो कितनी है, तो लार्जेस्ट डिस्काउंट इज अवेलेबल over here, so first corresponding to that I will calculate the economic order quantity. So how do you write the economic order quantity, 2DC0 divided by CC. Now since I am calculating for this step at which maximum discount is available, so ये carrying cost वहां क्या होनी चाहिए 3, ये, because I am trying to find out the quantity that I should purchase जिसके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, let's find it out। अगर मुझे जो है वो क्वांटिटी 5000 से ऊपर होगी, इफ दैट क्वांटिटी कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000, देन आई विल परचेज दैट क्वांटिटी, इफ दैट हैपेंस, लेट्स सी। सो ये मेरी वैल्यू आई, कैलकुलेट करो इसको मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूं, लेट मी जस्ट क्रिएट द स्पेस ओवर हियर। सो इसको भी मैं हटा देता हूं, 40 था आपका, ओरिजिनल। सो नाउ Q3 स्टार में कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट इज 2DC0 डिवाइडेड बाय CC3। सो डिमांड तो वही रहेगी, डिमांड इज नॉट गोइंग टू चेंज, एनुअल डिमांड तो वही रहेगी, ऑर्डर कॉस्ट भी वही रहेगी, ऑर्डर कॉस्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज, फॉर ईच ऑर्डर यू आर गोइंग टू हैव द सेम ऑर्डर कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट चेंज होगी, बिकॉज कैरिंग कॉस्ट इज द परसेंटेज ऑफ दिस यूनिट कॉस्ट, और यूनिट कॉस्ट डिपेंड करेगी नंबर ऑफ क्वांटिटी दैट यू परचेज, इसलिए मैंने जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग CC3 लिखा। नाउ ओवर हियर यू कैन राइट टू डिमांड कितनी है 14,000 multiplied by what, 2 multiplied by 14,000, what is the order cost 400, and what is the carrying cost, carry cost for 7.68 ये क्वांटिटी आएगी Q3 स्टार आएगी आपकी 1207.61, ये इतनी आई। अब देखो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेस्ड अपॉन द लार्जेस्ट डिस्काउंट दैट इज आई एम हैविंग इज कमिंग नॉट कमिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000, अगर आती तो आई वुड हैव परचेज्ड दैट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को परचेज करता, डिस्काउंट उसमें जो 4% था, एंड आई वुड हैव क्लोज द ऑर्डर। बट ये जो है ये तो आ रही है किससे, इवन ये तो फर्स्ट स्टेप में जा रही है। सो व्हेन इट इज गोइंग इनटू द फर्स्ट स्टेप ओवर हियर, देन व्हाट आई नीड टू चेक इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एट द फर्स्ट स्टेप, right, because it is less than 1200 is less than 2000, so I am going to first step। तो फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा, I need to check the economic order quantity for corresponding to this, so इसलिए मैं क्या करूंगा, पहले I need to calculate the Q1 स्टार, कि अगर कोई क्वांटिटी ऐसी आ रही है which is less than 2000, so I will calculate the what is the economic order quantity corresponding to that। डिफरेंस क्या आएगा, ये तो सेम ही रहेगा, वो अपर वाला टर्म, ये नीचे वाला डिफरेंस आया, बिकॉज any quantity less than 2000 you are going to have the carrying cost which is 8, that is why I am writing it 2cc1। okay, just simply input the value and 2 rest वो तो आपका वही आएगा 14,000 multiplied by 400 divided by carrying cost कितनी है 8। now see how much is that value is coming out, that value is coming out to be 1183.21, ठीक है।
It means if the economic order quantity that I'm getting over here that is falling within that bracket, it means मुझे चेक करना पड़ेगा अब। तो पहली बात तो ये है कि मैंने यहां पर पता किया, तो दिस वैल्यू इज कमिंग एंड आई एम गोइंग टू द फर्स्ट स्टेप। नाउ फर्स्ट स्टेप से रिलेटेड मुझे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी चेक करनी पड़ेगी कि लेट अस से इफ आई परचेज समवेयर लेस देन 2000, तो वो क्या क्वांटिटी है दैट शुड आई परचेज सो दैट ओवरऑल कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड। ये मतलब हुआ उसका। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा। सो आई गॉट दैट वैल्यू दिस मच। इसका मतलब है कि मुझे लगता है एज ऑफ नाउ कि ये वो क्वांटिटी है विच इज गोइंग टू गिव मी द लीस्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ये मुझे पता चला अभी। बट अब क्या करना पड़ेगा, मुझे टोटल कॉस्ट चेक करना पड़ेगा। नाउ स्टेप मुझे एक्सप्लेन करना, आई विल नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल, बट अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं केवल स्टेप बता देता हूं इस केस में। इस केस में अब क्या करना पड़ेगा मुझे, आई नीड टू चेक द टोटल कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस क्वांटिटी, कि अगर मैं ये क्वांटिटी परचेज करता हूं तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ईयरली टोटल कॉस्ट कितनी होगी। सेम वे मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशनल स्टेप कैरी आउट करने पड़ेंगे टू चेक कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर जो ब्रेक क्वांटिटी है, इन क्वांटिटी को ब्रेक क्वांटिटी बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर 2000 ब्रेक क्वांटिटी है और एक ब्रेक क्वांटिटी ये है, राइट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस ब्रेक क्वांटिटी के ऊपर अगर मैं ये परचेज करता हूं जिसके ऊपर 2000 है, जिसके ऊपर मुझे डिस्काउंट अवेलेबल है, एनी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 आई एम हैविंग द क्वांटिटी डिस्काउंट, राइट। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके ऊपर टोटल कॉस्ट मिनिमाइज आ जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो क्वांटिटी 5000 है उससे मोर है उसके ऊपर जो कहीं टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम चेक करते हैं कि टोटल एनुअल कॉस्ट, अभी टोटल एनुअल कॉस्ट क्या है, टोटल मटेरियल कॉस्ट प्लस, आपको पता होगा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में दो चीजों को हम मिनिमाइज करते हैं। हम टोटल कॉस्ट कैसे लिखते हैं, लेट मी जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला पहले। टोटल एनुअल कॉस्ट जैसे मैं लिखना चाहता हूं, लेट्स से आई वांट टू राइट द टोटल एनुअल कॉस्ट, कैसे लिखते हो आप लिखते हो, आप बोलते हो कि एनुअल डिमांड कितनी है, आप बोलते हो 14,000 डिमांड है। एनुअल डिमांड क्या है, जितनी भी है, और उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यूनिट कॉस्ट से, सी से, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, उस मटेरियल की टोटल कॉस्ट। बट इसके अलावा भी और कॉस्ट है, कौन सी, ऑर्डर करने की कॉस्ट। तो कैसे निकालते हो आप, दिस इज नॉट द टोटल कॉस्ट, ये तो केवल मटेरियल की कॉस्ट हुई, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हो, आप बोलते हो कि हर एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट इतनी है, और पूरे साल में मैंने कितने ऑर्डर प्लेस किए, इन होल द ईयर हाउ मेनी ऑर्डर डिड आई प्लेस। आप बोलो कि डिमांड इतनी थी पूरे साल में, हर बार मैं क्यू ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, तो ये आएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट आई प्लेस इन द ईयर, और हर एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट इतनी है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट आई प्लेस इन द ईयर, ये आएगी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। सो व्हाट इज द टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या है, आप बोलोगे एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट क्या है, इतनी है, इतने रुपीस पर यूनिट पर ईयर, एक यूनिट को पूरा साल कैरी करने की कॉस्ट इतनी है। तो ऐसे कितने ऑन एन एवरेज यूनिट सामने कैरी किए थ्रू आउट द ईयर, तो आप एज एन इन्वेंट्री टू से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितनी कैरिंग कॉस्ट थी टोटल। यू विल से, क्योंकि ऑर्डर क्वांटिटी क्यू आप करते हो उस मॉडल में, ये वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक मॉडल ओनली, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है क्यू, तो एवरेज क्वांटिटी कितनी हो जाती है क्यू बाई 2। तो ऑन एन एवरेज मैंने पूरा साल कितनी क्वांटिटी कैरी की एज एन इन्वेंट्री, आपने कहा इतनी, ये एवरेज इन्वेंट्री कैरी की। सो दिस इज द एवरेज इन्वेंट्री, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आई कैरीड थ्रू आउट द ईयर एज एन इन्वेंट्री। और अगर हर एक यूनिट को कैरी करने की कितनी कॉस्ट है, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में होना चाहिए जब भी मैं कैलकुलेशन करूंगा फर्दर। अब मैं इस फॉर्मूले को साइड में लिख देता हूं, और साइड में उसको आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा साथ, सॉरी सो by mistake. So need to have patience with me now. Okay, anyway, I think अगर आपने लिख लिया है उसको तो प्लीज ट्राई टू मैनेज विद दैट, रिलेट कर लूंगा मैं क्योंकि लिखने में टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। सो एनीवे, जो फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं यहां पर। मैंने कैसे लिखा टोटल कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट कैसे लिखी, मैंने लिखी डिमांड कितनी थी साल की और यूनिट कॉस्ट कितनी थी, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई कितने ऑर्डर प्लेस किए, डिमांड डिवाइडेड बाई हर बार कितना ऑर्डर प्लेस किया, प्लस कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पर ईयर मल्टीप्लाइड बाई कितनी इन्वेंट्री मैंने होल्ड की, ठीक है। तो
लास्ट में मैंने बताया कि हमने कैलकुलेट किया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू T1 Q1 स्टार, वो वैल्यू आई थी मेरी, हाउ मच वाज दैट, दैट इज 1183.21। ओके, दैट वाज द क्वांटिटी। तो मैंने कहा कि मैंने क्या करना, अगर मान लिया लेट्स से मैं ये परचेज करता हूं, ये क्वांटिटी परचेज करता हूं, तो टोटल ईयरली कॉस्ट कितनी आएगी। तो मैं कैसे लिखूं, सेम लेट्स से टोटल कॉस्ट जब मैंने यूनिट परचेज किए कितने 1183.21, तो कैसे आएगा, जब मैं ये यूनिट परचेज कर रहा हूं इन ईच ऑर्डर, ये मतलब हुआ व्हेन आई एम, कीप इन माइंड, ये टोटल क्वांटिटी परचेज नहीं कर रहा हूं, एवरी टाइम हाउ मच क्वांटिटी आई एम प्लेसिंग एज एन ऑर्डर। आप बोलोगे इतना, यही तो हुआ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि ऐसी क्या क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करूं एवरी टाइम सो दैट टोटल कॉस्ट गेट्स मिनिमाइज, यही मतलब हुआ इसका। सो अगर मैं ये क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करता हूं, क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करता हूं, तो टोटल कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट कितनी होगी। सो इट मींस इफ आई एम प्लेसिंग दिस मच क्वांटिटी एज एन ऑर्डर, दैट मींस क्यू, ये मतलब ये हुआ, या Q1 स्टार जो भी बोल रहे हो, तो कैन आई राइट, ऐसे लिखना चाहिए। देखो मैंने, सिंस इट इज लेस देन 2000, सी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, कैरिंग कॉस्ट कितनी है, उस लाइन के इक्विवेलेंट देखो जो हमने शुरू में देखी है। तो आई कैन राइट दिस वे, देखो मैं फिर हटा दूंगा इसको, डिमांड कितनी है एनुअल मल्टीप्लाइड बाई सी, डिमांड तो उतनी रहेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कौन सी, शुरू में C1 होगी क्योंकि ये लेस देन 2000 है, व्हाट इज दैट, तो यूनिट कॉस्ट कितनी थी, C1 थी, C1 को मैंने नाम दिया था व्हाट वाज, दैट इज 40 प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय डिमांड कितनी, डिमांड तो वही रहेगी, कितना ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं मैं, इतना Q, दैट इज 1183.21 प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है CC, आप बोलोगे CC 1 होगा, क्यों, बिकॉज फर्स्ट स्टेप में इससे कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ऑर्डर क्वांटिटी दिस एंड लेस देन 2000, तो CC 1 होगा मल्टीप्लाइड बाय कितना ऑर्डर प्लेस किया, you are placing this much quantity every time, so it is 1183.21 divided by 2. The only confusion that you can have over, यहां पर होगा इसमें, ये क्या लूं मैं, अब क्योंकि ये लेस देन 2000 है, दिस ये क्वांटिटी लेस देन 2000 है, सो इट मींस द कैरिंग कॉस्ट जो है वो पहले वाली कैरिंग कॉस्ट होगी, एज सिंपल एज दैट। और यहां पर यूनिट कॉस्ट कौन सी होगी, जो ओरिजिनल यूनिट कॉस्ट थी, क्योंकि यूनिट्स लेस देन 2000 खरीदेगा तो यूनिट कॉस्ट C1 होगी। Am I clear? अब आ जाते हैं, तो अब मैं इसको आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यू, ओके, इसको हटा रहा हूं मैं, एंड नाउ आई एम राइटिंग डायरेक्टली द वैल्यूज सो दैट वी कैन गेट द, ओके, बट यू हैव टू रिलेट इट विद द, इसी फॉर्मूले के हिसाब से रिलेट करो। डिमांड कितनी है, डिमांड यू आर हैविंग एनुअल डिमांड 14000 इनटू यूनिट कॉस्ट कितनी थी 40 रुपीस प्लस ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 400 मल्टीप्लाइड बाय डिमांड कितनी है, दैट इज गोइंग टू बी 14000 डिवाइडेड बाय व्हाट, क्यू, कितना ऑर्डर प्लेस किया 1183.21 प्लस कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर CC1 इज हाउ मच 8 मल्टीप्लाइड बाय एवरी क्वांटिटी होल्ड, हर बार इतना प्लेस करो 83.21 डिवाइडेड बाय 2, 569465.72, क्या ही, दिस इज द टोटल कॉस्ट पर एनम, पूरे साल में ये कॉस्ट होगी इंक्लूडिंग द मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, ओके। अब हमने कहा कि ब्रेक क्वांटिटी, पहली ब्रेक क्वांटिटी कितनी थी 2000, सेकंड ब्रेक क्वांटिटी वाज 5000, तो आई हैव टू चेक, अगर मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं 2000 का, इफ आई एम प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ 2000, कहीं टोटल कॉस्ट इससे कम तो नहीं आएगी, जो दूसरी ब्रेक क्वांटिटी है विच इज 5000, इफ आई प्लेस द ऑर्डर ऑफ 5000, तो कहीं टोटल कॉस्ट जो है उससे कम तो नहीं आएगी, सो दैट इज व्हाट आई वांट टू चेक। नाउ सी, इफ आई विल प्लेस द ऑर्डर ऑफ व्हाट 2000 क्वांटिटी, तो मेरी क्यू क्या होगी अब 2000, क्यू बिकम 2000, तो कैसे आएगा ये, अब ध्यान रहे कि अगर मैं व्हेन आई एम प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ 2000, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी है, ऑर्डर कॉस्ट क्या होगी, ऑर्डर कॉस्ट कम होगी, बिकॉज इट विल बी डिस्काउंटेड 2% डिस्काउंट, और जो सॉरी पार्ट कॉस्ट कितनी होगी, कम होगी C2, that is unit cost will get decreased because I am getting a discount of 2%, and carrying cost also is the percentage of that unit cost, so it means if it is the 7.82, so that is the corresponding, तो जो भी वैल्यू कैरिंग कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट की है, they correspond to the now second step, because at that second step where if I will purchase any quantity 2000
और ग्रेटर देन दैट, अगर 2000 भी खरीदता हूं तो मुझे डिस्काउंट अवेलेबल होगा, तो इसका मतलब सारी वैल्यू जो है दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू द सेकंड स्टेप. नाउ सी इट मींस कैसे लिखूंगा मैं, D इंटू C2 प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट तो वही रहेगी, डिमांड वही है, केवल ऑर्डर चेंज हो गया आपका, 2000 प्लेस कर रहे हो, प्लस अब ये कैरिंग कॉस्ट जो है चेंज होगी, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट के बाद थी तो 7.84, तो कैरिंग कॉस्ट कौन सी थी है, CC2 मल्टीप्लाइड बाई कितना, ऑर्डर कितना प्लेस कर रहे हो 2000 का, 2000 डिवाइडेड बाई 2. क्लियर, बस अब मैंने वैल्यूज इनपुट करनी है, दैट्स ऑल. तो कहां ध्यान देना है आपने, यहां पर C1 था, यहां C2 है, यहां पर CC1 था, यहां CC2 है, यहां पर ऑर्डर क्वांटिटी ये थी, यहां पर ऑर्डर क्वांटिटी ये है, यहां पर ऑर्डर क्वांटिटी ये थी, यहां पर ये है, दैट्स ऑल. तो आई एम राइटिंग दैट वैल्यू नाउ. सो इट इज हाउ मच, 14,000 मल्टीप्लाइड बाई यूनिट कॉस्ट कितनी है, कब होगी आपकी 39.2 है, 39.2 प्लस ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर तो उतनी है, एनुअल डिमांड भी उतनी है, पर ऑर्डर जो मैं प्लेस कर रहा हूं अब आई एम प्लेसिंग 2000 प्लस कैरिंग कॉस्ट कितनी है, कैरिंग कॉस्ट कम होगी आपकी 7.84 मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डर जो आप 2000 का प्लेस कर रहे हो हर बार, एवरी टाइम यू प्लेसिंग 2000 डिवाइड बाय 2, जो वैल्यू मेरी आई वो कितनी आई, दिस इज गोइंग टू बी 559440 रुपीस पर एनम. तो देखो क्या हो रहा है, तो एक मेरे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी थी जो ये थी, उस पे मैं टोटल एनुअल कॉस्ट निकाला तो ये आ रही थी, जब अगर मैं 2000 का ऑर्डर प्लेस करता हूं इन विच आई एम गेटिंग 2% डिस्काउंट, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, इतनी, तो ऑब्वियसली कम होगी. देखो सी हमें लग रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है, कम हो रही है, इसका मतलब है इफ गिवन द चॉइस व्हिच वन ऑफ दीस टू शुड बी परचेज, आप बोलोगे मैंने मुझे ये परचेज करना चाहिए, क्यों, ये परचेज करने का मतलब ये है कि आई शुड प्लेस द ऑर्डर ऑफ 2000 क्वांटिटी ईच टाइम, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है. अब एक क्रॉस चेक और मारना पड़ेगा हमें, बिकॉज मेरे पास एक ब्रेक क्वांटिटी और है, कौन सी, जिसके 5000 है एंड डिस्काउंट जो है हाईएस्ट है. सो लेट्स से इफ आई से दैट if I decide to purchase the quantity 5000 जिसके ऊपर मुझे डिस्काउंट अवेलेबल है, सो क्या होगा अगेन, तो कहां चले जाएंगे, इसके ऊपर 4% डिस्काउंट है, तो ऑल द कैरिंग कॉस्ट वैल्यू एज वेल एज द इकोनॉमिक सॉरी दिस द वैल्यू दैट इज द यूनिट कॉस्ट वैल्यू दैट शुड कॉरस्पॉन्ड टू द थर्ड, राइट. सो क्या होगा इसमें, आप बोलो डिमांड कॉस्ट कितनी होगी, कम होगी उसकी, क्योंकि 4% डिस्काउंट है, 4% डिस्काउंट के बाद क्या आएगा आपका C3 प्लस ऑर्डर कॉस्ट चेंज नहीं होगी, डिमांड भी वही है पूरे साल की, पर आप हर बार ऑर्डर जो प्लेस कर रहे हो 5000 कर रहे हो प्लस, और बट कैरिंग कॉस्ट कम होगी, जब यूनिट कॉस्ट ही चेंज होगी तो कैरिंग कॉस्ट तो उसका परसेंटेज है, तो डेफिनेटली इट हैज टू बी CC3 मल्टीप्लाइड बाय कितना ऑर्डर कर रहा हूं अब 5000 का, तो एवरेज क्वांटिटी मैंने होल्ड की इतनी, दैट्स ऑल. सो पॉइंट टू बी नोटेड, दिस एंड दिस, क्या करूं, 14,000 कितनी है यूनिट कॉस्ट, कम हो गया वो क्योंकि डिस्काउंट ज्यादा है, सॉरी C3 कितना है 38.4 प्लस ऑर्डर कितना प्लेस कर रहे हो 5000 का प्लस, और कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी 7.68 मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डर कितना प्लेस कर, एवरेज इन्वेंट्री दिस, तो ये जो आपकी वैल्यू आई 557920, दैट्स ऑल. नो टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग द मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट भी चेंज होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं, क्योंकि ये भी चेंज हो रहा ना, टोटल कॉस्ट टोटल इंक्लूडिंग मटेरियल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट कौन सी हुई आपका, जो है ये भी वेरिएबल है, ये भी आपका चेंज हो रहा है, तो चेंज तो आपका ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सारी वेरिएबल है, वेरी कर रही है ना ये, तो until and unless we will combine them together we will not be able to do that. yes एनुअल डिमांड में तो चेंज होगी नहीं. व्हाई द एनुअल डिमांड विल चेंज, किस में फर्क आएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, कि हर बार हम कितने का ऑर्डर करें, हाउ मच क्वांटिटी शुड आई ऑर्डर ईच टाइम सो दैट टोटल कॉस्ट गेट मिनिमाइज, ये मतलब है पूरे साल में इन द होल ईयर आई हैव टू परचेज द सेम क्वांटिटी, दैट आई एम नॉट सेइंग दैट वी कैन नॉट चेंज, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, इट इज अ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, द होल क्वांटिटी दैट आई हैव टू, बट ईच टाइम हाउ मच शुड आई परचेज, ये डिसाइड करना है आपने.
each time how much should I purchase so that total cost is minimum. Should I purchase this much each time? Ultimately purchase तो मैंने कितना करना है, इतना ही करना है. Ultimately I have to purchase this much in a year, but in every order how much should I order? This much, this much, this much. So from here you will say, if I will purchase this much, the total cost is going to this much. If I purchase this much each time, then I'm going to have this much. ठीक है, तो अब देख लो, you can just see very much that is this is the lowest cost. So इसका मतलब है it is profitable to accept 4% discount at quantity 5000. क्यों? Because you have the least cost over here. ठीक है, तो इसका जो है अब एक कैसे किया, क्या किया, थोड़ा सा मतलब क्योंकि थोड़ा सा टाइम, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट एनीवे ये अगर स्टेप थोड़ा सा समझ आ गया आपको तो यू विल बी एबल टू डू दिस. और ये दे नॉर्मली फ्रेम क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन. ओके, और यही अप्रोच आपने अडॉप्ट, जस्ट ओनली डिफरेंस बीइंग यू जस्ट गो थ्रू, अगर जाना ही आपने व्हाटएवर नोट्स दैट यू हैव एंड ऑल दैट, कि सिंगल क्वांटिटी डिस्काउंट, ये डबल डिस्काउंट क्वांटिटी डिस्काउंट था, तो जस्ट सॉल्व वन ऑफ द न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस. मुझे लग रहा गेट के, इफ यू विल जस्ट गो थ्रू द गेट प्रीवियस इयर्स, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू. सो सिंगल डिस्काउंट मॉडल, एक ही डिस्काउंट है, ये डबल डिस्काउंट, सी वन सिंगल डिस्काउंट, द अदर वन इज द डबल डिस्काउंट मॉडल. जस्ट सी द स्टेप्स हाउ यू फॉलो एंड आई थिंक योर जॉब विल बी डन. ओके, सो आई थिंक और उसमें से पूछता है, इग्नोर नहीं करना है इसको. लेट्स गो टू ओके. Okay, just go through it. If the service rate increases, the arrival rate remains same. Okay, so see this one. If service rate increases, the arrival rate remain constant, then in general customer waiting time will decrease. देखो सर्विस रेट अगर बढ़ा रहे हुए, if you will increase the service rate, तो आपका वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? Will get reduced. Arrival same है. If customers are arriving 3 customers per hour, let's say that is remaining same, पर आप क्या कर रहे हो? सर्विस रेट जो है आप बढ़ा रहे हो. Let's say earlier it was 5 customers per hour. So now you are increasing it to let's say 7 customers per hour. तो क्या हो जाएगा? वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, because you are serving more customers per hour basis. तो वेटिंग टाइम will decrease. So customer waiting time will decrease. ये तो increase तो नहीं हो सकता, it is going to decrease. This is one. Service cost increases. Now, अब point ये है कि service he has nowhere, ये भी हो सकता है, this could also be possible, but he has nowhere mentioned whether he has installed additional facilities. He has nowhere mentioned that he has installed the additional facilities, क्योंकि service cost बढ़ेगी only when you are installing additional facilities. भाई मान लिया जितने, let's say you are having only one server, okay, let's say मैं ये ऐसे बात करता हूं, ये काउंटर है, this is one counter over here. So what you are doing is, I am simply इसको ट्रेनिंग दे दी मैंने, I am training him. Earlier he used to handle 5 customers per hour. Now he is handling 7 customers per hour. So will the service cost increase? No. फर्क क्या किया? हाँ, had it been the case कि अगर मैंने एक और काउंटर और लगा दिया, if I put one more counter to increase this service rate from this to this, then this will also increase, then this is correct. But since he has nowhere mentioned related to this, तो एक जनरल रख के बोल रहा है वो, तो हमें ये पता नहीं, we don't know how he has done that. तो one of the possibility could be, okay, you are saying the service rate increase किया, possible, ट्रेनिंग दे दो उसको, maybe he may become more efficient. The same person is handling those customers, only difference was earlier he was handling 5, now he is handling 7. So service cost तो गई नहीं आपकी, service cost is not increasing because he is the same person who is handling all the things which he was doing earlier, right? So ये होना चाहिए, but हाँ इसको critically analyze कर सकते हो.
so in exam he may give you more hints, but I made it clear possibility exists करती है इसकी भी, but in this context I think we will not go with it. Okay, जैसे आपने कहा, I think सूर्या ने आपने कहा 2 3, so I think you can think that way, but I have already explained you कि क्या कैच है इसमें थोड़ा सा, right? Okay, so I think you will be able to answer. Okay, go ahead with the customer behavior in which of the customer does not join the queue. Seeing its length is called. क्या बोलते हैं इसको हम? See, I think last time I also explained you कि जो customer behavior जिसमें क्या करता है वो ज्वाइन ही नहीं करता क्यू को. Bulking, याद रखना है आपने इसको कहां से, किंग से, राइट? Bulking. So bulking ऐसा बिहेवियर है जिसमें जो है वो जो सर्विस जो द पर्सन हु वांट्स टू अवेल द सर्विस ही कम्स बट डजंट जॉइन द क्यू, ज्वाइन ही नहीं करता क्यू को. रीजन बीइंग ही डजंट फाइंड इट लाइक लेंथ ऑफ द क्यू इज मोर, जो क्यू की लेंथ है वो ज्यादा है, दैट कुड बी वन रीजन. और ही मे फाइंड दैट होल ऑफ द एनवायरनमेंट अनप्लेजेंट, उसको आदत पड़ी है एसी में सर्विस लेने की, वहां जाता है वो लाइन में खड़े होना पड़ रहा है बिना एसी के, so he doesn't feel comfortable, he doesn't join the queue, something that way. So therefore he doesn't join the queue, does not join the queue, ज्वाइन ही नहीं करेगा ये. ठीक है, ये क्या है, ज्वाइन करेगा, पेशेंस लूज कर जाएगा, भाग जाएगा, थोड़ी देर रहेगा लाइन में, ये यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, स्विच स्विच. ठीक है, as per Kendall's notation, the letter C indicates, see, you know, you're having this situation where you're having Kendall's notation, you're having A, B, C and D, E. This is the notation that you're having. So, you know, this and this, they are for inter-arrival time, inter-arrival time, ये सर्विस टाइम है बेसिकली. ओके सॉरी, इसको ऐसे बोलते हैं हम, दिस डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द इंटर अराइवल टाइम, दिस टेल्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सर्विस टाइम. टाइम नहीं डिनोट करता ये, बट इट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंटर अराइवल टाइम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सर्विस टाइम, एंड दिस नंबर ऑफ सर्वर्स and that is number of customers allowed, and service discipline, all of you know. So that's for example एक बहुत popular model rather जिसके बेसिस पे the most of the question that you get in the examination, that is a single model जिसमें से MM1 and उसमें आप बोलते हो infinity and first in first out FIFO. ये मॉडल है जिसके बेसिस पे ही जितना न्यूमेरिकल है मोस्टली दे आर फ्रेम. मतलब खासकर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो ऑलमोस्ट 99.99% ऑफ द टाइम इसी मॉडल के ऊपर आपका क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है. सो इसमें आपको पता है व्हेन m इज मेंशन्ड इट मींस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंटरवल टाइम, इट मींस दिस इज द टाइम है, तो दे m ट्रेडिशनल रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. m जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए, सर्विस टाइम के लिए, किसके लिए, इंटरवल टाइम के लिए. 1 सर्वर, number of customer allowed, infinity, service discipline, first in first out. So as per Kendall in letter C जो है कहां गया, ये number of servers, so it is number of servers in the system. ठीक है, तो A इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, all that should be clear to you. Just go through this. Which priority discipline is usually applicable for choosing items that involve stacking in a pile and then taking out from them, right? लो जी फाइल्स आती गई आपकी, this is one file, then you are having another file, so you are putting one after the other, right? Now when you will start giving, तो क्या किसको करोगे, you will pick this file, serve, then pick this file, serve. So this was the last in. He was the last in. So he's saying which priority discipline is usually applicable for choosing items that involve stacking in pile. तो आपने stack करते गए, first आया, second, third, fourth, fifth, sixth, stack, and when you started serving them, and then taking out from them, you will take him first, then this. So it means जो last में आया था, the person who came at the last, he got served first. So it means it is last in. He came at the last in,
but when it goes to service he goes first, so last in first out. तो एक के ऊपर रखते गए, जब आप सर्विस देने लगे तो फर्स्ट जो टॉप में था उसको जो है वो आप यू स्टार्टेड प्रोवाइडिंग द सर्विस. Okay, this is how it is. So what it says, two types of queuing system is likely to form in front of the two counters in a small railway ticketing center. तो एक लाइन जो आपके इंक्वायरी के लिए, the other one is for the ticket booking and the other is for ticket booking with poison arrivals and exponential service. ठीक है, तो अराइवल रेट आपके क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड इंटर अराइवल टाइम जो है वो क्या है, सर्विस भी वैसे ही है. ठीक है, दैट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड, द मॉडल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो कौन सा मॉडल जो है आपका इस केस में बोलता है इज गोइंग टू बी मोस्ट सुटेबल, राइट? सो पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डिसाइड इज फ्रॉम वेयर. यू हैव टू डिसाइड कि नंबर ऑफ सर्वर्स कितने हैं. व्हाट आर द नंबर ऑफ सर्वर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्वर्स आर, कितने नंबर ऑफ सर्वर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्वर्स आर देयर. अगर वो डिसाइड कर लेते हो आप, देन योर जॉब बिकम इजी. हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्वर्स आर देयर. सी, इंक्वायरी तो अलग ही सर्विस है, टिकट बुकिंग अलग सर्विस है. सो दिस सर्विस इज एंटायरली डिफरेंट, दिस सर्विस इज एंटायरली डिफरेंट. They cannot replace each other. When you talk about the number of servers, then we talk that number of servers for the same service. अगर मैं बोलता हूं इसमें ये नंबर ऑफ सर्वर्स 2 हैं, इसका मतलब है इंक्वायरी काउंटर एक यहां पर है, एक यहां पर है, दो सर्विस काउंटर हो गए. तो आई कैन से द नंबर ऑफ सर्वर्स आर गोइंग टू बी 2, क्योंकि दो काउंटर कर दिए मैंने इंक्वायरी के. Whereas if I talk about ticket booking, this is an entirely different service. अगर मैं अभी तो क्या है, एक ही काउंटर है. Let's say if I say this is this, तो मैंने जो है टिकट बुकिंग के 3 काउंटर कर दिए. So it means in this case there is only one counter over here and there is only one counter over here. So it means number of servers in this case is only 1. Why we are saying 1? Because ये सर्विस अलग है, ये सर्विस अलग है. And for each different services, I am having only one server. तो हम हर एक सर्विस के लिए अलग ही बात करेंगे. I cannot mix them together and start discussing. अगर if there is any rush over here, I will discuss about it separately. If there is rush over here, I will discuss about them separately. ऐसा तो है नहीं कि इसका काम इसको दे दूंगा, इसका काम इसको दे दूंगा. That I cannot do. तो उसका मतलब है नंबर ऑफ सर्वर्स जो मेरे पास हैं, they are 1. या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है. So this is not over there because this is the number of servers. Number of server 1, number of server 1. So out of these two कौन सा होगा, this or this? So you can say very well, you are having this kind of model, one kind of model, but कितने हैं, 2 हैं, two separate service, this counters, different service counters, different type of बोल सकते हो आप. तो मेरे पास क्या है, ये अलग है सर्विस, ये अलग है. सो आई हैव 2 सर्विसेज, ईच ऑफ देम आर फॉलोइंग विच डिसिप्लिन. ये इसका मतलब हुआ कि दिस ऑल्सो कौन सा फॉलो कर रही है, एम इंटर अराइवल टाइम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड, सर्विस टाइम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, यही है हमारा, दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है, so that is how. So it is not one, you are having 2 different services. So 2 different services and each of them is following this. ये मतलब हुआ इसका. Okay, so you're going to have the last one, that is 2. Good. I think
All of you should be able to answer this. Name the principle which states that go gauge is designed to check the maximum metal condition. You know टेलर प्रिंसिपल है हमारे पास. So go gauge should correspond to what? होल को चेक करना है, तो होल को चेक करना है तो लो लिमिट ऑफ साइज क्या है? दैट शुड कॉरस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम मेटल लिमिट. ये गो गेज है. सो दिस इज होल. तो ये मैक्सिमम मेटल लिमिट कौन सी होगी? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. दिस इज द मैक्सिमम मेटल लिमिट फॉर दिस होल, and go gauge should correspond to this maximum metal limit. Only then you will say the hole that is will be, agar isme it will go inside it, then you can say okay, that part is okay. And obviously you need to have the no go gauge also, single के basis. So it says Taylor principle बोलता है ये, right? Actual information. What is the value of the international tolerance of 8th grade? See, ये even though that time also I also explained you कि ये कुछ एक आपको याद रखने पड़ेंगे. डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और sometimes he is not going to provide you that value, right? So उस केस में that day I told you कि there are some very easy to remember. अगर कुछ एक आप याद रख लेते हो तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, इसको IT5 से शुरू करता हूं. IT6, IT7, IT8, IT9, ठीक है. IT9, 9, and then I can even go for 10. IT10 and IT11. IT11, okay. 16 है ये. 11, IT12, IT, okay, मैं इसको इसका है आपका 10, 11, then 6, 7 के IT 12, 13, 14, 15, 16. ये मैंने उसको लिखा. नाउ ये जो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, दैट वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर. दैट इज 7i, 7, 10, 25 I think, 16, 16i, then you're having 25i, then you're having 40, 64, 40, 64i and 100i. ठीक है. So just remember this much. इतना कम से कम याद रखो ये वाला. If you remember this, then automatically ये जो है ना आपका, फॉर एग्जांपल IT7 correspond करो उसको IT12 से. फॉर एग्जांपल जस्ट मल्टीप्लाई बाय 10. फॉर एग्जांपल हियर यू आर हैविंग 16, मल्टीप्लाई बाय 10, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 160i. 25 है IT30 के correspond, ये वैल्यू बढ़ाते जाओ, सिंपली 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ इनको, एंड यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू. सो इट इज गोइंग टू 250i, 400i multiplied by 600, 640, 640i, and 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1000i. इजी टू रिमेंबर, राइट? सो इनिशियल पोर्शन तो इन एनी केस इसको तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते. ये तो आपको इसी हालत में याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ही विल आस्क यू टू कैलकुलेट द वैल्यू. सिंपली ही विल से दैट टॉलरेंस ग्रेड इज IT8, दैट्स ऑल, और IT9, but he will not mention that it is equal to 40i. So at least this much you need to remember. ये वाला जो है, क्योंकि that means sequence is more, so ये वाला later portion just relate it कि यहां से अगर शुरू करोगे 7 को 12 से रिलेट करोगे, मल्टीप्लाई, गो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10. सो अगर उसने इस रेंज में कहीं दे दिया तो immediately you will be able to do that also. Okay, so that is the point over here. Rest, how to calculate the I, well, I hopefully you remember that 0.43 and cube root of something d, and what is that, plus 0.001 टाइम d. अब ये जो वैल्यू है ये इंपीरिकल फॉर्मूला है, तो ये वैल्यू आपकी किस में आएगी? माइक्रोमीटर में आएगी. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसमें. एंड प्रोवाइडेड यू इनपुट दिस वैल्यू इन mm, ये आपको mm में इनपुट करना, दैट्स ऑल. इतना ध्यान रखना. ओके, सो एंड दिस वैल्यू you may be knowing that is for that basic sizes which are up to and including 500 mm. जो बेसिक उसके लिए वैलिड है, उसके ऊपर के लिए नहीं है. बेसिक साइज अप टू एंड इंक्लूडिंग 500 के लिए वैलिड है. क्लियर? सो इन दिस केस इट इज गोइंग टू बी 8th grade, that is IT8 is 25i. Okay, go to the next. I think pretty easy. What type of tolerance is given below?
that is 98 plus 0.05 mm. You know, this is pretty simple. That is unilateral tolerance है, ये एक ही तरफ को है, right? Not bilateral. Had it been bilateral, तो आपने you must have given it on the plus side as well as the minus, but there is only on the, so answer is going to be on one side, that is unilateral A. Just see this. Go through this. So what it says, two parts can be produced with exact identical measurements without any limits. Is it possible? नो, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? हमने कहा कि मैं अगर आपको कहूं कि बनाओ कि होल बना दो 50 mm का, और मैं बोल दूं शाफ्ट भी बना दो 50 mm का, बना सकते हो? नो, नॉट पॉसिबल, राइट? So it is not possible for you to make the any particular component of exact dimension because of जो आपकी you are having this limitation of manufacturing processes because everyone is variable, और सबसे बड़ा variable human being है, right? So you have to provide the limits, right? Man, material, machines, हर एक में variations होंगी, अगर variation है तो exact नहीं produce कर सकते, so I have to provide limit. I have to provide limit. I can produce that particular component within the limits. So no component can be manufactured precisely to a given dimension. It can only be made to lie between two limits, upper or lower limits. Yes, you can just say it is an extension of the last question only, isn't it? कि I have to, अगर दो लिमिट्स मुझे दी जाती हैं, let's say आप बोलते हैं जी 50 mm का तो मैं बना नहीं सकता, but what you can do is, okay, let's make it between 50 plus minus 0.05, तो सेंसिबल लगता है. let's say दो लिमिट्स होगी, एक लोअर लिमिट होगी 50 minus 0.05 जो कि ये होगी, एंड अपर होगी आपकी 50 प्लस 0.05. तो दैट मैन्युफैक्चरिंग, डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो आप यूज कर रहे हो, वी कैन हैव, वो हम मैन्युफैक्चरर और सप्लायर एंड द कस्टमर कैन डिसाइड बाय सिटिंग टुगेदर डिपेंडिंग ऑन कैपेबिलिटी ऑफ द मशीन, दैट इज पॉसिबल. सो ये आपका जो है, दिस इज गोइंग टू बी ट्रू. टू आइडेंटिकल कंपोनेंट्स in the interchangeable assembly can be assembled and replaced without any further modification during assembling stage, right? So you know, this is in case of interchangeable concept में हम क्या करते हैं कि अगर हमने, if you have standardized the process, then दो component मैंने जो है कहीं भी बनाए हैं as per the standard, तो they can be interchanged easily. तो मैंने नट जो है मान लिया कहीं और बनाया, स्क्रू कहीं और बनाया, बट अगर वो इंटरचेंजेबली असेंबली बनाई है तो दे कैन बी इंटरचेंज इजीली. आई डिड नॉट लुक एग्जैक्टली फॉर द एक ही जगह से, मान लिया इंग्लैंड में आपने बनाया और सेम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड फॉलो करके, सो इट इज नॉट दैट ओके इंग्लैंड से नट भी चाहिए, इफ यू कैन मेक इट, और अगर सेम पैटर्न फॉलो करके इंडिया में बनाया तो यू कैन इंटरचेंज देम इजीली. सो दैट इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिट दैट यू आर गोइंग टू हैव ऑफ दैट इंटरचेंजेबल असेंबली. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. Two identical components in interchangeable assembly, which can be interchanged, can be assembled and replaced without any further modification during the assembling stage, right? So you know, that is the benefit of standardization and interchangeable assembly. A moving mandrel is used in what? I think एक क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने बोला था कि जो ट्यूब, सॉरी, राइट, ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस में, दिस इज द ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस. तो यहां पर हमने कहा था कि वी कुड हैव आइदर ट्यूब सिंकिंग, यू कैन हैव ट्यूब ड्राइंग विदाउट विद प्लग, एंड यू कुड हैव ए मेंड्रल व्हिच इज मूविंग. सो ये जो प्रोसेस है दैट इज इन द ट्यूब ड्राइंग. ये ट्यूब ड्राइंग है, सो दैट लेट्स से एक ऐसा हो सकता है बिना इसके सपोर्ट के, इंटरनल सपोर्ट के, इफ यू पुल इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अदर एंड, उसको हम ट्यूब सिंकिंग बोलते हैं. वी कॉल दैट एज ट्यूब सिंकिंग. दैट मींस मेंड्रल नहीं है, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी सपोर्ट, उसको जिसको नाम दिया मेंड्रल, DERL. मेंड्रल नहीं है, ये मेंड्रल है. सो उस केस में सिंपली मैं ट्यूब को खींच रहा हूं, डायमीटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इट इज गेटिंग इलोंगेटेड, बट
इंटरनल जो सरफेस है दैट विल नॉट बी करेक्ट, डायमेंशनली एक्यूरेट. सो इस केस में क्या करा, मेंडल यूज करता हूं तो ये थिकनेस आई कैन मेंटेन इट, एंड देयरफॉर ये ट्यूब ड्राइंग में यू आर गोइंग टू हैव दिस वन, राइट. लेट्स गो टू दिस वन. फॉर वायर ड्राइंग ऑपरेशन द वर्क मटेरियल शुड एसेंशियली बी, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इन वायर ड्राइंग, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इन वायर ड्राइंग, क्या होना चाहिए वायर ड्राइंग में, यू वांट टू इंक्रीज द लेंथ, तो द डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल इज ए biggest factor. So I want to have a larger length from a given diameter. So ductility, the material which can be elongated, have a higher elongation. तो उसको ductile material बोलेंगे. Whereas when I want to make it into sheets, तो required property क्या होगी? For example, जैसे sheet metal rolling है, तो वहां पर क्या required property होगी? Malleable, right? So in this case, it is the ductility. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है in the sense description में. Wrinkling in flange is a forging defect. ये forging नहीं है बेसिकली, ये मुझे लग रहा है he has framed, कुछ गलत लिखा है, ये बेसिकली शीट मेटल ड्राइंग, ये मोर अप्रोप्रिएट है. आई थिंक ही हैज नॉट फ्रेम्ड इनकरेक्टली, और कहीं ना कहीं इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक की होगी डेफिनेटली. ठीक है. रिंकलिंग इन फ्लैंज इन ए is a, ठीक है, is a sheet metal drawing defect due to, किसके कारण, आपको पता है कि when we go for the sheet metal cup shaped articles, तो हम क्या करते हैं, ये शीट है, यहां पर ब्लैंक जो आपने लिया, नॉट शीट, ब्लैंक लिया, जिसमें से मैंने from where I have to make a cup shaped article, so I have to draw it, so draw it with the help of a punch. So what happens is, अगर यहां पर मैंने ब्लैंक होल्डर प्रेशर नहीं लगाया, ये ब्लैंक होल्डर है यहां पर, over here you are having the blank holder, so if I will not apply this, then as it you will draw it, then wrinkles will be formed deep drawing process में, right? So blank holding pressure plays a great role in avoiding the wrinkles on the walls of the cup which is drawn, or the edges of that, or the flange of the cup. cup आपका ऐसा भी हो सकता है और flange वाला cup भी हो सकता है, right? So wrinkles may be formed, in this case wrinkles may be formed over here अगर blank holding pressure insufficient है, or in this case wrinkles may be formed over here and down there also. flange में भी हो सकते हैं, इस flange में भी हो सकते हैं, और यहां भी हो सकते हैं. So in this case wrinkling in flange, let's say flanged cup है, नहीं भी है तो जब when you are drawing it, that point, for example मैं अभी ड्रॉ ही कर रहा हूं इसको, then finally you are getting it, तो when you are drawing it, blank holder pressure sufficient नहीं है, तो यहां wrinkle form हो जाएंगे, और ये wrinkles क्या हो जाएंगे, they finally they will be reflecting the wall of the cup. Clear? So that is the meaning of it. So it means insufficient blank holding pressure. तो avoid कैसे कर सकते हो, how you can avoid this defect, by providing sufficient blank holding pressure apply करो, wrinkles आप minimize कर सकते हो. In too high rolling mill, what is the direction of the rolling? कैसे कर सकते हो? Too high rolling mills का मतलब क्या होता है, you are having two rollers that you are using. तो ये रोलर है आपका, एक ये रोलर है, let's say this one, so you are sending it from here to here. So how you can it, until you will roll it this way, rotate it this way, and you rotate this way, you cannot move this sheet from this side to this side, isn't it? तो इसका मतलब है ये डायरेक्शन रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी डायरेक्शन रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज. सो वन शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, अदर शुड बी क्लॉकवाइज. क्लियर? ओके, go to the next one. The operation used for making impressions on the decorative items. क्या होगा? What is going to be? The operation used for making impressions on the decorative item. See, drawing देखो, decorative item, it is basically, आपने coining operation देखा होगा, right? Coining में क्या होता है, coin है आपका, उसके ऊपर impressions form करते हो आप. इन्हें हमने कहा it was a closed die forging operation. Drawing या तो wire drawing हो सकता है, deep drawing हो सकता है, उसमें decorative items तो produce नहीं कर सकते. Spinning, you know, shape, regular shape, symmetrical shape articles आपने बनाने हैं, let us say. Ironing, you know, it's a deep drawing operation where that means uniform thickness of the walls of that cup are kind of created. So इनमें से जो process बची, that is the coining process, that you can relate it to the coin currency coins that you are having.
वेयर इंप्रेशंस आप ऑब्टेन करते हो, सेम प्रोसेस इज अडॉप्टेड फॉर डेकोरेटिव आइटम्स और जो आप उसके ऊपर बनाना चाहते हो, इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हो. Go ahead with this. Die and punch material selection should be based on the consideration of this. What? Die or punch कहीं भी ले लो, whether you talk about that die or punch in metal cutting, whether you talk about in deep drawing. So क्या consideration होनी चाहिए आपको? Wear resistance होना चाहिए obviously. अगर क्योंकि they are costly. See die जो set होता है ना, that is very costly. So उसके ऊपर अंदर properties क्या होनी चाहिए? Wear resistance easy wear नहीं होनी चाहिए because you are making so many you must be able to make large number of components from the same set. High rigidity होनी चाहिए, high toughness क्यों होनी चाहिए? Because you are applying a force. For example, in the punching operation, you are applying a force, so shock load is acting, so it must be able to absorb it. If toughness is less, it may break easily, like it is going to have a less, it is going to be brittle, right? So but if its toughness is more, so you can say it is a combination of ductility and strength, right? That is toughness. So all of these properties are required to be in this particular set. Example of abrasive based process. I think I don't need to explain this. You can very easily say abrasive particles are used in grinding, milling, drilling, and all those. They are not the using the abrasive particle. Grinding is using, that is the C. Let's go to the next. Stress necessary for plastic deformation. You must be able to answer. I think on the similar lines we have discussed earlier. Stress necessary for plastic deformation increases. क्यों increase होती है? Because material gets strain hardened. तो मैंने इसको डिफॉर्म किया, तो बोलता है स्ट्रेस जो है उसको फर्दर डिफॉर्म करने के लिए क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि ये स्ट्रेन हार्डन हो गया. पहले यहां तक डिफॉर्म किया, तो उसके बियॉन्ड डिफॉर्म करना, तो इससे ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी. तो इसका मतलब स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है. कौन सी स्ट्रेंथ? दिस यील्ड स्ट्रेंथ. पहले इतनी थी, अब इतनी होगी, इतनी होगी. तो क्यों? बिकॉज स्ट्रेन हार्डन हो रहा है मटेरियल आपका. सो इट मींस इन दिस केस योर option is going to be what? It is going to be B. B option is going to be the correct answer. Let's go to the next. A test specimen is stressed slightly beyond the yield point and then unloaded. Its yield strength क्या होगा? बताओ. What is going to be? Yield strength क्या होगी? ये सेम, एवरीथिंग इज सेम. आप हर एक चीज, लास्ट क्वेश्चन लास्ट और इस क्वेश्चन में देयर इज नो डिफरेंस इन द लास्ट और दिस क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल मैंने किया इसको, बोलता है यील्ड पॉइंट ये है, इसके बियॉन्ड मैंने डिफॉर्म किया यहां तक. तो अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, इफ आई विल रिलीज द लोड, इट विल कम बैक हियर. व्हेन आई विल अगेन स्टार्ट लोडिंग, दोबारा लोडिंग करता हूं, तो यही पाथ फॉलो करेगा. अर्लियर आई हैड डिफॉर्म इट टू 200 मेगापास्कल. नाउ टू डिफॉर्म इट फर्दर, आई नीड टू अप्लाई more force, more stress. That means earlier it was yielding at, let us say 150. Now it will yield at 200. तो इसका मतलब है yield strength increase होगी. The yield strength क्या होगी? Increase. अब ये 200 पे yield करेगा. Earlier it was yielding at 150. Same way अगर मैं इसको 250 तक कर देता हूं, छोड़ देता हूं, again leave it, it will come back to over here. And then again if I'll start loading, then you will say again I need to apply a stress value of more than 250 only, then yield strength बढ़ गई gradually, बढ़ती गई. So it means test specimen is stressed slightly beyond yield point and then unloaded, its yield strength increases. Okay, go to this one. Cold working produces the following effects. क्या effects हैं? See, what are the effects which are produced by the cold working? Obviously stresses are set up, residual stresses are set up. उसको आपने डिफॉर्म किया, तो ये भी करेक्ट है. ग्रेन गेट्स स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड. आपको पता है इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस में डिस्टॉर्ट तो होंगे. इस केस में कोल्ड रोलिंग प्रोसेस है फॉर एग्जांपल, तो ग्रेन्स गेट्स इलोंगेटेड, something that way. Here you are having something smaller grains, so you get the larger grains. Grain structure distort होगा, strength and hardness of the material decreased. Wrong. Increase होगी. Surface finish is reduced, which sorry. हाँ ठीक है, ये यहां तक ये स्टेटमेंट. सरफेस फिनिश इज रिड्यूस. कोल्ड वर्किंग में सरफेस फिनिश क्या होगी? इंक्रीज होगी, बेटर होगी. इट इज गोइंग टू बी बेटर. सो इट मींस यू आर हैविंग 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, so let's go to the next now. Compare to the hot working
to the cold working. Higher forces are required compared to hot working. In cold working क्या होगा? कोल्ड वर्किंग में हायर फोर्सेज आर रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली हॉट के कंपैरिजन में ज्यादा होगी. नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड. सी कोल्ड वर्किंग में sometimes you may go for it, but normally it is not required, right? For example, recrystallization temperature तो हमें ऐसे डिफाइन किया ना कि recrystallization temperature 800 डिग्री सेल्सियस है मान लिया. So any if at any temperature below this if you are deforming तो वो cold working है. But that does not mean that I should necessarily go and heat that piece and then at higher temperature. मैं वो cold working क्या कर सकता हूँ, room temperature में भी कर सकता हूँ. So this is not the mandatory condition. So no heating is required. You can say okay, बोल सकते हो this is okay. Without heating also you can do. And mostly अगर आप देखोगे without heating basically you go for the this. So less ductility is required. Wrong. High ductility is required for cold working. Ductility अच्छी होगी तभी deform करा. Better surface finish is obtained. Yes, of course. So 1 to 4. 1 to 4 है कहीं? Yes, B. B is the correct option. Go to next one. Internal ruptures caused by improper cooling of large forging. Internal rupture caused by improper cooling of large forging. So as you know, जैसे आपकी improper cooling प्रॉपर नहीं कर रहे हो, डिफरेंशियल ग्रेडियंट विल एग्जिस्ट विद इन द मटेरियल, तो क्रैक डेवलप हो सकता है, राइट? डिस्टॉर्शन भी हो सकती है, क्रैक भी डेवलप हो सकता है. बट डिस्टॉर्शन हो सकती है, बट ही सेइंग इंटरनल रप्चर, जब रप्चर है इसका मतलब क्रैक है, एज सिंपल एज दैट. whenever there is a differential heating or cooling of a particular workpiece, you must have seen in case of strength of material also distortion in the material may take place. बट यहां बोल रहा है कूलिंग हो रही है और उस केस में रप्चर, इंटरनल रप्चर अगर क्रिएट हो गया, उसको क्या बोलूंगा? ऑब्वियसली फ्लेक्स बोलते हैं उसको. क्रैकिंग एट फ्लैश, नॉट एप्रोप्रिएट. सरफेस क्रैकिंग, ओके, स्पेसिफिक नेम दिया गया उसको फ्लेक्स. स्मिथ फोर्जिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी. वेरी सिंपल. स्मिथ फोर्जिंग, ओपन डाई फोर्जिंग, सिंपल. आपने देखा ऑल ऑफ यू जस्ट हैविंग एनविल, हैमरिंग इट, गिविंग द शेप, वेरी ग्रॉस शेप, dimensional accuracy is very poor. So Smith forging is a open die forging operation. The manufacturing process in which cutting of sheet metal is realized. देखो जरा इसको, वैसे अगर प्रोसेसेस का पता हो तो यू कैन टेल मी. आयरनिंग पता है आपको, एम्बॉसिंग पता है. आयरनिंग जो है बेसिकली क्या है, आपने यू नो इन केस ऑफ ये इस तरह की, सॉरी इसको मैं ऐसे करता हूं, जो एक्चुअल शेप है, जो कप शेप्ड आर्टिकल्स हैं, वो ऐसी शेप आती है कुछ एक्चुअल शेप. व्हेन यू ड्रॉ ए कप, इसका मतलब थिकनेस जो है उसकी बढ़ती जाती है एज द हाइट इंक्रीजेस. सो टू गेट द यूनिफॉर्म थिकनेस एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो जिसको नाम दिया गया है आयरनिंग ऑपरेशन. तो इसका मतलब है तो ड्रॉइंग से रिलेटेड है, कटिंग से रिलेटेड नहीं है. एम्बॉसिंग, एम्बॉसिंग मतलब काइंड ऑफ शेप, प्रोफाइल शेप्स देना. आपने कुछ एक चादरें देखी होंगी, फॉर एग्जांपल दो टिन शेड्स वी कॉल देम समटाइम्स, इस तरह के शेप के. कहां से आया? यू आर ऑलरेडी हैविंग दिस स्ट्रेट शीट ऑफ सर्टेन थिकनेस, तो उसको आपने ये शेप दो डाइज के बीच रख के यू गिव दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल शेप. तो इस प्रोसेस को नाम दिया गया है, ये बेसिकली बेंडिंग एंड ड्रॉइंग ऑपरेशन कंबाइंड ऑपरेशन है, वी कॉल्ड एज ए एम्बॉसिंग ऑपरेशन. सो यू आर नॉट रिमूविंग एनी मटेरियल ओवर हियर, सो इट्स नॉट ए कटिंग ऑपरेशन. रेस्ट यू आर लेफ्ट आउट विद निबलिंग ओनली. सो निबलिंग बेसिकली क्या है कि अगर किसी सरफेस के ऊपर आप मल्टीपल कट्स बनाते हो, लेट्स से इफ यू मेक मल्टीपल कट्स, सो ओवरलैपिंग कट समथिंग इन a contoured shape. Something this way. So एक लेटर से मैंने क्या किया, ये पंच है आपका, एक कट लगाया, फिर नेक्स्ट कट, नेक्स्ट कट, नेक्स्ट कट, बट आई वेंट ऑन ओवरलैपिंग. सो दैट वे आई हैव दिस काइंड ऑफ कटिंग which performed contoured shape भी है, और साथ में मैंने किया मल्टीपल होल किए काइंड ऑफ, बट से ओवरलैपिंग की उनकी. तो इस तरह की कटिंग ऑपरेशन वी कॉल्ड एज ए निबलिंग ऑपरेशन. With the increase in softness of the material, penetration required for punching. Again, sheet metal cutting. Sheet metal cutting कोई भी होगी आपकी, you know, I hope you may be remembering, punch goes to a certain depth. ये thickness है sheet की, this is the thickness of the sheet. Punch does not need to travel the whole thickness.
ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क पीस, इट पेनिट्रेट्स अप टू ए सर्टेन डेप्थ, जिसको हमने नाम दिया है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन, तो ये पेनिट्रेट करेगा अप टू सर्टेन डेप्थ, आफ्टर दैट रप्चर विल टेक प्लेस, सडन रप्चर। सो अब थिंक ऑफ द मटेरियल, अगर मटेरियल ब्रिटल है तो इमीडिएटली एट ए लोअर डेप्थ क्रैक विल गेट फॉर्म्ड इजीली, बट इफ द मटेरियल इज डक्टाइल देन it has to go deep, it will go deep inside it before this crack occur. So basically how you will decide based upon the ductility or brittleness of the material, because the final fracture of the material will take place because of the fracture, crack generation, or it is easy to develop the crack in case of the material अगर वो उसकी ductility कम है, अगर soft है ductility ज्यादा है, soft है तो it will not be. So it means with increase in softness of the material penetration required क्या होगी, penetration बढ़ जाएगी, वो ज्यादा penetrate करेगा, because क्रैक जो है इतनी इजीली जो है जनरेट नहीं होगा, penetration required for punching increases. मतलब soft material में it will go little more and then the crack will generate, ये मतलब होगा इसका. The diameter of the hole in sheet metal produced by punching process is reduced to, okay, let me just read it. What did it say? The diameter of a hole in sheet metal produced by the punching process is reduced due to, हाँ बताओ, you know there is a elastic recovery in the material. I hope you know in case of this punching operation and blanking operation, punching hole making operation, hole जब बनता है punch जैसे बाहर, and diameter of the hole is decided by diameter of the punch and diameter of the blank is decided by diameter of the die. पर जैसे ही as you know material will cut, जो कट करके बाहर निकलेगा, जो स्लग है उसका साइज बड़ा हो जाता है, ग्रेटर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द डाई, वेयरएज जो होल है वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, दैट विल बिकम स्मॉलर. इसीलिए हमने अलाउंसेस देते हैं, इफ यू रिमेंबर, इन मेटल कटिंग. सो बेसिकली इन पंचिंग प्रोसेस क्या होता है, आपका होल जो है दैट विल गेट रिड्यूस. क्यों? बिकॉज ऑफ स्प्रिंग बैक इफेक्ट. इलास्टिक रिकवरी बोल सकते हो आप, स्प्रिंग बैक बोल लो, और इलास्टिक रिकवरी ऑफ द मटेरियल. इलास्टिक रिकवरी, मटेरियल विल रिकवर और मटेरियल, तो उसमें क्या होगा, होल जो है छोटा हो जाएगा, वेयरएज ब्लैंक जो निकल के कट के निकला, द ब्लैंक व्हिच इज कमिंग आउट आफ्टर बीइंग कट, इट्स साइज विल इंक्रीज. दैट इज व्हाई वी प्रोवाइड द अलाउंसेस. और ये आप उसको देख लेना, क्वेश्चन कुछ एक अलाउंसेस के ऊपर फ्रेम करता है इन गेट. नाउ द प्रोसेस इन व्हिच सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन लेंथ एंड द रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ द शीट मेटल इज रिलाइज. जस्ट सी इट, देखो इसको जरा. It says a process in which significant increase in length and reduction in thickness. Thickness में reduction सभी नहीं हो रहा, increase in length ज्यादा होगी. Spinning, shaving. Shaving तो metal cutting है. Punching, देखो पंचिंग ये आपको मेटल कटिंग है. शेविंग भी मेटल कटिंग है, फाइन, जैसे आप शेव करते हो, बस एक्जैक्टली सेम वे. मतलब शेविंग में यू रिमूव अ वेरी स्मॉल मटेरियल फ्रॉम द एजेस. जैसे यू आर हैविंग ट्रिमिंग करते हो तो ट्रिमिंग में आप क्या करो, इट इज नॉट दैट फाइन, इजंट इट? ओके, यहां से ध्यान आया, देयर इज अनदर प्रोसेस, ट्रिमिंग. सो जैसे आप क्या करते हो, अगर ट्रिमर यूज करो और दाढ़ी बनाते हो आप, लेट अस से इफ यू वांट टू रिमूव योर लाइक बियर्ड, सो ट्रिमिंग करोगे तो ट्रिमिंग एज यू नो इट्स नॉट दैट फाइन. सेम इज इन केस ऑफ मेटल आल्सो. मेटल में जो ट्रिमिंग होती है दैट इज आल्सो मेटल कटिंग प्रोसेस, लाइक द ट्रिमिंग यू कैरी आउट द हेयर ट्रिमिंग. शेविंग वेरी फाइन, मेटल कटिंग में भी सेम ही है. शेविंग बहुत फाइन जो है, अगर आपका जो एजी से मटेरियल रिमूव करोगे लाइक यू डू द शेव, तो वो शेविंग प्रोसेस है. तो दोनों प्रोसेस यू कैन रिलेट टू योर शेविंग थिंग. ओके, ये मेटल कटिंग होगी, दिस इज मेटल कटिंग. एंड स्पिनिंग होलो शेप क्रिएट करोगे एंड ये रोटेट करता रहेगा, लेट्स से इट्स रोटेटिंग एंड होलो शेप क्रिएट होगी. बट इस केस में यू नो, इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल डाई की जो शेप है, लेट्स से ये डाई की शेप है कुछ, और इसको शीट मेटल को आप यहां रखते हो और यू अलाउ टू ले ओवर इट. ये डाई है, इसी की शेप में लेके जाते हो, पर इसमें थिनिंग कम होती है, थिनिंग ज्यादा नहीं होती है. सिंपली आपका यू जस्ट चेंज द शेप. फ्लैट ब्लैंक है, ये सर्कुलर फ्लैट ब्लैंक ऐसे, उसको व्हेन यू लाइट ओवर हियर इट इज रोटेटिंग, तो इट विल टेक द शेप ऑफ दिस, बट सिग्निफिकेंट थिनिंग नहीं होगी इस शीट मेटल की. वेयर एज इन आयरनिंग,
आयरनिंग, ये प्रोसेस थी, हमने कहा इसको क्या करना है, इसकी यूनिफॉर्म थिकनेस करनी है, तो यहां पर इसकी लॉन्गेशन लेंथ तो बढ़ेगी, साथ में ये थिन भी होगा. सो इन आयरनिंग बेसिकली यू विल से सिग्निफिकेंट थिनिंग विल टेक प्लेस. Coining increases the strength of the metal due to, बताओ, precipitation, hardening, elastic deformation. You can very well tell. Coining क्या है? Ultimately closed die forging operation है, compress कर रहे हो, as simple as that. और impression create कर रहे हो. तो जब deform कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? Compress कर रहे हो, plastically deform कर रहे हो. Plastically deform अगर कर रहे हो तो it means what you're doing is strain hardening. ये नहीं, elastic deformation नहीं, precipitation hardening नहीं. Precipitation hardening you may study in this material science. Combination die is one. देखो progressive die हमने कहा था, progressive die is one where you are having multiple stations and in each stroke of the ram in multiple stations multiple operations are performed, as simple as that. Progressive die में क्या होगा, you are going to have a combination die, compound die जो होती है, you are having 2-3 dies like this progressive die I mentioned. Compound die में you carry out एक ही स्टेशन के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो. So for example, this is the die here. In the same die, as the punch end travels downward, two or more operations are performed, but all those operations are cutting operations. Compound die में. So compound die में क्या है, एक ही स्टेशन but multiple operations. One station, multiple कौन से, multiple but cutting operations. ये compound die में. So अगर सेम डाई में अगर हम क्या करेंगे, फॉर्मिंग ऑपरेशन भी इंक्लूड कर दें, इफ यू इंक्लूड द फॉर्मिंग ऑपरेशन इन द सेम सेटअप, कटिंग तो है ही है, साथ में फॉर्मिंग भी है, मान लिया बेंडिंग और समथिंग, तो उसी डाई को वी हैव गिवन दैट डाई ए नेम कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन डाई. सो कंबाइंड डाई एंड द कॉम्बिनेशन डाई आर मोर और लेस सेम, ओनली डिफरेंस बीइंग इफ वी एड एडिशनल प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग, नॉट कटिंग तो थी उसमें, फॉर्मिंग तो उसको हमने नाम दे दिया कॉम्बिनेशन डाई. नाउ देख लेते हैं इसमें shearing forming operation combined, shearing cutting forming combined, that's all. shearing cutting तो सेम है, shearing भी सेम है, cutting भी सेम है, carry no meaning. notching blanking ये भी cutting operation ही है. so notching and punching both are cutting operation, so I need to have cutting as well as forming operation. in drawing spinning bending operation क्या होगा बताओ, कौन सी स्ट्रेसेस होंगी, रिलेट करो. मैं बताऊं बेंडिंग में क्या कंप्रेसिव है, टेंसाइल है, यू विल से ऑफ कोर्स वन साइड कंप्रेसिव अदर साइड टेंसाइल है. स्पिनिंग में बेंडिंग है, सॉरी टेंसाइल है, कंप्रेसिव है. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर लेइंग इट ओवर इट तो कंप्रेसिव तो है ये. अगेन द सेम ऑपरेशन, आई लेट्स से वेरी सिंपल ऑपरेशन. तो जब मैं इसको पुश करूंगा इसके ऊपर, बेसिकली वी हैव ए टूल, एक टूल होता है जिसको हम यूज करते हैं, इससे फोर्स अप्लाई करते हैं सो दैट व्हेन इट इज रोटेटिंग इट लाई ओवर हियर. जो पुश कर रहा हूं उसमें कंप्रेसिव ही है, एंड थोड़ा बहुत तो क्या होगा, थोड़ा बहुत थिनिंग होगी, सिग्निफिकेंट थिनिंग नहीं होगी, बिकॉज वी हैव सीन इन द लास्ट क्वेश्चन. सो इसका मतलब है कि आई एम क्या कर रहे हैं, इसको टेंसाइल भी है, खींच रहा है. जब व्हेन यू आर पुशिंग इट देन इट इज गेटिंग स्मॉल, खींच भी पड़ेगी उसमें, टेंशन भी लगेगी. सो इट मींस इसमें भी है. ड्राइंग तो आपको पता ही है, ड्राइंग डीप ड्राइंग, तो उसमें क्या है, कंप्रेसिव भी है एंड टेंसाइल भी है. कंप्रेसिव आई थिंक आई हैव टेकन वन क्वेश्चन अर्लियर वीडियो वेयर आई हैड मेंशनड यू, एक्सप्लेन्ड यू दैट एट द टॉप फ्लैंज पोर्शन indirect compressive circumferential stresses are generated. Compressive here, and I am moving it downward, so I am pulling it. So it means you are going to have go ahead with this. So I think it is easy for you. You can take it anything like let's say like वैसे कटिंग ऑपरेशन है ये, फॉर एग्जांपल पंचिंग ऑफ फोर्स है, let's say कटिंग ऑपरेशन है. So if I say that punching force
or cutting force. In this case you can say how much is the cutting force. Cutting force आप बोलोगे क्योंकि ये shearing है तो ultimate shearing strength into the shear area. So what is the shear area? अगर perimeter पता है और thickness पता है तो I can tell you. So can I say that ultimate shear strength into perimeter क्या होगा इस केस में? pi d perimeter into thickness. ये shear area हो गया. तो इस केस में what is he saying? Ultimate shear strength, thickness, and L is the perimeter. So this is going to the correct. So same is going to be the case for if I want to make a rectangular hole or rectangular cut or whatever, that also I can do. So perimeter into thickness into the shear strength. So that will give me the punching force. Mm-hmm. Okay, you know, in case of जो बेंडिंग ऑफ शीट्स का टॉपिक है आपका, इन दैट केस यू आर सपोज टू फाइंड आउट द डेवलप्ड लेंथ ऑफ द बेंट शीट और बेंट प्लेट और समथिंग दैट वे, राइट. तो उस केस में क्या करते हैं हम, टू फाइंड आउट दैट, तो व्हेन आई विल बेंड इट, देन you know the portion which is not bent, the straight portion, if you see this is a straight portion, from here also this is a straight portion. So ये जो लाइन है इनको बोलते हैं बेंड लाइंस. बेंड लाइंस मतलब लाइन जो सेग्रीगेट करती है कर्व पोर्शन फ्रॉम द स्ट्रेट पोर्शन. एक बेंड लाइन ये है, एक बेंड लाइन ये है, राइट. तो फ्रॉम हियर कर्व पोर्शन विल स्टार्ट, कर्व पोर्शन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, कर्व पोर्शन विल स्टार्ट, कर्व पोर्शन विल स्टार्ट अब टुवर्ड्स दिस स्ट्रेट पोर्शन, टुवर्ड्स दिस स्ट्रेट पोर्शन. सो बेसिकली होता क्या है कि जो न्यूट्रल एक्सिस होती है, जो दिस शीट की जो ओरिजिनल शीट थी जिसको बेंड किया, उसकी न्यूट्रल एक्सिस मिडिल पे होती है, राइट. दैट यू ऑल यू नो. सो बट जब हम बेंड करते हैं तो बेंड पोर्शन में, बिकॉज एक तरफ कंप्रेशन है दूसरी तरफ टेंशन है, तो जो एक्सिस है इसकी, न्यूट्रल एक्सिस है, वो शिफ्ट हो जाती है इस तरफ, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती है इस केस में, मतलब टुवर्ड्स इनसाइड, जिस तरफ बेंड कर रहे हैं हम, तो इन अंदर की तरफ इट गॉट शिफ्टेड, राइट. पर यू नो न्यूट्रल एक्सिस पहले जितनी थी उतनी ही रहेगी, ये इसका जो, बिकॉज इट सिंपली गॉट शिफ्टेड, बट शुरू में जितनी थी, मान लिया ये पोर्शन इतना था, ये ए बी, सो आफ्टर बेंडिंग ऑल्सो दिस पोर्शन रिमेन सेम, बिकॉज न्यूट्रल एक्सिस जो है वो, उसके ऊपर कोई काइंड ऑफ, इट इज नॉट लाइक यू आर हैविंग टेंशन एंड कंप्रेशन इन दैट केस. तो जब ये शिफ्ट होगी, इट गेट शिफ्टेड, बट इसकी लेंथ सेम रहेगी. इसका मतलब है इफ आई कैन कैलकुलेट दिस, इसको जहां नाम दिया है हमने, जो पोर्शन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इन द बेंड पोर्शन, वी कॉल्ड एज ए बेंड अलाउंस, उसको बेंड अलाउंस बोला गया, ए बी. सो बेंड अलाउंस जो है बेसिकली वही पोर्शन है जो ये है न्यूट्रल एक्सिस का विदाउट बेंड. सो जितना ये है, ये बेंड होने के बाद ही उतना रहेगा. एंड एज यू नो दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन दे विल रिमेन एज इट इज. तो हम क्या करते हैं, अगर दिस आई कैन इजीली फाइंड आउट, दिस आई कैन इजीली फाइंड आउट, अगर इफ आई कैन फाइंड आउट दिस बेंड अलाउंस, तो सिंपली दिस plus bend allowance, that will give me the actual length of that particular workpiece. ओके, सो इसके लिए जो है कैसे निकालते हो, तो मुझे ए बी निकालना है सिंपली. नाउ जस्ट टेक नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी. जो बेंड लाइंस हैं उनके बीच के जो एंगल को नाम दिया गया है बेंड एंगल अल्फा. यू कैन डिनोट इट विद okay,
So ओके, गॉट माय पॉइंट. सो बेंड लाइंस के बीच जो एंगल है, फॉर एग्जांपल ये बेंड लाइन है एक, एंड दिस इज आल्सो बेंड लाइन. द एंगल बिटवीन द बेंड लाइंस उसको हमने नाम दिया बेंड एंगल. ठीक है. अब आपको क्या करना है, आपको ए बी निकालनी है, तो आर्क है. अब नाउ लेट्स से जो इनसाइड रेडियस ऑफ द बेंड, ये जो आर है, दिस वी कॉल्ड एज ए इनसाइड रेडियस ऑफ द बेंड, अंदर की तरफ वाला जो है यहां से ये. एंड I want to locate that particular this neutral axis from here. This distance कितना है ये? तो हम normally represent करते हैं in terms of percentage of thickness. So let's say it is 30% of thickness. So 0.3 of t. So ये जो k है basically ये क्या fraction हो गया. Total thickness का कितना? 30%. तो आप बोलोगे not exactly middle but towards 30% of t. तो ये kt से denote करते हैं. Over here this is this. So k is the location of the neutral axis from the inside of the bed or bottom of surface. यहां से कितने अंदर है, कितना है यहां से यहां. So if I have to find out the length of this arc, which I am calling it as a bend allowance, तो आप क्या कहोगे, r into r. This is how r कैसे निकालते हो आप, theta into r. That means यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, if I want to find out ab, so if I know this distance, let us say x over here, so you will say r x into theta is equal to what, ab. Clear? So same way, if I know this distance from here to here, if I multiply with that with alpha, that will give me the AB. So आप क्या कर सकते हो, simply AB will be equal to what, R plus what, R plus KT. ये हो गया effective radius R plus KT into what, alpha. Alpha that means the ये angle जिसको हम bend angle बोलते हैं, and that should be in radians. ये ध्यान रखना है आपने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कई बार फ्रेम किया जाता है. So just take note of this, right? So alpha into R plus KT. This is going to be the correct answer. Let's go to this particular question. Okay. Okay, go ahead. Oh, sorry, I deleted your message, Surya, by mistake. I was deleting this fellow, a negative fellow from here. Anyway. Okay, this is what I had to do. Okay. Anyway. Okay, done now. Okay, anyway. Okay, so let's go to the next question now. Which of the following statement is correct for powder compaction process? Now, see, in case of powder metallurgy, there could be possibility of asking a question for 1 mark. Okay, so at least basic understanding of this particular topic you need to have. Not very frequently question is framed, but this is one gray area जहां से मुझे लगता है कि उसने question जो है for 1 mark he can frame the questions, right? Possibility exists from this particular area. So just go through this question. Which of the following statement is are correct for powder compaction process? ये powder metallurgy का where you know metal को हम powder की form में बदलते हैं and उसको फिर क्या करते हैं, compact करते हैं through a particular set of processes and then finally product is made, जिसको हमने powder metallurgy product बोलते हैं हम, right? कैसे करते हैं? Facilitates plastic deformation of the powder particles to conform to the final desired shape of the pan. ठीक है, आप क्या करते हो, प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हो, हीट करते हो बेसिकली एंड देन कंप्रेस करते हो उसको, and obviously plastic deformation particles की होगी. So this statement is correct. Enhances the contact area among the powder particles and facilitates the subsequent sintering process. Sintering process basically heating process है, उसको next question में explain करूंगा. So basically क्या है कि जब आप compress करोगे the particles will come close and as आप क्या करोगे, जब एक higher temperature पे इसको maintain करोगे for certain duration of time, so the proper binding will take place. So दोनों statement basically क्या है इस context में, ठीक है ये. So that means both are correct. Go to this particular question. Which of the following statement is correct? Sintering process. Sintering process का मतलब ये है, I think even though briefly, देखो मैं क्या करूंगा, पाउडर को फॉर्म में उसको कन्वर्ट करूंगा, मेटल को आफ्टर ब्रेकिंग इनटू पाउडर, देन मोल्ड पे डाल दूंगा एंड देन आई विल कंप्रेस इट. कंप्रेस करके रखूंगा, आई विल कीप इट एज कंप्रेस्ड एंड देन मोल्ड को क्या करूंगा, आई विल पुट इट इन द फर्नेस, हीट करूंगा उसको.
जब हीटिंग होगी एट ए सर्टेन ड्यूरेशन टेम्परेचर, सिग्निफिकेंट टेम्परेचर पे, तो सॉफ्ट हो जाएगा मटेरियल, पार्टिकल्स विल आल्सो कंप्रेस, प्लास्टिकल डिफॉर्म होंगे, एंड द मेटल टू मेटल, जो पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट क्या होगा, दैट मींस बॉन्डिंग जो है दैट विल इंक्रीज. So keeping that particular mold along with that compaction for a certain duration of time at a higher temperature, उसको हम क्या बोलते हैं, sintering बोलते हैं, and then allowing it to cool, and then finally you are going to have the product. Which of the following statements are correct for sintering process? Heating the compacted, basically ये compacted पूरा ये powder perform to specific temperature to allow diffusion between the neighboring particles. साथ आ जाएंगे, correct. Facilitate the bonding action between the individual powder particles and increase the strength of the final part. That is also correct. More or less overall meaning आपने निकालना है, the way I explained you. Carried out in controlled atmosphere or in vacuum. हाँ, obviously controlled atmosphere में आपको क्या करनी पड़ेगी, obviously, so that for मान लिया आयरन पाउडर है, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में करोगे तो क्या हो जाएगा, वो इस ऑक्सीडेशन हो जाएगी. सो यू हैव टू कैरी आउट इन द कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर or in vacuum also for very critical parts, prevent the oxidation. So yeah, right, so all of them are correct. Okay, discontinuity produced when two surfaces of metal fold against each other and not able to weld completely are called what? So ये देखो, ये डिफेक्ट है, दो जगह आपको जो है डिफेक्ट आएगा. एक आएगा आपको फोर्जिंग में, ये he has not mentioned anything about which particular process, but एक आपको फोर्जिंग में दिखेगा ये डिफेक्ट, और दूसरा जो है वो that is you are going to have in casting. See, in casting, two streams of the metal when they go inside the mold and during the process while moving, liquid metal जब मूव करने के दौरान लेट से क्या होता है, it solidify हो जाता है, and when those two streams come together with each other, let's say, and they don't fuse properly, fuse नहीं होगी वो, right, solidify होगी when they have to come in contact with each other. By the time they reached and touched each other, by the time they had solidified by a certain amount, इसका मतलब है वहां पर एक kind of they came in contact now, but that discontinuity, proper fusing नहीं रही, उसको बोलते हैं cold shut. Cold shut मतलब ये stream और ये stream they became cold and when they came together proper fusing didn't take place, उसको बोलते हैं cold shut. तो एक डिफेक्ट, ये cold shut आप कास्टिंग में देखोगे जो आपने स्टडी किया होगा. सेम प्रोसेस आपकी हॉट फोर्जिंग में भी रहती है. हॉट फोर्जिंग में क्या है, आपका हीटेड मेटल है और डाई में डाला, कंप्रेस किया, तो लेट्स से जो मेटल है दैट गॉट ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द डाई, कॉम्प्लेक्स शेप है लेट्स से, एंड देन व्हेन इट इज कमिंग अगेन टुगेदर इट इज नॉट गेटिंग फ्यूज्ड प्रॉपर्ली. तो ये इसी की तरह जो है वो क्या होगा, एक काइंड ऑफ ए लाइन और वो हो जाएगा, एंड देयरफॉर वो भी डिफेक्ट क्या होगा, कोल्ड शट डिफेक्ट होगा. तो आपने ध्यान रखना, कोल्ड शट, इट इज नॉट शटिंग प्रॉपर्ली बिकॉज दोस टू साइड्स आर नॉट has become cold, something that way, and therefore defect has produced. ठीक है, तो उस डिसकंटिन्यूटी को नाम दिया कोल्ड शट. ओके, सो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है, इफ यू सी, all of you must have seen that दिस इज एक्सट्रूजन प्रोसेस, राइट. ये कंटेनर है, ये डाई है यहां पर साथ में, एंड यू आर हैविंग रैम एंड ओवर हियर एंड यू हैव बिलेट, राइट. और उस बिलेट को आप क्या करते हो, डायरेक्टली फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में आप क्या करते हो, रैम डायरेक्टली इसके ऊपर एक्ट करता है, उसको फोर्स करता है दिस वे. बट इन केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन आप क्या करते हो, देयर इज ए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर व्हिच इज बिकॉज ऑफ दिस liquid which you have inserted over here, and then you are applying the force. When you are applying the force because of this liquid or that fluid, pressure act on this billet from all directions, and then it is forced to come out from the other end of that particular die. So this process of extrusion, obviously forward extrusion ही है, but modified where you are there is no direct contact between ram and the billet. We call this process as a hydrostatic extrusion.
राइट। तो ऑब्वियसली ये तो डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रूजन प्रोसेस इज रिस्पांसिबल फॉर इम्पार्टिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहां गया वो, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस बोलते हैं उसको। बट यू शुड नो द बेनिफिट, कहां यूज होती है पर्टिकुलरली। एक रिजल्ट है दैट यू शुड नो कि जब भी हम क्या करते हैं, एक है कि मैं डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, जैसे फॉरवर्ड एक्सट्रूजन डायरेक्टली जो है उसको कंप्रेस कर रहा हूं, and the other one is I am applying a hydrostatic pressure on that particular material. It has been found that ductility of the material improves. How it improves, I think we will not discuss it over here, but it has been observed कि अब जब हम हाइड्रोस्टैटिक का प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो बिलेट है उसकी डक्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। If that be the case, think of the situation in the particular components or the parts which are brittle or semi brittle. उनको तो हम डिफॉर्म कर नहीं सकते प्लास्टिकली इतने इजीली। So if we can utilize this process where through hydrostatic extrusion we can increase their ductility. If I can increase the ductility, I can deform it. So ये जो process है mainly it is suitable for the materials which are semi brittle or brittle materials who have less ductility, and there we can extrude them, this particular extrusion process called as hydrostatic extrusion process. देखो इसको जरा, which of the following statement are correct for drawing operation? Wire drawing usually starts with a coil of hot rolled rod, which is first cleaned by pickling, and heat generation is the major concern in drawing operation. Partially heat is removed by interpass cooling. Okay. He's talking about the wire drawing process, right? And we have already discussed about it. ध्यान रहे कि जो वायर ड्राइंग में जो इनिशियल मटेरियल है जिसको हम ऐसे शो करते हैं, इसको हम बोलते हैं वायर रॉड। ये कहां से आई? हो सकता है आपने शुरू में बिलेट था, उस बिलेट को वायर के फॉर्म में, वायर रॉड की फॉर्म में बदल दिया, तो बिलेट को कन्वर्ट करोगे इन द वायर रॉड। वायर रॉड बेसिकली, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन द प्रोसेस, राइट। इनिशियली तो वो रॉड की फॉर्म में होगी, ओनली डिफरेंस बीइंग कि ये डायमीटर ज्यादा है और जो इसका डायमीटर क्या है, कम है। तो नॉर्मली ये जो होती है ना, ये जो इसको जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल, जिसको बोलते हैं वायर रॉड, ये जो लिखा मैंने ये है। सो ये इस शेप में होगी, मतलब ये तो हाईली एक्सैजरेटेड है, इज समथिंग काइंड ऑफ इस तरह की वायर होगी, उसको मैंने। सो ये जो आपने देखी होंगी, यू मे हैव सीन ए स्मॉल थिन वायर्स। अब वायर रॉड जो है वो सिंपली जो है, देयर इज नो सम क्लियर कट डेफिनेशन कि कितने डायमीटर को आप वायर रॉड बोलोगे, कितनों को वायर बोलोगे। ये जो निकल के आया ये वायर है मेरे लिए, और इससे लार्जर डायमीटर, कोई भी लार्जर डायमीटर है उसके लिए वायर रॉड बोलता हूं। तो एज सिंपल एज दैट, वायर रॉड जो है मैंने कहीं से बनाई होगी, हॉट प्रोसेस से, हॉट वर्किंग प्रोसेस से। सो यहां से ओरिजिनल प्रोडक्ट था, फॉर एग्जांपल इस शेप का था, लेट्स से उसको मैंने किया हॉट वर्किंग के थ्रू, पहले इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। मे बी इसका थोड़ा सा डायमीटर ज्यादा बड़ा होगा, और क्या ये बोल सकते हैं हम, अगर इसको ऐसे सोचना है इस शेप में, समथिंग इज ये। तो ये जो मैंने शो किया है डायमीटर, ये बेसिकली ये है। उसको मैं फर्दर रिड्यूस कर दूंगा डिपेंडिंग अपॉन द एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है आपका, डिपेंडिंग ऑन नेल्स हो सकती हैं, नेल के लिए वायर चाहिए, स्प्रिंग के लिए वायर चाहिए, हैंगर्स के लिए वायर चाहिए, समथिंग दैट वे, राइट। और उसको बनाने के लिए डिपेंडिंग अपॉन एंड एप्लीकेशन उससे लार्जर डायमीटर लेना पड़ेगा मुझे, उसको मैंने वायर रॉड बोल दिया, दैट इज ओनली डिफरेंस। अब देखते हैं इसको क्या बोलता है। वायर ड्रॉइंग यूजुअली स्टार्ट्स विद ए कॉइल, ये हॉट रोल्ड रॉड। कहां से हॉट रोल्ड? इसको मैंने हॉट रोलिंग की और मैंने ये बनाया, विच इज फर्स्ट क्लीन्ड बाय पिकलिंग। पिकलिंग का मतलब ये है कि इसको जब मैं इस डाई में डालूं, व्हेन आई एम गोइंग टू पुट इट इन द डाई, मुझे इसको साफ करना पड़ेगा, आई हैव टू क्लीन इट। ये तो मैंने मान लिया लोहे की है, इट्स मेड अप ऑफ लाइक स्टील, तो स्टील तो मैंने कहीं दूसरे से खरीदा, ये रॉड जो है, ये वायर रॉड जो है परचेज फ्रॉम समवन एल्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको डिफॉर्म कर रहा हूं, आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ वायर्स। तो मैंने डाई में डालना, तो डायरेक्टली डाल दूं क्या उसको? नो। क्यों? क्योंकि ये तो रस्टेड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। उस क्लीनिंग प्रोसेस को नाम क्या दिया जाता है? पिकलिंग। एसिड्स का सॉल्यूशन होता है, उसके थ्रू पास किया जाएगा, एंड द सरफेस विल बिकम क्लीन। उसके बाद मैं डाई में डाल सकता, नहीं तो डाई को वो डैमेज कर देगा। सेम इज द सिचुएशन इन केस ऑफ कॉइल्स आल्सो। जो कॉइल्स आती हैं आपकी, जो कोल्ड रोलिंग के लिए जो कॉइल्स हैं, उनको आपने करना है, कोल्ड रोलिंग करनी है, तो पहले उनको क्या करेंगे, इस कॉइल को हम क्या करते हैं,
एसिड सॉल्यूशन से पास करते हैं एंड वी विल क्लीन देम, इसको क्लीन कर देते हैं सो दैट रोल्स के अंदर जब जाएगी तो वो डैमेज ना करे रोल्स को। तो कौन सी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है पिकलिंग। तो यहां भी पिकलिंग प्रोसेस होगी, इसको क्लीन करना है एसिड सॉल्यूशन से पास करके, जो रस्ट रूस्ट है वो सारी रिमूव हो जाएगी। सेम इज द सिचुएशन फॉर दिस आल्सो एंड देन वी विल से वी विल पास इट आउट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। हीट जनरेशन इज द अदर मेजर कंसर्न इन ड्राइंग ऑपरेशन, पार्शियली हीट इज रिमूव्ड बाय इंटरपास कूलिंग। यू नो यहां पर देखो काइंड ऑफ इट से काइंड ऑफ इवन दो वी यूज द लुब्रिकेंट्स ओवर हियर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, बट यू नो यहां से पुल कर रहे हो आप तो होल सरफेस इज गेटिंग रब, सो ऑब्वियसली लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे ताकि यहां से कूलिंग कर सकें। उसको नाम दे दिया हमने इंटरकूलिंग, इंटरपास कूलिंग एटसेट्रा। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इसको देखो जरा। ओके, सो दिस इज हैमर, बोल लो उसको, क्या नाम दिया उसने, रैम सिलेंडर या जो भी है, व्हाटएवर इट इज। सो व्हाट इट सेज कि इन केस ऑफ पावर ड्रॉप हैमर, पावर ड्रॉप हैमर आपने जो है यहां पर स्टीम वगैरह जो है होगी जिसके थ्रू आप फोर्स अप्लाई करोगे, टोटल एनर्जी अप्लाइड ड्यूरिंग द स्ट्रोक ऑफ द प्रेस, ये जाएगा हाइट से और फोर्स अप्लाई करेगा टू डिफॉर्म दिस पर्टिकुलर मटेरियल। ठीक है, पी अगर प्रेशर है, ए स्ट्रीम प्रेशर है, यहां पर प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो। V is the velocity of the ram at the start of deformation, जब यहां पर आपका रैम ये टच हुआ यहां पर, तो उस वक्त वेलोसिटी जो थी क्या थी, लेट्स से उसकी वेलोसिटी v थी। हाइट ऑफ द रैम ड्रॉप, ये हाइट है, यहां से लेट्स से ये ड्रॉप किया आपने। सो मुझे ये बताओ कि कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी, कितनी कितनी इन केस पावर ड्रॉप, टोटल एनर्जी अप्लाइड, कितनी एनर्जी अप्लाई की आपने इसकी, यहां से गया यहां पर इसके ऊपर ड्रॉप किया जब आपने, तो यू कैन वेरी क्लियरली से, देखो मैंने जब इसको एक हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं तो दो तरह की एनर्जी एसोसिएटेड है। क्या, एक तो वो है जो कि आपका इस प्रेशर के कारण आप मूव कर रहे हो इसको डाउनवर्ड, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर वट एवर द एनर्जी दैट इज सप्लाइड दैट विल बी एक्टिंग ऑन द सरफेस। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो है वो ड्रॉप इन हाइट, इसका जो अपना वेट है, उस वेट के कारण जो आपका पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप है, वो भी तो एनर्जी कहां गई, वो दैट एनर्जी ऑल्सो गॉट इनटू दिस वर्कपीस। तो वो जो एनर्जी है आपकी, क्या, एक तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर वाला जो पार्ट है ये कहां गया, हो ये प्रेशर इनटू एरिया, जो जो भी सिलेंडर होगा उसका, तो ये तो क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस इट ट्रेवल, तो फोर्स इनटू वो हाइट आपका, ये क्या आ गया, फोर्स इनटू हाइट डिस्टेंस ट्रेवल। तो एक तो हो गया ये कौन सा, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर इनसाइड प्रेशर, दैट इज द एनर्जी दैट इज अवेलेबल टू यू व्हेन दिस स्ट्राइक्स ओवर हियर। तो ये तो क्लियर है। सेकंड क्या होगा, सेकंड आपका जो है एमजीएच भी तो है, एमजीएच, एमजीएच, सो जो इसका वेट होगा, जो कि दिया नहीं है मुझे, इट इज नॉट गिवन टू मी, और हाइट में जो ड्रॉप हुआ, जो पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हुआ वो, नाउ ही इज नॉट गिवन एमजीएच, बट इनडायरेक्टली अगर मैं आप इसको, लेट्स से इफ आई ड्रॉप इट फ्रॉम हियर, सो दिस ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी कहां गई, you will say this drop in potential energy will be reflected in terms of increase in kinetic energy। यही होता है ना, अगर आप इसको ड्रॉप करोगे तो जैसे जैसे नीचे आएगा तो इसकी क्या होगी, जैसे जो पोटेंशियल एनर्जी इसका ड्रॉप हुई, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगी, you will say the speed of this will increase। इसका मतलब है जो पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप है that got reflected in the kinetic energy। तो इसका मतलब है इस mgh को आई कैन ऑल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ हाफ mv स्क्वायर, जो कि वेलोसिटी बोल रहा है इस वक्त जब टच किया उस वक्त कितनी थी, v थी। तो बिकॉज ऑफ दैट ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी इट अचीव्ड ए वेलोसिटी ऑफ v। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो काइनेटिक एनर्जी जो गेन हुई, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी ओनली। इसका मतलब है मेरा हाफ mv स्क्वायर प्लस ये, सिंपल आपकी अंडरस्टैंडिंग का यूज होगा इसमें, दैट्स ऑल। एट न्यूट्रल प्लेन,
यू ऑलरेडी नो रोलिंग प्रोसेस में थिकनेस रिड्यूस होती है, राइट? दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, राइट? ओके, सो as you know, this is rotating, rolls are rotating. So you know, rolls are rotating with a constant velocity. उनकी velocity जो टेंजेंशियल velocity, कहीं भी किसी पॉइंट पे बोलूंगा मैं, अगर ओमेगा से रोटेट करें, ओमेगा इंटू आर, तो टेंजेंशियल velocity किसी पॉइंट के ऊपर क्या रहेगी? सेम रहेगी. तो टेंजेंशियल velocity ऑफ द रोल्स जो है एट एनी पॉइंट पेरिफेरी में जो है सेम रहेगी. इट इज नॉट चेंजिंग. द ओनली डिफरेंस इज जो स्ट्रिप की velocity है वो क्या होगी? एज यू विल मूव ऑन इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शनल एरिया इज रिड्यूसिंग. द ओनली वे दैट यू कैन कंपेंसेट फॉर दैट इज बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी. तो स्ट्रिप की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी. फाइनली लार्जेस्ट वेलोसिटी कहां होगी? एट द एंड. तो अगर v1 से शुरू हो रहा है तो फाइनली जो है आपका v2 लार्जेस्ट वेलोसिटी इसकी किसकी होगी? किसमें? एट द एग्जिट. एंड देयर इज गोइंग टू बी पॉइंट समवेयर इन बिटवीन, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल प्लेन बोलते हैं, जहां पर क्या होगा? एज द वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कुछ थी, लेट्स से v रोल बोल देते हैं उसको, टेंजेंशियल वेलोसिटी वो हर एक जगह सेम ही है. सो एट v1 will be less than v1, v1 will be less than vr. So as roll takes this sheet inside, इसकी velocity धीरे धीरे बढ़ती जाएगी. किसकी? स्ट्रिप की. A point will reach where the velocity of the strip will be equal to the velocity of the roll. So उस point को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट. And after that neutral point, strip की velocity तो increase होती जाएगी. That means after this neutral point, the strip velocity will be more than the tangential velocity of the roll. तो v2 तो किसी भी हालत में होगी, बट एट एनी पॉइंट. यहां पर मैं पूछूं आपसे कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप ज्यादा है कि वेलोसिटी ऑफ रोल ज्यादा है, तो आप बोलोगे टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप इज मोर देन द रोल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट अवे फ्रॉम द न्यूट्रल प्लेन टुवर्ड्स, बिकॉज स्ट्रिप की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी. ये तो कांस्टेंट है इनकी रोल्स की. सो नाउ सी, एट न्यूट्रल प्लेन वेलोसिटी ऑफ द शीट इज सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रोल. ये वेलोसिटी ऑफ द शीट इज हायर देन द वेलोसिटी ऑफ द रोल. कहां पर? दैट मींस न्यूट्रल प्लेन से लेके एग्जिट की तरफ को. ये स्टेटमेंट ठीक है. वेलोसिटी ऑफ द शीट इज स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ द रोल. ये स्टेटमेंट कहां करेक्ट होगी? बिफोर द न्यूट्रल प्लेन. न्यूट्रल प्लेन से कहीं भी पहले इफ यू विल टॉक अबाउट द स्ट्रिप वेलोसिटी इज गोइंग टू बी लेसर देन रोल वेलोसिटी. ठीक है, तो तीनों को आप इंटरप्रेट कर सकते हो. इसके कॉन्टेक्स्ट में इट इज द करेक्ट आंसर. ओके ओके गुड, लेट्स गो अहेड. सो आई थिंक थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है. आई थिंक समवेयर वी मे हैव डन, राइट? थोड़ा सा मिलता जुलता है. इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ रोलिंग ऑपरेशन की बात करते हैं. which of the following statements are correct with respect to rolling process? It says initial breakdown of ingots to blooms. ये मैंने आपसे बात की थी कि इनगॉट के फॉर्म में भी हम बात कर सकते हैं. तो या तो इनगॉट्स को ब्लूम में भी कर सकते हो आप, मोर बिकॉज ब्लूम का साइज नॉर्मली बिलेट से ज्यादा होगा. सो ओके, ओवर देयर वी डिस्कस, ओके वी कैन कन्वर्ट देम ब्लूम. बिलेट्स में कर सकते हैं, बट एनीवे अगर हमने एक ही चूज करना, वी कैन गो फॉर ब्लूम्स. इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ इनगॉट्स टू ब्लूम्स ऑफ बिलेट इज बाय हॉट रोलिंग. ओके ठीक है, बिकॉज साइज बहुत ज्यादा है इनगॉट का, तो उसको हॉट रोलिंग के थ्रू ही कर सकते हैं. विच फर्दर इज हॉट रोल्ड इनटू प्लेट्स, शीट्स एंड दिस. तो ये डायमेंशन स्मॉलर है, तो ऑब्वियसली फिर क्या नेक्स्ट स्टेज में दोबारा हम क्या कर सकते हैं? हॉट रोलिंग के थ्रू इनको डिफरेंट फॉर्म में बदल सकते हैं. दैट इज ओके. वर्कपीस कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू रोल्स इफ टेंजेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एंगल एक्सीड्स दैट. ओके, आपका यू नो दैट फॉर द अनएडिड एंट्री ऑफ द स्ट्रिप इनसाइड द रोल्स, for unaided entry of the strip inside the rules, necessary condition क्या है कि जो आपका ये है ना, ये अल्फा है रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ, और ये क्या है? एंगल ऑफ बाइट. ठीक है, तो हाउ यू कैन वर्कपीस कैन नॉट ड्रॉन रोल्स इफ टेंजेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एंगल, या तो उसको एंगल ऑफ बाइट बोल दो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोल दो. ठीक है, तो हाउ डू यू से कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी म्यू शुड बी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन टेंजेंट अल्फा. दिस इज द नेसेसरी कंडीशन कि इफ यू वांट दैट द रोल्स, मैंने केवल स्ट्रिप को लाया और उसके साथ टच में ले आया यहां पर, दैट्स इट.
शुरू में एट द बिगिनिंग आई एम ब्रिंगिंग द स्ट्रिप इन टच विद द रूल्स, दैट्स ऑल, सिंपली टच किया, तो वो क्या कंडीशन है, विच मस्ट बी फुलफिल्ड सो दैट रोल्स बाय देमसेल्व्स पुल दिस स्ट्रिप इनसाइड देम, ये मतलब है इसका, द कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल्ड सो दैट रोल्स बाय देमसेल्व्स पुल द स्ट्रिप इनसाइड द गैप, वो कंडीशन है ये कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द स्ट्रिप एंड द रोल शुड बी ग्रेटर देन द टेंजेंट ऑफ दिस अल्फा. Workpiece cannot be drawn into the rolls if tangent of contact, cannot be drawn into the rolls if tangent of the contact angle exceeds the coefficient of friction. हाँ, ये यहां पे बोल रहा है कि cannot be drawn, अगर ऑब्वियस स्टेटमेंट करेक्ट है ये कि टेंजेंट अल्फा अगर जो है इज मोर देन म्यू, अगर टेंजेंट अल्फा मोर देन म्यू है तो स्ट्रिप कैन नॉट बी ड्रॉन. क्या चाहिए, म्यू शुड बी लेस देन दिस, सॉरी एक मिनट में रिपीट, आई एम मिसिंग समथिंग, इफ द टेंजेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एंगल एक्सीड्स, हाँ मतलब ये वैल्यू इससे ज्यादा होती है, उल्टा बोल रहा है, वर्कपीस कैन नॉट बी ड्रॉन अगर ये, इफ दिस वैल्यू बिकम्स ग्रेटर देन exceeds the coefficient of friction, so tangent of alpha exceeds mu, उल्टा हो जाता है, it becomes reverse, so obviously then this statement is correct. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो फॉर अगर ड्रॉ करना है तो दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. ओके, सो कौन सा क्वेश्चन है, 88, बोथ आर करेक्ट. ठीक है, तो ड्रॉ करना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और उल्टा हो गया तो इट कैन नॉट बी ड्रॉन, तो it means he is saying correct. In taper shank drills the torque is transmitted through, एक्चुअली क्या है कि जो आपको पता होगा कि जो ड्रिल होती है ना, उसका टेपर शैंक वाली ड्रिल ऐसी होती है कुछ, देन यू आर हैविंग दैट, जो उसकी शेप एंड ऑल दैट, ये इस तरह की शेप जो ड्रिल होती है आपकी, समथिंग दैट वे. तो जो टेपर शैंक है बेसिकली आप क्या करते हो, ये वाला पोर्शन उसका पेरीफेरी है, इंसर्ट करते हो टाइटली, तो ऑब्वियसली ड्रिल को तो आपने रोटेट करना है, तो अगर ड्रिल को रोटेट करना है जिसके ऊपर आपने इंसर्ट किया इनसाइड, दैट इट शुड नॉट गेट रोटेटेड, स्लिप ना हो जाए, तो स्लिप को कौन अवॉइड कर रहा है, स्लिप इज बीइंग अवॉइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन दिस सरफेस एंड दैट पर्टिकुलर स्लिप दैट इज लाइंग ओवर इट, दिस वे समथिंग. तो ये जो क्या है, ये द टेपर शैंक, ये टेपर शैंक है इसका, ये सरफेस और जो स्लीव है आपका, इसके बीच जो है वो क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन जो है वो सफिशिएंट होनी चाहिए, सो दैट द ड्रिल व्हाइल ड्रिलिंग द होल शुड नॉट गेट स्लिप. तो ये फ्रिक्शन के कारण थ्रू. ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव सीन इन योर दिस वर्कशॉप, जहां पर आप ड्रिल लेते हो, इंसर्ट करते हो, तो ऑब्वियसली क्या है, ये फ्रिक्शन ही तो है वो जो कि अवॉइड करती है उसको, विच अवॉइड्स दैट. Point angle in a drill is the angle between. So I think if you have done the numericals over there, so this is something, point angle in a helix drill, something this kind of you know, right. So ये drill है आपकी. So ये जो portion है, as you know you are having major cutting edges, कौन सी हैं, ये है lips, इनको lips बोलते हैं हम, right. These are the lips of the drill. ये सेकेंडरी कटिंग एजेस हैं, यहां पर ये मेजर कटिंग एजेस हैं. सो ये जो एंगल है पॉइंट एंगल जिसको हम बोलते हैं, दैट इज बिटवीन द लिप्स, राइट. द पॉइंट एंगल इन द ड्रिल इज एंगल बिटवीन द लिप्स. सो जो मेजर कटिंग एजेस हैं इसके बीच जो एंगल है, अल्फा या थीटा जो भी बोलना है आपने, उसको हमने नाम दिया है व्हाट, पॉइंट एंगल. ओके, सो आई थिंक सो दैट इज ऑल. तो आई थिंक कुछ एक एडिशनल क्वेश्चन मैंने, जिनकी नंबरिंग जो है बीच में नहीं दी थी, मैंने बाद में भी लिए हैं. जस्ट आई होप यू मे हैव टेकन दोज क्वेश्चंस, क्योंकि वो मैंने शुरू में जो आपको द फाइल भेजी थी, दे वर नॉट इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर फाइल. आई विल सी इफ आई कैन, जो आज मैंने यहाँ पर इसमें इंक्लूड किए हैं 3-4 क्वेश्चन, और उनको इफ आई कैन प्रोवाइड दैट फाइल, एंड जो रिवाइज फाइल है दैट विल आई अलाउ इट टू अपलोड मे बी टुमारो. So if you want to have that, you can take it. So I think holistically, जो today relatively number of numerical questions were less. So reason being that I could not find the relevant numerical questions. पहली बात तो ये थी,
अननेसेसरली आपको जो है वो कुछ भी नहीं करवाने का लॉजिक नहीं बनता. So theory portion which I think which were relevant and numerical portion which was relevant, I think I have covered. So production का जो mostly जो NPTEL के assignment में whatever that I have found, I have covered that. It is not that they have framed the question from all the areas, right? But whatever the areas जहां जहां उन्होंने frame किए हैं NPTEL assignments में, वो we have almost covered those, right? जगजीत सर ने भी I think एक session दिया था जिसमें casting and all that portion he has covered. And the metal forming, metal cutting portion, and that portion, and this what do you call limit fits and tolerances, that portion I have almost जितने भी उनके क्वेश्चन से I think I have covered over there, right? So I think rest part जो थोड़ा बहुत part है वो obviously you may be preparing and all that, वो दूसरा portion जहाँ पे नहीं थे question sufficient, I think you prepare from whatever areas that you are preparing. And I think so that is all from my side. I think if anything we feel in between that okay will be relevant, definitely we are going to share with you. Okay, so that is all for today. So maybe if let's say if we will have any kind of session, we will definitely going to have. So see you next time whenever we are going to have next whatever the next session that we will plan. Okay, thank you very much.